Begin live in 5, 4, 3, 2, 1. Vilai sir. Namaskar. Greetings to all of you present here. I, C.A. Mohit Jain, Chairman of Kishangarh branch of ICAI, is very pleased and fortunate enough to welcome you all on the last day of this conference, NATCON, Avsar, New Opportunities to CAs. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion of ICAI National Conference 2022, organized by the Professional Development Committee of ICAI and hosted by the Kishangarh branch jointly with the branches of Alwar, Bikaner, Chittorgarh and Shri Ganganagar. And I am highly obliged with my cooperating branches. They are doing so well and we are going for successful conference right now. We are very proud to feel successful conference now. And now today is the last day. I'm initiating the final day of the conference, which contains back-to-back bumper dhamaka sessions with the legendary tax guru Sir C.A. Girish Ahuja, who already joined us on the session. The session of Girish Ahuja ji will be followed by the respected past presidents of ICAI, including 2 immediate past presidents of the ICAI. And also we get the last and final session from stress buster session from the Vice President of ISKCON, Delhi, H.G. Rishi Kumar Das ji. The national conference was the dream come true to all such small branches, and under the leadership of our President, Vice President and PDC President, Kamisha Soni ma'am, we are able to do this kind of event. I would like to present warm welcome to all the dignitaries present on the dais. We are very thankful for your glorious presence and deeply obliged, sir. Continuing, Indian culture gives women the utmost respect. Many of our gods are female and they have been worshipped as the deity by many faithful people. The goddess of wealth is Lakshmi, the goddess of power and strength is Durga, and the goddess of wisdom is Saraswati. Women are the epitome of the wealth and power. To make this evening blessed one with the presence of women, we invited women CA members of Kishangarh branch to invoke the goddess Saraswati by kindling of lamp of knowledge and wisdom. So it's over to the Saraswati Vandana team. And I request the tech team to please start CA motto song after. I'm joining the Saraswati Vandana, please. Thank you all of you. Now I would like to request the tech team to please start the session by playing the CA motto song. Please stand up all of you. Yaesha supteshu jagrati Yaesha supteshu jagrati Kamam 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 Purusho nirmimanaha Tadeva shukram Tada brahma Tadeva amritamucchate
सर्वे तदूनात्यपि कश्चनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. So now the starting officially session, I would like to welcome CA Amit Agarwal ji, Chairman of Alwar Branch, to please address a welcome note to the guests and speakers. Over to you, Amit ji. Thank you, Mohit ji. Am I audible? Okay. Very good afternoon, everyone. Past President of ICAI, Atul Gupta sir, Niyar sir, Uttam Prakash sir, Council Member Prakash Sharma sir, Professional Development Committee Chairperson and Council Member Commissioner Soni ma'am, Regional Council Member Nitin sir, Akash sir, Sharad sir, our today's learned speaker Girish Ahuja sir and Rishi Kumar Das sir, Chairman of Kishangarh Branch Mohit ji, Bikaner Branch Ankush ji, Chittorgarh Branch Yogesh ji, and Ganganagar Branch Dheeraj Leela ji, esteemed members of our profession and my dear friends. I, CA Amit Agarwal, Chairman of Alwar CA Branch, welcome you all in our 3 days national conference, which has been organized by Professional Development Committee of ICAI and hosted by Kishangarh Branch, Alwar Branch, Bikaner Branch, Chittorgarh Branch, and Ganganagar Branch. Today is the last day of our national conference, which till date has got the recorded number of participants and has been successfully organized with the special efforts of the Kishangarh Branch Chairman Mohit ji and Professional Development Committee Chairperson Commissioner Soni ma'am. As we all know, we have a very eminent and learned speaker, Girish Ahuja sir and Rishi Kumar Das ji with us. I thank all of them for their valuable time and support to us. I am also thankful to all the participants for joining us and making this national conference a successful event. I hope such national conference will be organized on a regular basis, as it gives us an opportunity to meet at one platform and get the opportunity to learn from the national top learned speakers. Thank you, everyone. Over to you, Yogi ji. Thank you so much. Thank you, Amit ji. Thank you a lot. I just want to show my gratitude by inviting CA Jheel Daga, being a woman who was the moderator last day. I just request you to please present your welcome note, as this is a woman Thank special. you, Mohit sir. Thank you so much. A very warm welcome to everybody present here. It gives me immense pleasure to welcome Girish ji, sir, welcome. Prakash sir, welcome, sir. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much. So, CA as a profession has always been very male dominated, but things have been set to change, and our guiding angel is CA Kamisha Soni. She has been the perfect idol for us, guiding us through with all the institute initiatives and everything possible that is there for empowering women. And me being here, sitting here in between all such eminent people gives me, I'm actually speechless. You can see. I'm really thankful to all of you all to welcome me here and making me a part of this successful event. Thank you so much. And CM Mohit ji, congratulations on the 3rd day and a very successful, amazing 3rd day. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you so much. It's all our team effort. We are doing all well. Without taking much of time, I just want to hand over the session to Yogi Bagri ji, who is the moderator for today's session of Girish sir. Over to you, Yogi ji. Thank you, Mohit sir. First of all, I would like to welcome Girish Ahuja sir, Prakash Sharma sir, and all the branch chairmen and dignitaries, RCMs, various CCMs present in the national conference. सबसे पहले मोहित जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ. बहुत ही सक्सेसफुल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करने के लिए, जिससे छोटे ब्रांचेस के मेंबर्स को भी बहुत हौसला मिलता है टू प्रेजेंट ऑन द नेशनल स्केल. और आज के हमारे सेशन के मॉडरेटर है सीए नितिन जी गुप्ता, आरसीएम हमारे साथ प्रेजेंट है. सो ही इज वेरी हम्बल, काइंड पर्सन, always very generous. First of all, I would like to request Nitin sir for the welcome message to all the dignitaries. I will interrupt in between. Sorry to interruption, Nitin sir. I'm just taking a moment. We had joined Prasanna Kumar D sir. He is the vice chairman of PDC.
and due to his busy schedule, he was unable to join us. Right now, he is with us on the dais. I just want to take just a moment of 2 minutes to get a words of wisdom from Prasanna Kumar sir. Prasanna sir, it's all yours. Your PDC is doing so well. We are very humbled to get an opportunity for organizing NATCON. Just because of you and Kamisha ma'am, we are able to host such kind of event. It's all yours, sir. Please provide your lighten moment. CA Mohit Jain, the chairman of Kishanganj branch, and CA Prakash Sharma, the honorable Central Council member, and a pioneer and well-known person in the entire Central region, a person who has been dynamic and doing yeoman service for the betterment of the profession. We call him a champion. Daily, whenever I see him, he's a champion for us. So he is a source of inspiration for all of us. I see Dr. Girish Ahuja, Pitamaha Guruji for all of us, and my dear chairman of various branches and members of Central India Regional Council and the participants in the program. Good evening to all of you. It's a proud moment for me to participate in this event, which is organized by many branches put together on a very good topic of new opportunities for the chartered accountants. And the type of programs you have chosen, and the type of the speakers that you have, and the structure of the program, so well done. I'm sure the last couple of days, whatever is going on here, all the participants have got benefit out of that one. In fact, I want to address along with CA Kemisha ji the other day, because I was held up in Delhi for some various program day for yesterday. I could not join, and yesterday I was myself a speaker in one program in Visakhapatnam, so I could not join you. I got an opportunity to talk to you for a few moments today. Friends, as you know, opportunities, generally it is said that maybe we have to think that we should explore for new opportunities today, or what to retain what are the opportunities today we have, or is it an era that where we are losing opportunities? These are the minds of everyone. But friends, for a chartered accountant, opportunities are always there in various forums and various areas. The opportunities are growing day in and day out, be it in taxation, fiscal laws, or statutory or non-statutory functions. Opportunities are growing. It all depends upon how we make use of the opportunity. And moreover, whatever when we speak about the opportunities, when we speak about the professional growth in future, we should always remember it is the quality of audit, the quality of services we render, that is the buzzword everywhere today. So the timing, the delivery, and delivering the quality product is the buzzword. Thereby, knowledge levels, though whatever the information that you need to equip ourselves in various subjects that is available in the public domain. That when you go to Google, you get everything, so that you got knowledge. But not the case. When you have to attend the program that we are organizing, where you got the perfect knowledge. Suppose Dr. Girish Ahuja is addressing on this topic. Do you think that is there a replacement in the entire social media, entire public area where you got the information? Is not there. Not only Google, nobody can replace that one. So whenever we organize this type of program, it is necessary for all of us to attend, enrich our knowledge, so that we get the right information for the right people. I don't think we should not depend on Google. That's not ultimate. So I'm sure there are a lot of speakers today. Dr. Girish Ahuja is there. When he is there, I should not be wasted a single minute, because his time is precious. So let's hear him. And I'm very happy to see. I always call the Committee for Members and Practice. The chairman today is none other than our Prakash Sharma ji. He is doing a lot of service in that particular committee. And whenever anybody wants to organize any program under the committee, he always open. Wherever is the chairman, whichever the committee is the chairman, anybody asks him, sir, we want to organize national conference. He's always for the members, and he does a lot of service to that one. Such a person being there, I think we should we should have time to listen to all of them. With these few words, I wish you all the best. Have a great days of learning, and I'm sure all these branches joined together will conduct many more programs for the benefit of the membership at large and the growth of the profession in general. Thank you very much. I thank the Mohit Jain for following up and inviting me to come. It's a great opportunity. I did not know that Dr. Girish Ahuja and Prakash Sharma was there. I'm really fortunate today. It's a great Sunday that I have today. Thank you very much. Thank you very much, sir. Yogi ji, please take the charge and start the program. Thank you so much, Prasanna sir,
for your kind words of wisdom. Thank you. Now I would like to request our moderator of the session, CA RCM Nitinji Gupta, to welcome the Girish Ahuja sir and session chairman CA Prakashji Sharma and his words of wisdom. Nitinji sir. नितिन जी आवाज आ रही है सर? कुछ कनेक्शन इशू होंगे. Just call Prakash sir directly. Words of wisdom. We are already delayed. प्रकाश सर, नितिन जी के कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है सर. I would request you sir to enlighten us for the today's session and welcome Girish Ahuja sir. Thank you. Respected Girish Ahuja ji is speaker. Speaker is a very small word. Even text guru is very small word. Friends, you all are what I am seeing very young CAs. When I was doing my CA in 1982, when I was doing my first group of CA exams in intermediate, I have studied from Girish Ahuja ji. So you can imagine, even for taking his classes, we used to come at least 15 to 20 minutes before starting of the classes, because if you were not supposed to come in time, before the time, we never used to get the seat to listen to his speech. So you can imagine from how so much of long time he is giving services to our profession, really a legend of our this profession, especially on income tax, a great person for giving such a wonderful service to our profession. My other colleague, Prasanna sir, I cannot say anything except this, that there are only very, very few persons, the council, few council members who you can put on any committee, on any work, on any sincere or challenging work. They will do it 100% correctly. And Prasanna is one of that colleague. So you can diversify on any other in examination committee, on any other platform, whatever work you give, whatever committee you will give him, he will give his 100%. We hardly get this type of central council members. We are really fortunate to have with us Prasanna sir today with us. Thank you, Prasanna ji. Other regional council members who are present over here, Chairman of Kishangarh branch, Chairman of Alwar branch, Chairman of Bikaner branch, Chairman of Chittorgarh branch, and Chairman of Sri Ganganagar branches, as well as secretaries of these branches, other organizing members of this National Congress. We are really, and my colleagues, I'm really thankful to all of you for arranging such a wonderful event that also 5 branches in one shot. That's really a very good effort, because it is very comfortable for speakers like Girish Ahuja ji, who can address so many people in one go. That is very, very important. Friends, just now, a few minutes back, one of the girl CA member was saying that it is dominated by male professional in our CA profession. Let me share with all of you that the ratio of is 52% male members and 48% women members. So, and let me tell you that out of 32 Central Council members, presently 3 Central Council members are girls. And the way this ratio is increasing, very soon you will see that girls will not be that male dominated, what girls are thinking, but what I am visualizing, that very soon we'll see that girls will be equally in ratio. And what the way ratio is increasing, I am very much worried that within few years they will be dominating this profession. I am very sure. So with these words, I'm really thankful to organizers that organizing all these type of intelligence and very important topics for our members. At the same time, my sincere request to you is, please, things are changing very fast. Like 5G technology is supposed to take place within 6 months in our country.
and things will be drastically changed after 5G technology. And taking care of that change of technology at institute level, we are coming out with 4 different softwares which we will be providing to our members at free of cost. For that, we have kept a budget of around 50 crores. And this is the first time in the history of our institute that we have kept this huge amount of budget for developing different software, which we will be giving to our members at free of cost. So my sincere request to you that very soon we are coming out with these softwares. So it is important that this message should go till our all members, because it's very difficult for us. What I understand and feel that the most challenging work is that how to inform to our members. That is the biggest challenge. So my sincere request to all you chairmen who are the torch bearers of their profession, that you have to inform to our members that they have to use starting these softwares. And it will be very, very important for our profession. If we will not be able to use this software, we will not be able to perform our professional work. These are so important softwares. Friends, at the same time, 30th June is the last date for giving suggestions for the new course which we have proposed, for which we have got the principal sanction from MCA. But we will be finalizing this course very soon. And in the history of our institute, this is the first time when this drastically, so deeply, this course is going to be revised, where training period will be only 2 years for our members. Only those members who wants to go for practice, they will be taking training for 3 years. There will be now in final, there will be 3 subjects in spite of 4 subjects. There will be lots of changes. So we will be able to make this course most successful, most practical, and most important for our members if you all will participate in this. So my sincere request to all of you chairmen who are sitting over here to please pass on this message to all your members, and requesting you, all of you, to please give your suggestions, that even if you are liking anything, please write, yes, this is right, so that it will be very comfortable for us to take final decision on all these matters. Same time, my sincere request to all of you chairmen is that institute comes with so many other good benefits for our members. But what I feel when I have come in this committee of members in practice, that there are so many benefits we are doing this, so many arrangement with different people, with different vendors, but our members does not know. Like one of the policy with LIC we are having, for which our member has to give a very, very small amount, and giving so small amount, it is covered for this thing, their life, and that coverage for 10 lakh and for 5 lakh for their spouse. And the premium is according to their age, but premium is very, very nominal. It is covering till the age of 65 years of members. So my sincere request is that it is very beneficial policy, which most of the members does not know. Till now, although from south and from west, lots of members are using this policy, but in our region, most of the people are not using. So my sincere request, Mohitji, we'll be sharing with you these policies. Please share with the members. It is going to be very useful for our members. At the same time, we have arranged a very important thing with one of the vendor, TrueWorth, for the health checkup of our members. All those health, which if we go to any testing lab, it will not be less than 7,500 rupees per person. If we'll go by this benefit, this vendor, we will be getting this benefit by 2,500 rupees only. At the same time, we are coming up with so many other different software like Prop 42. Prop 42 is, if you want to know any detail about any private or listed company, you have to click name of that company. That software will be giving all the information about that company. These are some softwares which are free of cost for our members, or on what very, very nominal prices.
So, but most of the members does not know that these are the facilities which are available to you. That I will like to have one session of all the regions with all their branches to for their members to know that what are the different arrangements at the institute level which are available to our members, because most of our members does not know those benefits, and these are huge benefits which are very, very important for our members. So my sincere request to all of you, please take care of that, and I am very sure this session will be very, very useful for all our members. I will not take much of the time, and I wish you all for success of this last session also. I'm very confident we all will be benefited by a speech of Girish Ahuja ji, who is the legend of this profession. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Prakash sir, for your words of wisdom and so much practical things about whether it's use of software in the present scenario or whether about professional indemnity policies. Thank you so much, Prakash sir. Now मेरा सौभाग्य है, जैसे प्रसन्ना सर ने बोला कि विश्व पितामह of the tax profession, or as Prakash sir said, he has vast experience. He's known in the length and breadth of the country. He has done more than 100 seminars, more than 40 years of experience. After budget, every budget will look forward to the Girish Ahuja sir seminars. It is my very fortunate, मैं सर से ही पढ़ा हुआ हूँ जैसे प्रकाश सर पढ़े हुए हैं. मेरे लिए बहुत nostalgic feeling है कि आज मैं सर के साथ dash शेयर कर रहा हूँ. It requires no introduction. Most welcome, Girish Ahuja sir. The session is all yours. Good afternoon to everyone. Of course, Vice Chairman of the Professional Development Committee of ICAI, very young and dynamic person from Visakhapatnam, CA Prasanna Kumar ji, and of course, Central Council member from Rajasthan, and of course, the Chairman of this technical session, CA Prakash Sharma ji, Chairman of the Kishangarh branch, Mohit Jain and his team, Chairman of the Alwar branch, Mr. Amit Agarwal and his team, Chairman of Bikaner branch, Ankush Chopra, and of course, Jheel was also there, Jheel Daga was also there, Chairman of Chittorgarh branch, Yogesh Kabra ji, Chairman of Shri Ganganagar branch, Dheeraj Kumar Leela ji, of course, Regional Council member, we couldn't hear him, CA Nitin Gupta ji, and above all, of course, the moderator of today's program, Yogi Vallabh Bagri ji, ladies and gentlemen. Well, friend, I have to talk to you about planning through HUF and of course, succession planning. I cannot explain you anything about HUF before I take up something of succession planning, not in very detail, but I have to tell you something of succession planning before I come to HUF. Because it is a myth. What has happened is, if somebody dies, some male member dies, people think HUF can be formed there and then. This is absolutely wrong. Gone are the days. It was possible prior to 1956 that if some male member used to die and if we could make a HUF out of it, it is not possible now. I'll explain that. Let us come to Section 8, Section 6 of the Hindu Succession Act. But before that, we have Hindu law. Hindu law at one time was not codified law, but certain laws have been codified, even in the Hindu laws also. Hindu Marriage Act, Hindu Special Marriage Act, Hindu Adoption Act, Minority and Adoption Act, and of course, one very important act is Hindu Succession Act 1956. For succession planning, there are two acts. One is Indian Succession Act 1925, another is Hindu Succession Act 1956. If a person dies intestate means without writing a will, then what act is applicable is Hindu Succession Act 1956. But he can always write a will. And if there is an estate death, that means he has written a will, there is a testamentary document, then we call it, what chapter is applicable or what law is applicable is Indian Succession Act 1925. So for Hindus, there are two laws.
Indian section 1925. If there is a will, there is a testamentary document, and if there is no will, it is Hindu section 1956. For Muslims, there is separate Shariat law, because it is also not a codified law. Shariat, separate Shariat law for Shias, separate Sharia laws for Sunnis. All other Christians, Jews, Parsis, we have only one act, codified law, Indian Succession Act 1925. So for Hindus, there are two acts. One, of course, is Indian Succession 1925, and the second is Hindu Succession Act 1956. When I write a will, I can write a will in name of anyone. I can give it to anybody, my family member or any outsider also. I can write a will. And will can be written on a piece of paper by making a wish on that paper and then putting your signatures, and 2 witnesses are required. Will, you can get it registered, you may not get it registered. But what happens is it is not an irrevocable will. You can change your wish, you can change your will at any time you want, and the last will only will prevail. The others will have no validity. So my point is, will, I am not taking will, I just mentioned to you, but by way of a will, I can give my property to anyone I like it. Anyone I like it, I can will my property to Mr. Prasanna Kumar. There is absolutely no problem. And there is no tax on that also. There is no tax on that also. But at the same time, there is another law when I die intestate. Intestate means without writing a will. And if I die intestate, and if a male Hindu, section 8 to section 13 are applicable. If a female Hindu dies, section 14, 15, and 16 are applicable. I'm taking you to section 8 of the Hindu Succession Act. When you have your individual asset, you have your self-acquired asset, you have your own assets, what will happen? If a male Hindu dies intestate, that means without writing a will, his property, his estate will go to the legal heir of class 1. It goes to legal heir of class 1 in individual capacity and in equal ratio. Please remember very important things. When I die and I have not written a will, my property, my estate will go to my legal heir of class 1. Legal heir of class 1. And if there are more than one legal heir, it is said in equal ratio. And in what capacity they get it? In their individual capacity. So if I die, my estate will not become HUF of anybody. HUF aise nahi banti hai. It will go to my legal heir in individual capacity. They cannot form HUF with that. They cannot form HUF with that. हम जमाने में बने 1956 से पहले कुछ भी कर सकते हैं. करने वाले तो आज भी कर रहे हैं. क्योंकि there are 2 topics in income tax nobody knows. One is of course Hindu undivided family. The second is charitable trust. सब गलती करते हैं. And हमें तो फिर भी कुछ आता है, उधर तो कुछ भी नहीं आता है. उधर का मतलब आप समझ गए. I need not mention to you, but let me tell you, now they have become very clever. Now there are technical unit, there are verification unit, and there are so many units which have been formed. So be careful about it. So if I die, my property will go to my legal heir of class 1. If there are more than one legal heir of class 1, equal ratio, and in their individual capacity. Now, if there are 4 legal heir, 1/4, 1/4, 1/4 of class 1. If there are 3 legal heir of class 1, 1/3, 1/3, 1/3. If there are only 2 legal heir of class 1, 50-50. If there is only one legal heir of class 1, only one, 100% will go to him. But if there is no legal heir of class 1, no one in the class 1, then it goes to legal heir of class 2. Legal heir of class 2. And in the legal heir of class 2, there is entry 1, entry 2, entry 3, entry 4, entry 5. Entry 1 has a preference over entry 2, 3, 4. Entry 2 has, if there is no one in entry 1, then entry 2 will have a preference over entry 3 and entry 4. If there is no one in entry 1 and entry 2, then entry 3 will have a preference over entry 4 and 5. If there is no one in 1, 2, 3, then this way, this will happen. So let me tell you, if there is no legal heir of class 1, and there is no legal heir of class 2, then it goes to agonists. Agonists is father relations.
which are not covered under the first two. It goes to aggregate. And there are no legal heir of class 1, no legal heir of class 2, and there are not even any single aggregate. It goes to cognates. Cognates means mother relation, which are not covered above. These are the say. And Prasanna Kumarji, if there is no legal heir of class 1, no legal heir of class 2, no aggregates, no cognates, then I always say, for what have you come to the world? It will go to the government of India. It will go to the president of India. It will go to the government of India. Now the question is, who are legal heir of class 1? Who will get in equal ratio? Legal heir of class 1 is number 1, wife. Wife is a legal heir of class 1. She will get the share. Number 2, sons. Number 3, daughters. As many number of sons and daughters. You may have only one son, one daughter. It is a different thing, but you have more than son and daughter. They will all get equal ratio. And there is one more legal heir of class 1. Legal heir of class 1. And that is mother. Mother, whether independent or dependent, gets equal share in class 1. Suppose, Prasanna Kumarji, I have my wife, my mother, my son, my daughter. If I die intestate, 1/4 will go to my mother, 1/4 will go to my wife, 1/4 will go to my son, 1/4 will go to my daughter. Equal ratio. Wife will get the same amount, which the mother will get. And then son, but if you have 2 sons, 1 daughter, and let's say mother and father, there are 5 people in class 1, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Clear, sir? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Now I don't have mother. So mother is no more. And if I die now, mother will not get any shares because she is no more. Then who will get? My wife and my children. Equal ratio. Wife, let's say wife, 2 children. 1/3, 1/3, 1/3. Wife, 3 children. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Wife with 1 child. 1/2, 1/2. This is the system we have. Nitin has joined now. Nitin was has a technical problem. So he has joined and welcome him. There are regional person, Nitin Gupta ji. So coming back. Thank you. Now, wait a minute. I don't have wife also. I lost my wife about 6 years back due to something. So I don't have wife. So she will also not get share. So if I die now intestate, who will get the share? Mother is not there. Wife is not there. Had they been there, they would have got the share. Since they are not there, nothing is there. Now, everything will go to my children. If I have 2 children, half. If I have 3 children, 1/3, 1/3. I have used the word children. Daughter is also a child. Daughter gets the equal share. And this is right from 1956, not today. But the Hindu undivided family is a different statement, 2005, 99, 2005 we talk about. But otherwise, a daughter is getting this share right from 1956. Whether married or unmarried doesn't make any difference. So now, if I have 2 children, 50-50. 4 children, 1/4, 1/4, 1/4, 4. आजकल 4 कहाँ होते हैं? 2 भी नहीं होते, लोग तो 1 ही करते हैं. तो जितना भी है 100%. Suppose 2 children, 50-50. Clear? Now, wait a minute. Some unpleasant things I'm going to talk, but you have to face the word, so you cannot ignore it. What can happen is always there. Suppose there is a person who had a son, but son pre-diseases the father. There is a person who had a son, he pre-diseases the father. Pre-diseases the father. And now the father dies. The question will be asked, how will this property will go intestate? We will ask again one question. The question will be, Yogesh Kavra ji, the question will be, was that son who had pre-disease married or unmarried? Was he married or unmarried? If he was unmarried and he has expired, he has pre-disease, nothing will go. Nothing will go to that person. But if he had been married and he pre-diseases the father, and now the father dies, what would have been his share? Had he been alive on that day, will go to his family. His family means his legal heir.
that is his wife and children in equal ratio. Please note, Kabra ji, his wife and children in equal ratio. I'm taking a case, the son has already expired, but son was married. Son has a wife and 2 children. What would have been his share had he been alive? Now the father dies, what would have been his share? Suppose his share had been, because there is a wife and there were 1 child more and he was also there. Had he been alive, he would have got 1/3, let's say. If he had got 1/3, this 1/3 will go to his family member. Who are the family member? Wife and children. If there is only wife, entire will go to wife. If there are children also, equal ratio. Out of 1/3, 1/3 of that will go to wife, 1/9 will go to the son of that predeceased son, and 1/9 will go to the daughter of the predeceased son. Is this clear, sir? Is this clear? Now, predeceased son of a predeceased son. Very unfortunate. That man is alive and his son has expired, his grandson has also expired, he's alive, but I can't help it. What would have been his share had he been alive will go to his legal heir, that is his family, if the family is there. If the family is there, will go to his family, that his family will be his wife, predeceased son of a predeceased son, his wife and children. Now coming to the daughter. Now, one share, daughter gets the equal share. Am I right? But if suppose daughter also predeceases the father. Daughter predeceases the father. Now the father has died and daughter was there, but she has predeceased. Again, a question will be asked, was that daughter married or she was not married at the time when she expired? If she was not married, nothing will be going to the daughter. If the daughter was married and she predeceases the father, now the father dies, what would have been the daughter's share had she been alive? Again, I'm repeating the word. Had she been alive, kya share hota? I'm all the time saying Prasanna Kumarji, that's why I'm speaking 100% English. But I didn't realize that now I'm talking to the whole of Rajasthan. So I must be speaking in Hindi also. I am very comfortable in Hindi, sir. I am comfortable in Hindi. Okay. So had she been there, what would have been her share? That will go to her legal heir. Who are the legal heir, Yogi ji? Legal heir husband nahi hoga. Nahi. Sirf uske bachcho ko milega. What would have been the share of that daughter who had predeceased? That share will go to her children if they are there. In equal ratio, go to the children in the equal ratio. Similarly, predeceased son of a predeceased daughter or predeceased daughter of a predeceased son. If it is a predeceased son of a predeceased daughter, then what would have been the share that will go to the legal heir of the predeceased son? And similarly, what would have been the share of the predeceased daughter will go to the legal heir of a daughter. Clear? लेकिन एक चीज समझा दूं, ये जो प्री डिजीज वाली बातें हैं, ये ग्रैंडसन वगैरह का कोई हक नहीं है नितिन जी. अगर बाप जिंदा है तो ग्रैंडसन का कोई हक नहीं है. अगर मेरा सन जिंदा है, मेरी डॉटर जिंदा है, तो मेरे पोता, मेरी पोती, मेरे बेटी के बच्चों का कोई हक है ही नहीं. क्योंकि क्लास 1 में तब कौन आएगा? कौन आएगा? वाइफ, चिल्ड्रन, मदर. वाइफ नहीं है, चिल्ड्रन, मदर नहीं है, चिल्ड्रन तो है ना, ग्रैंड चाइल्ड नहीं आएगा. अमित अग्रवाल जी, ग्रैंड चाइल्ड नहीं आएगा. कभी सोचो मैं ग्रैंड चाइल्ड बोल रहा हूं. ग्रैंड चाइल्ड तो तभी आएगा जब सन प्री डिजीज हो जाएगा. एम आई राइट? ग्रैंड चाइल्ड तभी आएगा जब सन प्री डिजीज हो जाएगा या डॉटर प्री डिजीज होगी, तो ग्रैंड चाइल्ड का शेयर है. अदरवाइज पोता, पोती, दोता, दोती का कोई हक नहीं है अपने दादा की प्रॉपर्टी. अगर उनका माँ या बाप जिंदा है तो उनका कोई हक नहीं है इन दी व्हाट यू कॉल अंदर हिंदू सक्सेशन राइट. दे विल कम इनटू द पिक्चर इफ देयर इज अ प्री डिजीज सन एंड देयर इज अ प्री डिजीज डॉटर. क्लास 1 समझ में आ गई?
क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन सपोज कीजिए एक भी नहीं है, नाइदर मदर नॉर वाइफ नॉर चिल्ड्रन है, भगवान ना करे प्री डिजीज हो गए, या था अनमेरिड था वो भी प्री डिजीज हो गया, तो किसको जाएगा? लीगल ईयर ऑफ क्लास 2। अब जाएंगे लीगल ईयर ऑफ क्लास 2। हु कम्स अंडर इट? एंड अंडर क्लास 2, अंडर क्लास 2 प्रकाश जी एंट्री आती है, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, एंट्री 5, एंट्री वाइज जाएगा। एंट्री 1 में जितने भी लोग होंगे उनको मिलेगा। एंट्री 1 में आ रहा है क्लास 2 में फादर, फादर 100% फादर को जाएगा, उसके साथ कोई लिंक्ड नहीं। फादर, फादर को शेयर तभी मिलेगा जब माँ भी नहीं थी, वाइफ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे, और उनमें एक भी होता तो सारे के सारा उनको चला जाता। तो फादर कब आएगा? जब क्लास 1 का कोई नहीं है तो क्लास 2 में 100% फादर को जाएगा। अगर किसी मेल हिंदू की डेथ हुई तो, मेरे तो फादर ही नहीं है, मेरे तो चलो बच्चे हैं वो तो अलग बात है, फादर को जाएगा। अगर फादर नहीं है तो फिर एंट्री नंबर 2 में जाएगा, और एंट्री नंबर 2 में जितने भी लोग होंगे इक्वल रेशियो में लेके जाएंगे। वेरी फर्स्ट इक्वल रेशियो। कौन है एंट्री नंबर 2 में? फादर है तो खत्म, फादर नहीं है तो मैं एंट्री 2 में जा रहा हूं। एंट्री 1 है जब प्रेफरेंस ओवर एंट्री 2। अगर एंट्री 1 में है ही कोई नहीं और क्लास 1 में कोई था ही नहीं तो एंट्री 2 में जा रहा हूं। एंट्री 2 में है सन्स डॉटर चिल्ड्रन, सन्स डॉटर चिल्ड्रन एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर। कितने जिन्हें हो गए? सपोज सन डॉटर चिल्ड्रन 2 है, एक बेटा एक बेटी। सन के डॉटर के बच्चे 2 है, बेटा बेटी, और आपका एक भाई है और एक बहन, 4 हो गए। 1/4 टू सन्स डॉटर सन, 1/4 टू सन डॉटर डॉटर, 1/4 टू द ब्रदर, 1/4 टू द सिस्टर। सपोज सन डॉटर चिल्ड्रन है ही नहीं, किसके पास जाएगा? ब्रदर सिस्टर। एक भाई एक बहन है 50-50, 2 भाई एक बहन है 1/3 1/3 1/3। सिर्फ बहनें हैं 3 और भाई नहीं है और कोई, 1/3 1/3 1/3। क्लियर हो गया? ये जो एंट्री नंबर 2 में है इक्वल जाना है, जितने ब्रदर सिस्टर और सन डॉटर चिल्ड्रन है इक्वल जाना। क्लियर हो गया नितिन जी? ये तब है जब एंट्री 1 नहीं थी, अब एंट्री 2 भी नहीं है, अब एंट्री 2 भी नहीं है तो एंट्री 3 में जाएगा। एंट्री 3 में है चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग। चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग मतलब मेरे भाई और मेरी बहन के बच्चों को, चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग। लेकिन नंबर 3 का तभी आएगा जब नंबर 1 और नंबर 2 नहीं था। नंबर 2 नहीं था तभी तो नंबर 3 में गए, और नंबर 2 था तो नंबर 3 में नहीं आना था, और नंबर 1 था तो नंबर 1 में नहीं आना था, 2 में नहीं आना था, और अगर वो क्लास 1 था तो ये एंट्री आनी नहीं थी। क्लियर हो रहा ना? फिर तो इधर जाना ही नहीं था क्लास 2 में। अब ये भी नहीं, मेरे भाई और बहन के बच्चे नहीं है, या भाई बहन थे ही नहीं, किसके पास जाएगा? फादर्स फादर एंड फादर्स मदर। मेरे फादर के भी फादर अगर जिंदा है तो ही जाएगा ना। फादर्स फादर फादर्स मदर, उनके पास जाएगा। वो भी नहीं है तो एंट्री नंबर 5 हो गया। एंट्री 4 भी नहीं है, ना एंट्री 1 है, ना एंट्री 2 है, ना एंट्री 3 है, ना एंट्री 4 है। एंट्री 5 में कौन आता है? फादर्स विडो एंड ब्रदर्स विडो। अब आप समझेंगे ये फादर विडो कहां से आ गया यार? फादर विडो तो मेरी माँ होगी, अरे माँ तो ऊपर आ चुकी है, फिर ये फादर विडो कहां से आ गया? फादर विडो मीन स्टेप मदर, स्टेप मदर। फादर विडो हियर विल बी स्टेप मदर। इफ माय मदर इज देयर दैट इज ऑलरेडी इन क्लास 1, फिर इधर तो हम आ ही नहीं रहे। अगर मेरी मदर होती तो क्लास 1 में जाके खत्म हो जाता ना। तो इधर फादर्स विडो इज स्टेप मदर, और ब्रदर और ब्रदर्स विडो, सिस्टर हस्बैंड नहीं, ब्रदर्स विडो। ये भी नहीं है क्लास 2 में, आगे जाने की जरूरत है। चलो चले जाते हैं। मदर्स पेरेंट्स, मदर पेरेंट भी नहीं है तो मदर के ब्रदर सिस्टर। इससे ज्यादा जाने की जरूरत है? एग्रेड कॉग्रेड की क्या जरूरत है? इतना ही समझ आ जाए बहुत। ये रेशियो जाती है। क्लियर हुआ सर? लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। प्रसन्न कुमार जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाइल्ड, आई सेड फर्स्ट क्लास 1 कवर्स मदर,
I never said stepmother, mother. Class 1 covers wife. Okay. Class 1 covers children. Children can be minor, children can be major. Children can be married, children can be unmarried. Children can be natural, children can be adopted. But stepchild will not get share. Stepchild को नहीं मिलेगा, children की definition में नहीं आता, लेकिन वो आता है. What I said, brother, sister. एक और आ गया. Children can be legitimate, children can be illegitimate. Doesn't make any difference. Sir, Prasanna Kumari, children are never illegitimate. It is the relationship of the parents which is illegitimate. Children are never illegitimate. It is the relationship of the parent which is illegitimate. So illegitimate children also get a share. और हमारे यहाँ तो कंट्री में रिवाज है, आप सुनने वाला है. यहाँ प्रसन्न कुमार जी, children are born in nursing home और father is born in court. Do you understand? Children are born in nursing home. Father is born in court. You know that Narendra Tiwari was born in court. His son said, he is my father. He said, no, I am not his father. He says, DNA करा लो, अपने आप पता लग जाएगा, was he my father or not? So he was an illegitimate child. He never had any love for his father. He had a love for the money of the father. कि भाई अब तो इंटरेस्टेड रहता है, सारा पैसा तो मुझे दीजिए. I will get the whole share because he is my father. Are you getting my point? So legitimate or illegitimate doesn't make any difference. Married or unmarried does not make any difference. But if it is pre-diseases, I have already told you what is the point. Clear, sir? This is succession. This is succession, what I call Hindu succession. Have you noticed, Nitin ji? I said that my property after my death, if I don't write a will not go to my HUF of my son. Will not go to HUF of my son. People are making wrong thing. ये professionally पता नहीं क्या करते रहे हैं, उसको HUF बना देते थे. वो बिल्कुल गलत है. लोग मुझसे पूछते हैं फिर HUF बनती कैसे? योगी जी, HUF बनती क्या? HUF तो जिस दिन शादी हो गई HUF हो गई. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई. बनाई नहीं जाती. Automatic by creation of law है. You get married HUF. You have a child HUF. बनती नहीं है. ऑलरेडी होती है. लेकिन इनकम टैक्स कहता होगी, मुझे क्या करना है? तेरे पास तो तभी हम यू कम टू मी फॉर ओनली व्हेन देयर इज अ इनकम. फर्स्ट देयर इज अ HUF एंड द HUF इज अ कॉर्पस एंड कॉर्पस के बाद उसके बाद इनकम हो, तभी तो मेरे पास आएगा. इफ यू हैव नो इनकम, इफ योर इनकम इज लेस देन 250, अदरवाइज यू वोंट टू कम टू मी. सो HUF के लिए पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर द मनी विल कम. HUF तो बन गई शादी कराकर. HUF तो कर बन गए बच्चे पैदा करके. In Hindu law, HUF, you form a HUF with your wife. But under income tax, Prasanna Kamarji, HUF is never formed here. You need to have, this is formed like this. You need to have a descendant. Descendant. Why I'm saying descendant? Because wife is not a co-partner. And you need to have two co-partners to form HUF. You need two co-partners to form HUF. So who will be the co-partner? Descendant. Father cannot be my co-partner. Who will be my co-partner? Descendant. कौन सा होगा? जब नाम बताएंगे. अमित जी क्या होगा co-partner जो नीचे वाला descendant? Children. हैं? Children. क्या? Male child. Children. सुनना चाहता था male child. ये male chauvinistic word वाले लोग हैं. जमाना चला गया male child या son. Gone are the days. From 99-2005, even female has the same right as that of his son. So any child, whether male or female, income tax कहता है दो. अगर आगे नई HUF बनाने के लिए income tax कहता है दो होने चाहिए co-partner. पुरानी HUF में तो अगर कोई मर गया तो कोई बात नहीं, एक co-partner एक member भी हो तो HUF कंटिन्यू करती है. अगर HUF ऑलरेडी है और उसके बाद किसी की डेथ हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को पार्टनर हो और एक मेंबर भी हो तो HUF चलती रहती है. ये क्लियर हुआ? लेकिन नई HUF बनाने के लिए इनकम टैक्स कहता है यू नीड टू हैव अ डिसेंडेंट. डिसेंडेंट मींस चाइल्ड. हिंदू लॉ कहता है यू गेट मैरिड, इट इज जॉइंट हिंदू फैमिली. लेकिन इनकम टैक्स को ज्यादा मैं तवज्जो इसलिए दे रहा हूं कि हम आज इनकम टैक्स की बातें कर रहे हैं. आपने HUF बनानी है, कैसे बनाओगे? How will you form the HUF? फॉर्म तो है,
How will you get the money for HUF? Who will do? Sir, HUF is formed by way of a will. Will. I can write a will that after my death, such and such property will go to my son's HUF. By will, my son's HUF, I will say 10 crore will go to my son's HUF. There should be a recital in the will. There should be a recital in the will that it will go to HUF of my son. If you will go right, it will go to my son, then it is not HUF. No, it will go to my son means individual. You have to put a recital that after my death, such and such property, such and such estate, such and such money will go to the HUF of my son. मैंने word son बोला है नितिन जी, क्योंकि HUF मदर की नहीं होती, while फीमेल की HUF नहीं होती. हाँ, डॉटर उसमें को पार्टनर है, लेकिन डॉटर की HUF नहीं होती. HUF तो मेल की होती है, मेल lineage, मेल. So I have to write a will, or I can even write a will saying that after my death, this property will go to HUF of Nitin Gupta. कोई भी दे सकता है. सर, विल तो कोई भी कर सकता है, और विल ट्रांसफर की एंट्री में आता ही नहीं डेफिनेशन में, और विल में 56(2)(10 भी नहीं लगता. विल में 56(2)(10 भी नहीं लगता. अगर मैं गिफ्ट दे देता हूं आपकी HUF को, कोई 56(2)(10 नहीं लगता. प्रॉपर्टी गिवन बाय वे ऑफ गिफ्ट, पहले तो 47 कहता है इट इज नॉट ए ट्रांसफर, 56(2)(10 कहता है इट इज नॉट टैक्सेबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मेरा पॉइंट ये है कि मैं किसी को भी विल कर सकता हूं. जरूरी थोड़ी है कि अपने बच्चों को करूं. एनीवन आई लाइक. तो आप भी किसी से कर सकते हैं. आपको अपनी HUF बनानी है, किसी की विल से बनवा लो. लेकिन HUF बनने में तो टाइम लगेगा. जब तक वो मरेगा नहीं, HUF बनेगी कैसे? क्योंकि विल तो तभी एग्जीक्यूट होगी व्हेन ही डाइज. तो कैसे HUF बन जाएगी? डेथ के बाद ही बनेगी ना. एक और तरीका है, गिफ्ट ले लीजिए 2,51,000. मैंने जानकर 251 का बताऊंगा. प्रसन्न कुमार जी, टेक ए गिफ्ट ऑफ 2,51,000. File a return of income. This gift is more than 50,000 rupees. So section 56(2)(10 is applicable because you have received a gift from a person more than 50,000. ठीक है, रिटर्न भर दीजिए. 2,50,000 exempt. 1,000 tax 50 rupees plus 4% 2 rupees. Pay 52 rupees to the government and you form an HUF by a sum of rupees 2,51,000. डिपार्टमेंट भी खुश और आप भी खुश कि बन गई HUF. 2,51,000 की गिफ्ट लीजिए सरकार को. आप कहेंगे 250 से कम क्यों नहीं लेता? अरे पता कैसे लगेगा डिपार्टमेंट को कि आपने HUF बना ली है, और 2.5 से कम लोग रिटर्न भरोगे नहीं. रिटर्न भरने से कम पता तो लगेगा कि HUF बन गई. ये है HUF का नाम. 2,51,000 की गिफ्ट लीजिए. सर, वैसे प्रसन्न कुमार जी, नोबडी वांट्स टू गिव टू एनीबडी. वो गिफ्ट को देता थोड़ी है. हमारी कंट्री में तो गिफ्ट ली जाती है, देता कौन है? गिफ्ट कोई नहीं देता है, गिफ्ट ली जाती है. रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है. कितना नेशनल इंटीग्रेशन है हमारी कंट्री में. सुलेमान, अरे शर्मा भी कृष्ण कुमार को गिफ्ट दी. कितना प्यार मोहब्बत है नहीं है. तो हमारे यहाँ तो गिफ्ट ली जाती है, गिफ्ट दी थोड़ी जाती है. अभी भी रिलेटिव से जो गिफ्ट लोगे वो माफ है, नॉन रिलेटिव से टैक्सेबल है. तो नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लोगे ना, रिलेटिव से गिफ्ट लेके क्या फायदा? क्योंकि रिलेटिव, अगर आप मेंबर से गिफ्ट लेंगे, ले सकते हैं. यू कैन टेक ए गिफ्ट. HUF का कोई रिलेटिव नहीं होता. HUF का रिलेटिव, इनकम टैक्स ने कह दिया, मेंबर ऑफ द HUF इज ए रिलेटिव ऑफ HUF. ठीक है, मेंबर से लेंगे तो सेक्शन 64(2) लग जाएगा. Where is self-acquired property is converted into HUF or given as a gift to the HUF or thrown into the hodgepodge of the HUF, the income from the transfer of that asset shall be taxable in the hands of the transferor. तो 64(2) लगने की वजह से मेंबर से गिफ्ट मत लीजिए, किसी से भी ले लीजिए. मेरे से ले लीजिए, योगी मेरे को दे सकता है 2,51,000 की गिफ्ट, मैं बना लूंगा. लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए. ये नहीं है पैसे जमा करा के गिफ्ट दे दो, ये नहीं होना चाहिए. गिफ्ट अगर जेन्युइन नहीं हुआ तो 78% टैक्स लगेगा. 78% सेक्शन 115 BBE. बी केयरफुल, गिफ्ट शुड बी जेन्युइन. अब जेन्युइन का मतलब समझना क्या है कि जेन्युइन आपको पता हो कि जेन्युइन है, कि जेन्युइन गिफ्ट होगी तो आपको. अरे आप 2,51,000 की क्या, 4,01,000 की गिफ्ट ले लो. 4,01,000 क्या करो, 2.5 लाख रुपए माफ ले लो, 1.5 लाख की ATC ले लो और 1,000 रुपए का टैक्स दे दो, 52 रुपए हो गया.
अरे 4,51,000 की 4,51,000 की गिफ्ट दे दो, 4,51,000, 2.5 लाख माफ करा दो, 1.5 लाख ATC ले लो, 50,000 ATD ले लो मेडिकल का, और बाकी 1,000 पे चलो। ये तो आपके हाथ में ना कितना अमाउंट चाहिए और कितनी गिफ्ट ले सकते हैं, वो गिफ्ट लीजिए। आप अपने फादर से भी गिफ्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फादर तो गिफ्ट देगा HUF को। HUF इज नॉट द रिलेटिव ऑफ फादर। फादर से ले लो, मदर से ले लो, भाई से ले लो, किसी से भी ले लो गिफ्ट यार अपनी HUF के लिए। तो यू कैन टेक गिफ्ट फ्रॉम एनीबडी एंड यू कैन फॉर्म एन HUF। Is this clear? How to form a HUF? There are only two ways of forming a HUF after 1956, either by way of a will or by way of gift. No other way. HUF तो already है। जिस दिन शादी हो गई उस दिन तो आपकी HUF बन गई, और बच्चा हो गया तो पक्का इनकम टैक्स में भी बन गई। लेकिन इनकम टैक्स कहता है मेरे पास क्या करने आ रहे हो, जब पैसा आएगा इनकम कमाओगे तो मेरे पास आ जाना और आप रिटर्न भर देना। तो क्लियर हो गई HUF कैसे फॉर्म होती है। मुझे लोग कहते हैं HUF बनाने की क्या जरूरत है, फायदा क्या है इसमें। सबको पता है HUF इज सेपरेट एसएससी, सेपरेट एसएससी है, ठीक है ना। मैं कहता हूं सेपरेट एसएससी है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट HUF बनाने का 1,90,000 पर ईयर है, 1,95,000। मैक्सिमम बेनिफिट HUF का 1,95,000 रुपीज पर ईयर है, उससे ज्यादा नहीं है। आप कहेंगे कैसे, सुन लीजिए। देखिए HUF की इनकम, HUF की 10 लाख रुपए की इनकम, सपोज बनाओगे कैसे वो बात की, HUF की 10 लाख की, तो पहला 2,50,000 रुपए आपका 30% बच गया। एम आई राइट? क्योंकि अगर आपकी इनकम में जुड़ता तो यू हैड पेड 30%, सो 2,50,000 into 30, 75,000। क्लियर? यू सेव्ड। एग्रीड सर अमित जी? 75। Next 2,50,000 you have to pay 5%. Am I right? How much did you save? 25%. 25% into 2,50,000, 62,500. 62 plus 75, 137,500. Clear? अगले 5 लाख पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं? 20%. Am I right? Yes. कितना सेव किया? 10%. 10% of 5,50,000. Am I right? 1,37,000 plus 50,000. 1,87,500 plus 4%, 7,500, टोटल 1,95,000 बचता है एक सेपरेट एसएससी बनाने पर ईयर। अगर 10 से ऊपर आमदनी है ना HUF में तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी अपनी होती तो भी 30 ही लगता। तो अच्छा क्या करते हैं, हम एक सजेस्ट करते रहते हैं, जब भी आमदनी 10 से ऊपर शुरू हो जाए आनी तो उसको बांट लो। शेयर ऑफ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर साल, एवरी ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितना करना चाहते हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टोटली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर अंडर सेक्शन 10(2). वो एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या करो, बाकी पैसे बांटते रहो ताकि वो अपनी इनकम में ले ले, क्योंकि अपनी इनकम के लेकर भी 30% देना है, यहाँ भी 30 देना है। तो क्या है ज्यादा, क्योंकि HUF में कई प्रॉब्लमें हैं। HUF की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। HUF को कोई लोन नहीं देता है, HUF में कई प्रॉब्लम। लेकिन HUF की अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम है, तो कम से कम 10 लाख की इनकम तक तो आपको एक सेपरेट बेनिफिट मिलता है। 10 के ऊपर तो बेनिफिट कोई फायदा ही नहीं है। आप हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और एक और चीज बताऊं अमित जी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर एग्री नहीं करते तो इक्वल होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू आवर कोर पार्टनर और मेंबर। उसमें अगर इक्वल नहीं, वाइफ को भी वो कह देते हैं मेंबर, वो होगा। अगर आप चाहते हैं ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना या सारा एक को देना, तो सारे मेंबर्स शो डिसाइड एंड देन यू कैन गिव इट टू एनी वन और मोर देन। ये आपकी अपनी डिसीजन है, हाउ डू डू इट। बट जब भी ऐसा करना हो MOU कर लीजिए, वहां पे सबके सिग्नेचर करा लीजिए दैट वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन दैट दिस अमाउंट में बी गिवन टू XYZ जो भी है। ये गिफ्ट नहीं है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये गिफ्ट नहीं है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर है? क्लियर है that this is share of profit you can take. What kind of income HUF can earn? HUF can earn income under 3 head: house property, business and profession, capital gain. These are the 3 incomes where the HUF can make money.
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो एचयूएफ शेयर में भी लगा सकता है थ्रू दी कर्ता, एचयूएफ प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है थ्रू दी कर्ता और एनी मेंबर। एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती है, होती प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? कर्ता और मेंबर, बट यू हैव टू गिव ऑन द व्हाट यू कॉल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू नेम ऑफ कर्ता थ्रू एचयूएफ, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ थ्रू दी कर्ता यू हैव टेकन। ठीक है सर। एचयूएफ की प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन हो सकता है, एचयूएफ की प्रॉपर्टी पे रेंट आ सकता है, एचयूएफ बिजनेस भी कर सकता है प्रोवाइडेड कैपिटल लाए और बिजनेस शुरू कर दे। एचयूएफ कैन डू बिजनेस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन सीए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। ये तो प्रसन्ना कुमार जी ने लॉ बनाया, मैंने थोड़ी बनाया। लेकिन एक शुरू हो गया, वो है F&O बिजनेस। F&O can be done by HUF also, because now our law permits that future and option can be done by the chartered accountant. Am I right, sir? Prasanna Kumar ji, future and option can be done by chartered accountant. Earlier it was not allowed. So even my HUF can do future and option. Why? Because I may be a karta. Otherwise, HUF cannot do business where I am a karta. कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं करता हूं तो मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बिजनेस नहीं कर। लेकिन रुकिए, अगर बिजनेस करना चाहता है तो किसी और अडल्ट मेंबर को कर्ता बना दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए। बाय ट्रेडिशन जो एचयूएफ बनाता है कर्ता बाय ट्रेडिशन होता है, बट इफ यू वांट somebody else to be कर्ता, all the members may decide and you can choose any adult member to be a कर्ता, any adult member to be a कर्ता। जरूरी नहीं है कि एल्डेस्ट चाइल्ड करता होगा। देखिए एचयूएफ कोई तो बनाएगा, सपोज एचयूएफ मैंने बनाई तो मैं करता पहला हूं। ओरिजिनल एचयूएफ प्लीज, ये थोड़ी है मैं फादर की एचयूएफ की बात नहीं कर रहा। सपोज एचयूएफ नितिन जी ने अपनी एचयूएफ बनाई, नितिन जी ने कहां से बनाई? या तो गिफ्ट आई ली होगी या नितिन जी को रिसाइटल से वो आया होगा, बिल से आई। नितिन जी की प्रॉपर्टी आ गई, एचयूएफ जी कर्ता बन गए। अब नितिन जी नहीं बनना चाहते, they will decide that I don't want to be a karta. You can take anybody to be a adult member, provided all of them agree to be karta. ठीक है सर, मैंने adult member बोला है। नितिन जी, adult member can be your daughter, adult member can be your son, but it cannot be wife. Wife is not a co-parcel, so she cannot be a karta. But daughter is a co-parcel, she can be a karta. Son is a co-parcel, she can be a karta, provided the age is above 18 years. Clear? अब मैं आगे बढ़ूं। Suppose I die और मेरी HUF है, will HUF be finished? No. King is dead, long live the king. Am I right? Karta is dead, long live the karta. If I want, I can continue. If I want, I can dissolve. But if I want, I can continue. My father died. So who will become karta of the death of the father? पहले तो जिसने एचयूएफ बनाई वो करता था, जिसने बनाई, जैसे नितिन जी ने बनाई, नितिन जी करता, मेरे फादर ने बनाई, फादर मेरे करता है। फादर की डेथ हो गई तो कौन करता बनेगा? Who will be करता? Anyone? जिसने बनाई सर, वो तो मर गया। तो उसके बाद eldest child, eldest child, please note the word child, not the son, not the son. From 99-2005, now it is eldest child. Prior to 99-2005, it was eldest son, eldest child. ये judgment आ चुकी है, फूलवती versus प्रकाश, that eldest child will become the elder. वो अलग बात है कि वो बनना नहीं चाहे तो anybody else can become, but by convention eldest child, be it son or a daughter, does not matter. Daughter is married or unmarried, does not matter. Daughter may be married and she is married to somebody else, लेकिन फिर भी वो मेरे अपने फादर की एचयूएफ की करता हो सकती है, लेकिन वही डॉटर अपने हस्बैंड की एचयूएफ की करता नहीं हो सकती। हस्बैंड की एचयूएफ की करता नहीं हो सकती, अपने फादर की एचयूएफ की करता होगी। और मैंने क्या बोला?
By convention, if she is eldest, she will become. ये मत सोचिए कि बेटा बनेगा, बेटे वाला जमाना चला गया. Any child who is the eldest by convention becomes कर्ता. और आप HUF चलती रहती है प्रोवाइडेड एक को पास्टर और एक मेंबर आप चला सकते हैं. सर मेरी अपनी HUF, मेरे फादर की HUF भी मैं चला रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की HUF भी मैं चला रहा हूँ, और तीनों का मैं करता हूँ. I can be a karta of all the 3 HUF, even 4 HUF. क्योंकि I am karta my HUF because I formed it. I became a karta my father's HUF because my father died. I was the eldest child, or I was made to do that. My grandfather died, and my father also is not there. So my grandfather HUF is also going on. I can become karta. So you can be a karta more than one HUF. But can I be a karta my father? Can I be karta my son's HUF? No question. Son HUF का karta नहीं होता, lineal ascendant का होता है, descendant में नहीं आता. ठीक है ना? So मैं descendant का करता नहीं हो सकता, मैं ascendant का करता हो सकता हूँ, मैं अपनी father की HUF का करता हो सकता हूँ, मैं अपने grandfather की HUF का चल रही है, अगर चल रही है तो उसका भी करता हो सकता, और मैं अपनी HUF का तो हो ही सकता. वो तो कोई जो मैंने बनाई वो तो मैं हुई, वो तो मेरे मरने के बाद कोई और बन सकता है, या मैं नहीं चाहता तो कोई भी बन जाए. That is a different story. So you can be a karta more than one HUF. मैं आहिस्ता से क्वेश्चन जो आने हैं ना उसके जवाब दे रहा हूँ कि आप एक के HUF के करता हो सकते, लेकिन एल्डेस्ट चाइल्ड करता हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड. उसके मरने के बाद कौन होगा? नेक्स्ट एल्डेस्ट चाइल्ड. ठीक है. देखिए 9/9/2005 के बाद ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है. डॉटर सेक्शन 6 कहता है when a male Hindu dies and he is a member of HUF, if he is a male, the daughter by birth will have the same right as that of his son. Daughter by birth will have the same right as that of son. जब मैंने HUF बनाई तो पहले मेरा एक बेटा था, सपोज HUF बन गई, एक दूसरा बेटा हो गया, वो बाई बर्थ बन गया है, उसको मैं निकाल नहीं सकता, उसको मैं नहीं कह सकता नहीं 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 तू नहीं बनेगा, और ये भी नहीं कह सकता फादर सन ए एक HUF, फादर सन बी 2 HUF. ऐसा नहीं होता है. नो, देयर इज ओनली वन. whenever who gets birth in the family, वो उसका मेंबर है, उसका को पार्टनर है. So my son, my another son, my daughter by birth will become co-partner. और मेरे बेटे का बेटा हो गया या मेरे बेटे का बेटी हो गई, वो भी बाई बर्थ बन जाते. मेरी HUF में मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे का बेटा और बेटी दोनों हैं मेरी HUF के को पार्टनर. उसके बाद मेरे बेटे का बेटा और उसकी वाइफ दोनों, उसकी बेटी दोनों हैं मेरी वाइफ. लेफ्ट साइड देखिए, ये देखिए जरा, फादर ने HUF बनाई, नीचे कौन आया? बेटा. राइट साइड में कौन आया? बेटी. अब बेटी को तो यहाँ रोक दो, वो को पार्टनर है, उसके बच्चे नहीं. उसके बच्चे को पार्टनर क्यों नहीं? नाना की प्रॉपर्टी में उसके बच्चों को पार्टनर क्यों नहीं? क्योंकि दे बिकम को पार्टनर इन देयर फादर्स HUF. वो बच्चे अपने फादर HUF में चले जाएंगे, नाना की HUF में नहीं. बेटी के बच्चे, बेटे के नहीं, बेटी के बच्चे. पर बेटी को पार्टनर है फादर. अगर बेटी मर गई तो उसका शेयर बच्चों को मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन दे कैन नॉट बी को पार्टनर ऑफ नानास. एम आई राइट? लेकिन मेरा बेटा मेरा को पार्टनर है. मेरे बेटे के बच्चे, बेटा हुआ और बेटी हुई, वो डॉटर भी तो को पार्टनर की है. दोनों मेरे दादा की प्रॉपर्टी के हकदार हैं. फिर बेटी को भूल जाओ. फिर बेटे ने शादी करा ली, ग्रैंडसन ने, उसका बच्चा हुआ, बेटा और बेटी, वो भी को पार्टनर. सन, डॉटर को रोक दो, सन चिल्ड्रन, देन सन चिल्ड्रन में जो सन है उसके चिल्ड्रन, 4 जनरेशन का. नंबर 1 was फादर, नंबर 2 सन, नंबर 3 सन ग्रैंडसन, नंबर 4 ग्रेट ग्रैंडसन. यहां तक जाता है HUF के को पार्टनर. जो ग्रेट ग्रैंडसन का बेटा है वो को पार्टनर नहीं है, मेंबर है. ही इज नॉट ए को पार्टनर, मेंबर. ये 5 नंबर 4 नंबर में कब आएगा? अगर 2 नंबर की डेथ हो गई, 1 नंबर नहीं डेथ हुई,
तो 5 नंबर 4 नहीं बनेगा। 3 नंबर की डेथ हो गई, 1 नंबर की नहीं हुई, वो 4 नहीं बनेगा। 4 नंबर की डेथ हो गई, 5वां नंबर 4 नहीं बनेगा। जब तक 1 नंबर नहीं जाएगा तब तक 5 नंबर 4 नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 4 जनरेशन सन, सॉरी फादर सन के डॉटर मैंने अलग किया है। डॉटर को याद रखना, सन के जो डॉटर है वो भी आएगी, लेकिन सन का सन और सन के सन और उसकी डॉटर। क्लियर है? दे आर co-parts. They are co-parts. They have a full right. They can ask for partition, but my wife cannot ask for partition. My son's wife cannot ask for partition. My son's wife cannot ask for partition. My son can ask for partition. My granddaughter, son's daughter can ask for partition because she is a daughter of a co-person. She is a daughter of a co-person. She can ask for partition. मेरा son-in-law partition नहीं कह सकता. मेरी डॉटर के बच्चे पार्टीशन नहीं मांग सकते, और मेरी डॉटर मांग सकती है. मेरे पोता मांग सकता है, मेरी पोती भी मांग सकती है. इसमें तो पोता पोती का बाय बर्थ राइट हो जाता है. बाय बर्थ राइट होता है, उसमें नहीं होता इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में. इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में कहता पोते का तो हक ही नहीं है. पोते का हक तो तब आएगा जब उसका बाप मरेगा. बट इन दिस केस द चाइल्ड बाय बर्थ, grandchild by birth, great grandchild birth become the co-person. Are you getting my point? But right side is the daughter. Daughter children not there. Even son or daughter is a co-person, but daughter children will not. Clear, sir? Clear? कि हम क्यों कर रहे हैं? मेरे मरने के बाद क्या होगा? What will happen to us? I will ask a question. Did I write a bill of my share in the HUF? If I write a bill, my share in the HUF, then it will go to my legal heir, in their favor. But if I don't write a bill, and if a male Hindu who is a member of HUF dies, his share will go to his legal heir of class 1. His share. His share का मतलब समझ गए? जो उसका शेयर HUF में बनता है. अब आप पूछेंगे HUF में शेयर कैसे निकाला जाए? मैं कहूंगा पर कैपिटा, पहले पर स्ट्राइप होता है, फिर आगे बाद में बात करूंगा. पहले जब मैं शेयर निकालता हूं ना, इफ आई डाई, आई हैव 2 चिल्ड्रन, माय वाइफ आल्सो, 1/4 विल गो टू मी, 1/4 इफ आई पार्टीशन करूं, 1/4 मेरा होगा, 1/4 मेरी वाइफ का होगा, 1/4 मेरे सन का होगा, 1/4 माय डॉटर का होगा. इसे कहते हैं पर स्ट्राइक, पार्टीशन पर स्ट्राइक. समझने में दोबारा बता रहा हूं. मैं अगर पार्टीशन कर रहा हूं अपनी HUF का, मर नहीं रहा भी, HUF का पार्टीशन कर, हाउ विल बी पार्टीशन? पर स्ट्राइक, इक्वल रेशियो. हाउ विल आई गेट? 1/4 आई विल गेट एज करता, 1/4 माई वाइफ विल गेट, 1/4 माई सन, 1/4 माई डॉटर. अगर मेरे 3 बच्चे थे तो 1/5 आई विल गेट, 1/5 माई वाइफ विल गेट, 1/5 one child, 1/5 second child, 1/5 third child. This is per strike. लेकिन रुकिए, अगर पार्टीशन करना है तो इनकम टैक्स कहता है कंप्लीट पार्टीशन अलाउड है, पार्शियल पार्टीशन नहीं माना जाता. सेक्शन 171 says that partial partition is not allowed after 31st December 1978. Partial partition not allowed. हिंदू लॉ अलाउज, हिंदू लॉ कहता है पार्शियल पार्टीशन अलाउड है, कर दीजिए. लेकिन इनकम टैक्स कहता है अगर आप पार्शियल पार्टीशन करेंगे तो वो एसेट जिस आदमी के पास जाएगी उसकी जो इनकम आएगी वो HUF को ही टैक्स देना पड़ेगा. वो HUF को ही टैक्स देना पड़ेगा. बट यू कैन गिव द एसेट, बट टैक्स ऑन दैट इनकम विल हैव टू बी पेड बाय द HUF because partial partition is not recognized under income tax after 31st December 1978. अगर मैंने कंप्लीट पार्टीशन करना है योगी जी, तो जरा ध्यान से सुनना. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपने बेटा और बेटी के साथ ही करना है. बेटे का अपनी बेटी से करेगा, अपने बेटों से करेगा, उसका वो अपने बेटों से करेगा, पूरा डाउन द लाइन अमंगस्ट ऑल कोपर्स. सपोज कीजिए मेरी डेथ होती है, मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ, पार्टीशन, डेथ रिपार्टीशन करना. मेरा एक बेटा और एक बेटी है और वाइफ भी जिंदा है, तो 1/4 तो मुझे मिल जाएगा, 1/4 मेरी वाइफ को मिल जाएगा.
1/4 मेरे बेटे को मिल जाएगा, 1/4 मेरी बेटी को मिल जाएगा। मेरी बेटी आगे नहीं बांटेगी, लेकिन मेरा जो 1/4 आया मेरे बेटे को, वो अपना बेटी और बेटी में बांटेगा। क्या करेगा? अपना बेटी और बेटी दोनों में बांटेगा। 1/4 का, उसके 2 बच्चे हैं, तो 1/4 का 1/12 उसका रह गया, 1/12 बेटे का हो गया, 1/12 बेटी का हो गया, और जो 1/12 मेरे ग्रैंडसन को मिलेगा वो अपने बच्चों में बांटेगा टिल ऑल द 4 जनरेशन। आप मेरी बात सुन रहे हैं? कंप्लीट पार्टीशन का मतलब होता है बाय मीट्स एंड बाउंड अमंगस्ट ऑल द को-पास्टर्स एंड मेंबर्स। मतलब मेरी वाइफ को भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को पर स्ट्राइप मिला है, अब वो बच्चे पर कैपिटा बांटेंगे। पर कैपिटा, पहला था पर स्ट्राइप, एक पहली ब्रांच आ गई, फादर मदर दोनों बच्चे, मदर वाला बेटी छोड़ दो, बेटा है वो अब पर कैपिटा बांटेगा। पर कैपिटा मींस इक्वल। कैसे बांटेगा? अपने 2 बच्चे हैं तो 1/12 उसको, 1/12 उसको, 1/12 उसको। बेटी को जो मिला वो आगे नहीं बांटेगी, जो उसके बेटे को मिला वो अपने बच्चों में बांटेगी, तब कंप्लीट पार्टीशन। समझ में आया सर? ऐसा किसी ने किया है? ऐसा किसी ने किया है? करते ही कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं है। लॉ तो ये कहता है 171(1) at the time of assessment, if there is a partition which has taken place, it is the duty of the karta to inform to the AO that a partition has taken place. ये ड्यूटी है। अगर आपने पार्टीशन किया है, करना तो खुद ही है, लेकिन एओ को इन्फॉर्म करना। 95% लोग इन्फॉर्म ही नहीं करते, ये जरूरी है। रीड सेक्शन 171 सबसेक्शन 1, वहां लिखा है HUF is either to assess and a partition has taken place. It is a duty that at the time of filing the return, you have to inform the AO that a partition has taken place. उसका दूसरा पार्ट सुनिए, where if you have informed the AO is duty bound. AO shall issue notice to all the members and after hearing them will pass a partition order. कभी कभी किसी ने तो इन्फॉर्म तो कर दिया होगा, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि एओ पार्टीशन ऑर्डर पास कर, कहता मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। लेकिन एओ की ड्यूटी है, जब आप इन्फॉर्म कर दें तो ही शैल इशू नोटिस टू ऑल द मेंबर्स, उनको हियरिंग देकर फिर पार्टीशन ऑर्डर पास करेगा, ताकि वो प्रूफ हो जाएगा कि भाई सब एग्री कर। लेकिन करते ही नहीं, एओ को पता ही नहीं है। पहले तो हमें नहीं पता, हम इन्फॉर्म नहीं करते, हम इन्फॉर्म कर देते तो एओ को नहीं पता होता। तो एक बार मुझे याद है 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो बहुत ही HUF का कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल था। तो मैंने एक क्लाइंट का पार्टीशन हुआ, मैंने जाके इन्फॉर्म कर दिया। कहता ये क्या है? मैं कहा इन्फॉर्मेशन है। कहता कौन सी इन्फॉर्मेशन है, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा सेक्शन 171(1) पढ़ा दिया कि आई हैव टू इन्फॉर्म यू, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। कहता थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक यू नहीं सर, अब आप नोटिस इशू करिए और पार्टीशन ऑर्डर पास करिए। कहते वो क्या होता है? क्या पढ़े लिखे आके मुसीबत कर देते हैं? ये कौन सा, हमने तो आज तक कोई पार्टीशन ऑर्डर नहीं पास किया। फिर कहते बना के ले आना, मैं कर दूंगा, नोटिस इशू कर दूंगा, मुझे नहीं पता है क्या। लेकिन ये आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, वो पार्टीशन ऑर्डर पास करे या ना करे, दैट इज सेकेंडरी इशू। अगर आप नहीं इन्फॉर्म करेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्लियर सर? इसे तो पार्टीशन कहती है कंप्लीट। अब एक सवाल मुझे किसी ने पूछा, मोहित जी कि पार्टीशन में क्या इक्वल माना जाता है? मैंने अभी इक्वल बताया था ना, 1/4 टू फादर, 1/4 टू द मदर, 1/4 टू सन, 1/4 टू द डॉटर, और फिर सन अपने नीचे जाटेगा। लेकिन इफ ऑल द मेंबर्स सो डिसाइड, if all the members so decide, there can be uneven distribution also. सारे अगर मान जाए, MOU कर लो, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और सब अगर साइन कर दें तो आप अनइवन, इवन सारा एक को दे दो, हमें क्या फर्क है। लेकिन अगर नहीं देना तो इक्वल देना, ठीक है? मैंने प्रॉफिट में भी यही कहा था, प्रॉफिट इक्वल देना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे डिसाइड कर ले तो एक को दे दो, अनइवन कर दो। तो पार्टीशन भी अनइवन हो सकता है, प्रोवाइडेड all the members agree, and if they don't agree, then partition cannot be uneven. It will have to be in equal ratio. Is it clear? Is it clear? Partition. अब डेथ हो गई, अगर डेथ होगी तो एक आदमी मरा ना, तो ये पहले क्या होता था, एक मरा बाकी सर्वाइवरशिप बाकियों को मिलेगा, वो चला गया कोई बात, दूसरा चला गया कोई बात, तीसरा चला गया कोई बात। अब ऐसा नहीं है, अब बाई सक्सेशन, मेरे मरने के बाद
मेरा शेयर का क्या होगा, व्हाट वुड हैव बीन माय शेयर हैड आई बीन अलाइव, और वो पार्टीशन होता तो मेरा कितना मिलता, 1/4. हैड देयर बीन अ पार्टीशन आई वुड हैव गॉट 1/4. दैट 1/4 माय शेयर. अगर मैंने विल लिखी है तो विल के हिसाब से जाएगा, विल नहीं लिखी है तो वो सेक्शन 8 के हिसाब से जाएगा कि मेरी क्लास 1 इलीगल एयर को जाएगा, क्लास 1 के लीगल एयर को इक्वल रेशियो में जाएगा. आप कहोगे क्लास 1 में तो होते कौन है, एक तो मेरी वाइफ भी है और एक बच्चे हैं, होते तो वही है, मैं मानता हूं, लेकिन इक्वल रेशियो में जाएगा, बाकियों का नहीं जाएगा. क्लास 1 के इक्वल रेशियो में जाएगा मेरा शेयर. एम आई राइट? आई कैन गिव इट, ये जा सकता है. लेकिन क्या होता है, 1/4 आपका तो चला गया इक्वल रेशियो में और 3/4 एचयूएफ का हो, 3/4 एचयूएफ. लेकिन जब तक कंप्लीट पार्टीशन नहीं हो जाता तो करे क्या, तो करना क्या पड़ेगा, फर्म एचयूएफ ही रिटर्न भरेगी, लेकिन 1/4 वो उनको इंडिविजुअल में जाएगा और 3/4 एचयूएफ का होगा और आप टैक्स तो पूरे पे देंगे. ये भी समझ में आ गया सर? अब एचयूएफ मैंने कहा, अब मेरे से सवाल पूछा जाता है एचयूएफ बिजनेस कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, उसके पास पैसा है तभी तो बिजनेस करेगी. सिर्फ लोन लेके बिजनेस तो नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो कैपिटल होगा, कुछ कैपिटल ले लो, कुछ लोन ले लो. लेकिन लोन एचयूएफ को बैंक लोन नहीं देता है. बैंक डज नॉट गिव लोन टू एचयूएफ, क्योंकि पता नहीं कौन पर्सनल क्या नहीं है. लोन तो कोई पर्सनल ही ले सकता है. कैन एचयूएफ टेक लोन फ्रॉम द मेंबर? एचयूएफ मेंबर से लोन तो ले सकता है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री मत लेना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो इसका मतलब है एचयूएफ की इनकम क्रिएट कर रहे हो. आर यू गेटिंग? मेरे पास 2 करोड़ रुपया मैंने एचयूएफ को दे दिया इंटरेस्ट फ्री, एचयूएफ ने 2 करोड़ रुपए वैसे कमाए, तो फिर तो आपने वो टैक्स बचा लिया ना. तो इसलिए इंटरेस्ट फ्री लोन मत देना. मार्केट रेट से अगर लोन दे तो एचयूएफ कैन गिव लोन. यू कैन टेक लोन फ्रॉम मेंबर बट यू कैन टेक गिफ्ट फ्रॉम मेंबर, बट गिफ्ट में क्लबिंग. कैन एचयूएफ गिव लोन? हाँ एचयूएफ लोन दे सकता है मेंबर को, गिफ्ट नहीं दे सकता, लोन दे सकता है. अगर एचयूएफ गिफ्ट देता है तो वो पार्शियल पार्टीशन माना जाता है, इसलिए एचयूएफ गिफ्ट नहीं दे सकता. एचयूएफ क्या दे सकता है? लोन. और लोन और टैक्स इंटरेस्ट भी दे सकता है. एओ तो खुश होगा, इंटरेस्ट भी देगा तो एओ की एचयूएफ की इनकम नहीं आएगी, एचयूएफ की इनकम नहीं होगी तो स्लैब रेट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. तो ये तो सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि लोन ले सकते दे सकते, बट एचयूएफ कैन नॉट मेक ए गिफ्ट. एचयूएफ गिफ्ट नहीं दे सकता मेंबर को, गिफ्ट ले सकता है, दे नहीं सकता. ये एचयूएफ की गिफ्ट भी हो गई. मैं ये चाहूंगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा आधा घंटा, क्योंकि मुझे भी 6:10 पे किसी ने आना है, तो आप जितने सवाल हैं उतने पूछ. मुझे मालूम है देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मुझे मालूम है क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ उनसे पूछो. बेचारों ने लिख के भेजा है तो कम से कम सवाल पूछ ले, और डायरेक्टली लाइव पूछना चाहते हैं तो लाइव पूछ. वल्लभ जी एक बार ट्राई कीजिएगा, यदि क्वेश्चन आंसर सेशन में यदि कुछ है अपने पास कुछ क्वेरीज आई हुई तो लाइव. सर 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं सर, मैं क्वेश्चंस पुट करता हूं सर. क्वेश्चन ये है सर कि someone has said that there are 10 members in a HUF and if one member demands the partition, what will happen? You'll have to go for partition. या तो उसको समझाइए या पार्टीशन कीजिए, और कोई तरीका नहीं तो उसका वो पूरा राइट है. He can ask for partition any time, but there has to be complete partition. उसको समझा दिया जाता है, मत ले भैया बाकियों का सब नुकसान होगा, तेरा जो शेयर बनता है हम आपस में गिफ्ट कर देंगे, तेरे को जो भी करना है. लेकिन पार्शियल पार्टीशन करना है तो कर, तो अलाउड हो जाएगा. लेकिन टैक्स किसको लगेगा उस इनकम पे? उससे जो इनकम आएगी वो एचयूएफ को ही टैक्स देना पड़ेगा. ये सोच के चलना. मैं मना नहीं कर रहा, हिंदू लॉ में पार्शियल पार्टीशन अलाउड है, लेकिन कई एक नया कॉन्सेप्ट है, वो करते कोई नहीं, बहुत रेयर होता है कि पहले आप पार्टीशन कर लो पूरा, फिर रीयूनियन कर लो. इतना आसान नहीं होता. लड़ाई होती तो एक कहता तो कहता मेरा भी दे दो यार, सब मांगने लग जाते हैं. सिर्फ एक नहीं, फिर सब मांगने लग जाते. क्लियर है? चलिए बोलिए. और सर एक क्वेश्चन है सर, व्हाट विल हैपन टू एचयूएफ आफ्टर 4 generations? 4 जनरेशन बढ़ती थोड़ी है. अरे 5वीं पैदा हुई तो पहला नंबर चला गया तो 5वां 4 बन गया. मैंने बोला ना, फर्स्ट गोज 5th becomes 4, सेकंड गोज 5th 6th becomes 4. अरे वही, वो तो वही करना है यार. नंबर 1 नहीं जाएगा तब तक 4 जनरेशन रही. नंबर 1 चला गया तो 5th जनरेशन नंबर 4 बन गई, फिर नंबर 2 चला गया तो 6th जनरेशन नंबर वो बन. मैंने कहा ना, कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता.
HUF कभी मरती नहीं है, आप चलाना चाहें तो चलाते रहे, पार्टीशन करना चाहे तो मरने के बाद कर दो, वो तो आपकी मर्जी है। पर HUF फादर की चल रही है, मेरी चल रही है, मेरे ग्रैंडफादर की, रिटर्न मैं ही भरता हूँ तीनों। Sir, one more question. Sir, can husband and wife form HUF under Income Tax Act by way of will? देखिए बेटा, बात ये है, इनकम टैक्स वालों को अभी तक पता नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें को पार्सर तो एक ही है। हाँ। सर्वाइवरशिप में एक हो सकता है, तो डेथ होने के बाद तो एक हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो को पार्सर नहीं है तो पार्टीशन कौन करवाएगा, पार्टीशन कौन मांगेगा? तो दो में तो पार्टीशन होता है, एक में थोड़ी पार्टीशन होता है। वाइफ पार्टीशन करा नहीं सकती और हस्बैंड तो अकेला है, तो फिर कैसे होगा? सो इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है दो हो जाए, लेकिन कब? जब नई बनानी है। पुरानी में तो एक भी चलता है, पुरानी में एक को पार्सर एक मेंबर हो सकता है, हो सकता है। HUF तो बनती है जब आपकी शादी हो गई, ऐसा कुछ है ही नहीं। HUF तो बनती शादी हो, कोई कहता है शादी के टाइम पे मैं HUF में ले लेता हूँ पैसे, सर वो पूरा टैक्सेबल है, 50,000 से ऊपर होगा तो HUF कोई रिलेटिव थोड़ी है। शादी आदमी की होती है, HUF की थोड़ी होती है। मेल या फीमेल की शादी है, वो ले सकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज गिफ्ट, नॉट द HUF. HUF cannot take a gift at the time of marriage. It is only the male or female. हाँ बोलिए बोलिए मोहित जी। सर यदि मैंने अभी मेरी शादी में पैसे आए एज अ गिफ्ट और फिर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ HUF को, वो तो जस्टिफाइड है ना? तो क्लबिंग हो जाएगी ना मेरे भाई। 64(2) सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू HUF, नो प्रॉब्लम, कर दीजिए, अलाउड है। लेकिन उससे जो इनकम आएगी वो आपकी इनकम में जुड़ेगी, तो फायदा क्या हुआ? लेकिन फिर भी फायदा होता है। सपोज करो आप 1 करोड़ रुपया कर दो अपनी HUF को, उस पर इंटरेस्ट आया 6 लाख रुपया, आप टैक्स दोगे 6 लाख के ऊपर, लेकिन पैसे किसके पास रहेंगे? HUF के पास। वो HUF उसको जो फर्दर लगाएगा वो क्लबिंग नहीं होगी। इट इज इनकम विच इज क्लब, इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब, वो कर सकते। अदरवाइज आप जो करेंगे उससे जो इनकम आएगी वो क्लब बना दिए, मेंबर से गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उससे इनकम क्लब होगी तो फायदा नहीं होता, इसलिए। और पूछिए सर। एक क्वेश्चन और है सर, माय फादर इज डाइड बट हिज चिल्ड्रन वांट्स टू क्रिएट अ HUF विद हिज मदर एंड चिल्ड्रंस। मतलब ही नहीं है, बोला नहीं, जब तक फादर की विल नहीं होगी तो होगा ही नहीं। वो तो उसका लीगल या तो विल पे लिखी हो, नहीं तो वो हिंदू सक्सेशन 8 लगेगा। हिंदू सक्सेशन में तो मदर को पूरा शेयर इधर उधर उधर बात करके। अब मैं नहीं कहूंगा कि विल बना लो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। नो, नॉट पॉसिबल, नो क्वेश्चन। हिंदू सेक्शन कहता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता है, दे कैन नॉट मेक HUF। कैन नॉट, लोग करते रहे हैं, HUF बना ली, अरे पता नहीं लगा तो कुछ भी कर लो। अरे मैं आपको बताऊं, मेरी HUF थी 1974 विद माय डॉटर, मुझे पता नहीं था डॉटर के साथ HUF बन ही नहीं सकती, मैंने बना ली। वो तो 2005 में पता लगा कि डॉटर तो पहले HUF की करता ही नहीं, को पार्सनल नहीं थी। मेरे को पता लगा, मैं मर गया, लेकिन मैं चुप रहा। 6 साल बीतने के बाद मैंने बताना शुरू किया कि मैं HUF की, मेरी डॉटर के साथ HUF। ऐसा कुछ नहीं है, वो पता नहीं लगे तो कुछ भी हो जाए, बट अदरवाइज यू कैन नॉट मेक HUF आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर विदाउट देयर बीइंग अ विल, विदाउट देयर बीइंग ए विल। Sir, one question: what is the procedure to relinquish my rights in the as a co-partner of HUF? Anytime you can relinquish, who stops you? छोड़ के चले जाओ, जाओ, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता, वो खुद कह सकता है मुझे नहीं चाहिए। relinquish तो कोई भी कर सकता है, it will remain with the HUF. I can relinquish, but my father cannot say ये मैं इस बेटे को बाहर निकाल रहा हूँ, इसको निकाल देता हूँ, इसको निकाल दूं, ये पॉसिबल नहीं। Yogesh Kabra sir has raised the hand. Kabra sir, please sir. सर एक आपने बताया था, जैसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँ सर आपसे कि जो अपना जो अगर सन की डेथ हो जाती है तो ग्रैंड सन जो है वो फर्स्ट स्टेट में आ जाता है, मतलब वो ही गॉट इक्वल राइट। सर ग्रैंड सन तो वैसे भी इंडिविजुअल में नहीं है, जब इंडिविजुअल में ग्रैंड सन तब आएगा जब फादर की डेथ हो। HUF में तो ग्रैंड सन का पूरा हक है। हाँ, इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ग्रैंडसन का कोई राइट नहीं है जब तक उसका फादर जिंदा है। और फादर की डेथ के बाद वो इक्वल राइट मिल जाएगा उसको नहीं, जो उसका शेयर था दैट वुड गो टू हिज विडो। जो सन का इक्वल शेयर था वो जाएगा उसकी फैमिली को, विडो एंड चिल्ड्रन, इक्वल रेशियो। नहीं सर, जैसे ए का सन है B
बी का जो ग्रैंडसन है वो सी, बी की डेथ हो जाती है तो तो सी बी का जो शेयर बनता था हम्म, वो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को जाएगा, इक्वल रेशो, सिर्फ एक को नहीं जाएगा। अगर सी बी की का क्वेश्चन, क्या शेयर था वही सी की शेयर, क्वेश्चन। अगर वो बी जिंदा होता तो कितना बी का शेयर होता, अच्छा, वो बी का शेयर उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को जाएगा, इक्वल रेशो, अकेले को नहीं ओके, जा सकता, सिर्फ ओके, ग्रैंडसन। ये सन बातें छोड़ दो योगेश जी, अब सन डॉटर एक ही बात है। सन वन छोड़ दो, सन और डॉटर सब दोनों को जाएगा, और अगर वो बेटा है और उसकी बीवी है तो बीवी को भी जाएगा, लेकिन फीमेल में हस्बैंड को नहीं जाता। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। Gopal sir has raised a hand. Gopal sir, please. सर कर्ता के सन्स की वाइफ भी उसकी मेंबर होगी क्या एचयूएफ की? मेंबर होती है लेकिन वो पार्टीशन नहीं करा सकती। और सर जैसे एक आदमी है, उसकी एचयूएफ है, उसकी एचयूएफ में उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसका लड़का, उसका ग्रैंडसन और उसकी सन की वाइफ मेंबर है। वाइफ है, वाइफ को कोई शेयर नहीं मिलेगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। अगेन उस सन की भी एक एचयूएफ बना रखी थी पहले, उसमें सन है, उसका भी सन है और उसकी जो वाइफ सन की अपनी एचयूएफ है ना, हाँ, उसमें उसकी वाइफ का शेयर है। तो दोनों एचयूएफ फिर भी कंटिन्यू रहेगी, सेम मेंबर है तो? आज मैं तो कहा मेरी 3 एचयूएफ चल रही है। मेरी अपनी एचयूएफ है, मेरे फादर की एचयूएफ, फादर की डेथ हो गई तो मैं बन गया करता, मेरे ग्रैंडफादर की हो गई तो मैं बन गया। भले मेंबर सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई एक्स्ट्रा मेंबर एचयूएफ किसकी है? एचयूएफ उन्होंने बनाई थी, मेरी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी अलग है, मेरी प्रॉपर्टी अलग है। मैंने अपनी एचयूएफ बनाई तो अलग है, मेरे फादर की एचयूएफ प्रॉपर्टी वो अलग है। जब तक पार्टीशन ना करो एचयूएफ चलती रहती है। ओके सर, बट सर दैट मींस कि अपन करता एक ही करता 2-3 फर्मों में करता रह सकता है, मतलब 2-3 एचयूएफ का हो सकता है। मैं हूं, मैं अपने फादर के, मैं अपने बेटे की एचयूएफ का नहीं हो सकता, अपने फादर की एचयूएफ का हो सकता हूं करता। सर आपको नोटिस देने में कोई नहीं डरेगा, आप 20 भी बता हो। ये बात, लॉ तो लॉ है, मेरे को नोटिस नहीं है। लॉ इज लॉ, लॉ इज लॉ। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके सर, अलाउड है। Sir, one more question. Okay, if I've distributed 10 lakhs of profit of my HUF, what is the tax liability? मैंने कहा ना, टैक्स देने के बाद एचयूएफ अपने शेयर बांट सकता है अपने मेंबर्स को, कोई टैक्स नहीं। सेक्शन 10(2) शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10(2) शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। पहले टैक्स एचयूएफ देगी, उसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, जैसे पार्टनर बांटते हैं ऐसे मेंबर बांट ले, हमें मना थोड़ी कर रहे, बांट ले, हर साल बांट ले। लेकिन करंट इनकम बांटनी है, एक्यूमुलेटेड इनकम नहीं। अगर एक्यूमुलेटेड इनकम बांटोगे तो पार्शियल पार्टीशन माना जाएगा। करंट इनकम बांटो, ईच ईयर इनकम। One more question. Can HUF accept loan from its member? मैंने बोला ना, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन मत लेना, नहीं तो लगेगा कि आपने इनकम कमाने के लिए एचयूएफ को लोन दिया और वहां से बिजनेस या आपने इनकम कमाई और आपने एग्जेम्पशन ली। अगर लोन अगर आप मार्केट रेट से लेंगे तो आप बाहर से भी ले सकते थे, मेंबर से भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं। Sir, can HUF accept loan from its members also? यस इट कैन। मैंने कहा ना, मार्केट इंटरेस्ट वाला, विदाउट इंटरेस्ट मत लेना, क्योंकि वो कहेगा टैक्स प्लानिंग है। टैक्स प्लानिंग को अवॉइड करने के लिए मार्केट रेट से इंटरेस्ट लेकर आप काम कर लीजिए, कौन मना करता है? I request all the participants to send their queries also. I am taking some queries. 1 minute. Whether my daughter-in-law is also a member of HUF? She is only a member. She has no right of partition. She has a right of maintenance. और वो भी उसका हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड को मिल गया तो वो उसका कोई राइट नहीं। मदर का राइट रहता है, वो तो मेंबर ही है सिर्फ। She has no right of anything. Her husband has a right. वो मेंटेनेंस है, वो अलग बात है। मेंटेनेंस भी उतने ही जितने उसके हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, बस। और बोलिए। Sir, one more question. Does the son's wife have a share in father-in-law HUF? Whether she can get share in partition? नहीं हो सकता बेटा, मैंने Sir, बोला ना, उसमें बेटे का हक है, और बेटा है तो बेटे का हक है। बेटे की अगर डेथ हो गई तो उसके नीचे जो है वो वाला है, बाई बर्थ है। डॉटर इन लॉ इज नॉट देयर इन द फैमिली एज ए, उसको हस्बैंड को मिलेगा।
हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके नीचे वाले उनको मिलेगा ना, उसके वाइफ को नहीं मिलेगा। Okay, sir. One more query. उसकी डॉटर को मिल सकता है। One second. Please send your queries. I have taken almost all the queries. If you have any query. एक चीज छोड़ गया, फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट। अगर एक फीमेल हिंदू की डेथ हो गई तो सेक्शन 13, 14, 15 कहता है कि अगर लेडी की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या हो। पहले तो लेडी की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट विल गो टू हिज हस्बैंड एंड चिल्ड्रन इन इक्वल रेशियो। हस्बैंड और चिल्ड्रन को जाएगी इक्वल रेशियो। मतलब लेडी है शादीशुदा थी, अगर शादीशुदा नहीं थी तो हस्बैंड होगा ही नहीं, बच्चे होंगे ही नहीं, फिर तो दूसरी कैटेगरी में आएगा। शादीशुदा थी और उसकी डेथ हो गई तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड और बच्चों को इक्वल रेशियो में जाएगी। अगर सिर्फ बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चों को चली जाएगी, सिर्फ हस्बैंड और बच्चे नहीं है तो रुक जाइए, जाएगी। लेकिन जो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में मिली अपने पेरेंट्स से वो नहीं जाएगी, उसके हस्बैंड वो नहीं जाएगी, वो पेरेंट्स को वापस चली जाएगी। Whatever property she got as an inheritance for her parents will not go to the husband if she doesn't have children. If she has children, it will go to the husband and children in equal ratio. फिर वही pre-deceased son, pre-deceased daughter भी आ जाएगी। समझ आ रहा है? अगर दोनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड वो भी नहीं है तो पेरेंट्स को जाएगी। पेरेंट्स भी नहीं है तो फादर के लीगल हेयर को जाएगी। फादर के भी लीगल हेयर नहीं है तो मदर के लीगल हेयर को जाएगी। ये फीमेल लेडी का सिस्टम है, मैं आपको बताया। Sir, one question here. One HUF has husband, wife, and 2 minor child. How the distribution will happen in case of death of Karta when the children are minor? सुन लो, कर्ता की डेथ हो गई, अब अडल्ट मेंबर कोई रहा नहीं, को HUF चलाना चाहते हो या तो खत्म कर दो। HUF चलाना चाहते हो, अडल्ट मेंबर नहीं है, चिल्ड्रन आर माइनर, देन वाइफ कैन बी मैनेजर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ दैट HUF टिल द चाइल्ड बिकम्स मेजर। वो माइनर, वो जो वाइफ है वो कर्ता नहीं बनती है, शी बिकम्स द मैनेजर who is managing the affairs of the HUF till the time one of the child becomes major. समझ में आ गया? Wife cannot be a karta. Wife can be looking after the affairs of the HUF in the case her husband dies and there is no adult member, no adult co-passer in the family. Is it require every member to withdraw their share of profit or it is optional? नहीं, अगर करोगे तो सबको मिलेगा, या फिर अनइवन करना है तो वो करोगा, नहीं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटो ही नहीं। मैंने तो कहा इफ यू डिसाइड एवरीबॉडी विल गेट इक्वल शेयर, बट इफ दे डिसाइड all of them agree, they can give unequal share. Otherwise you have to give equal share to every co-partner as well as the mother, wife of the HUF. जिसको राइट था उसको मिले। Now I will request Nitin sir, if any questions. Sir, one thing I want to ask, sir, in a case of grandfathers HUF, if a father is dead, expired, then sir, the brother of father will be the karta or a son of father will be the eldest child of the family. Okay. Eldest child. और अगर सारे डिसाइड कर ले, हमारी बेटियां तो ऐसी होती हैं, मान जाती हैं, नहीं आप कर लो, साइन कर देती हैं तो ठीक है। Right. बेटियां तो कई बार शेयर भी नहीं लेती, लेकिन आजकल का जमाना बदल गया है, बेटियां तो ना लेना चाहें लेकिन वो जवाई नहीं छोड़ते। अरे मेरे से पूछा नितिन जी किसी ने, सर ये तो बड़ा गंदा लॉ बन गया। मैंने क्या हुआ? कहता जी मेरे फादर की डेथ हो गई है और फादर की डेथ तो पहले हो चुकी है, पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा? मैं कहा तेरी बहन शेयर लेके जाएगी बराबर। कहते ये तो बड़ी गलत बात है। मैं कहा रोता क्यों है, तेरी बीवी लेके भी तो आएगी। तो कहने लगा सर रुको, बहन बीवी एक है, बहन 2 है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, दोनों बहनों को मिलेगा। आई कांट हेल्प इट, लॉ इज लॉ। आप ये क्यों सोचते हो बहन है, भाई होता तो बहन और एक ही बात है आजकल।
आजकल मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्यों सोच रहे हो मेरी बहन? सोचो भाई है तो लेगा ना, क्यों नहीं लेके जाएगा? बिल्कुल लेके जाएगा। Sir, one more question is asked in a case of woman whether her mother will get a share or not. नहीं सर, मैंने बोला हस्बैंड जिसकी एचयूएफ होती है उसकी वाइफ को मिलता है। अगर वह उसके बाद मैं करता बन गया अपने फादर की एचयूएफ का, तो मेरी वाइफ को कुछ नहीं मिलना। ना 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 ना, ओरिजिनल कर्ता की वाइफ को और मेरे बच्चे, मेरे सन एंड डॉटर। सन की मदर को मिल रहा है क्योंकि उसका हस्बैंड ओरिजिनल फाउंडर है कर्ता एचयूएफ, उसके बच्चों को नहीं। ना ना ना, ऐसे तो जिसका बेटा बन गया उसकी बीवी को मिल गया, बाकियों के बीवी को तो मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है लॉ, ऐसा लॉ नहीं, ऐसा लॉ नहीं। माँ को मिलता है, बीवी को नहीं मिलता। हाँ, कर्ता मर गया तो उसकी बीवी को तो मिलेगा ही ना, जो ओरिजिनल कर्ता। ये नकली कर्ता नहीं, इनकी बीवी को नहीं मिलता है। Exactly, sir. Yogi ji, you can continue. Yes, sir. Sir, one more question. ये टॉपिक इतनी बार हो चुका है, ये टॉपिक मेरे से इतने लोग करा चुके हैं कि मैं भी थक गया हूँ करते करते। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई हफ्ते बाद कह रहा था कि यही टॉपिक कर दो, सक्सेशन प्लानिंग एंड एचयूएफ। और वो इसलिए कई लोग ज्वाइन करते थे ना, अलग अलग ज्वाइन करे। अबे 3 दिन पहले हुआ, 500 लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था उस साइट पर। लेकिन जिस साइट में सुना होता है, दिल्ली में और दिल्ली के इर्द गिर्द तो पता मैं कितनी बार कर चुका हूँ ये टॉपिक। लेकिन आपने चूज किया, मैंने तो करा नहीं। आपने कहा जी ये करना है, मैं कहा आप कर लीजिए। मोहित कहता है सक्सेशन प्लानिंग का वो कर दीजिए, कर लीजिए। तो ये टॉपिक ऐसा है कि कितनी बार भी सुन लेना, फिर जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है वापस कंफ्यूजन आता है कि वो तो आता ही, वो तो मुझे तो अभी भी सवाल क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं सबका क्वेश्चन का जवाब देता ही देता हूँ। यस सर, मैं देता हूँ, लेकिन मेरे को ईमेल मत करना। ईमेल करोगे तो मैं जवाब दूंगा तो फिर आप फिर दोबारा ईमेल करते, फिर दोबारा करते हो कि यार ये होता है। इफ एंड बट लगा, सीए को इफ एंड बट लगाने की बहुत आदत है। मैं कहता भैया फोन करके पूछ ले, कोई व्हाट्सएप नहीं देखता मैं। आई डोंट सी एनी। मेरे पास 900 व्हाट्सएप रोज के आते हैं। हाउ कैन यू सी 900 व्हाट्सएप इन ए डे? इतने ग्रुप बने हुए हैं, सब आदमी मुझे ग्रुप में घुसा लेता है, तो क्या करूं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे फोन कीजिए। फोन नहीं मैंने उठाया तो मुझे मैसेज दीजिए, आई विल कॉल बैक। लेकिन सवाल उसी पर पूछ लीजिए, बार बार नहीं कि जी इफ एंड बट मत लगाइए। चलिए आप पूछिए। एक क्वेश्चन और है सर। Can a CA do? Can a HUF of a CA have a business income? मैंने बोला ना, सिर्फ एक ही F&O वाली अलाउड है, बाकी नहीं। मैंने बोला बना कर दिया इंस्टीट्यूट ने। कर तो रहा है जिसने सवाल पूछा है, बताया नहीं। इंस्टीट्यूट को पता लग जाएगा तो दिक्कत होगी। कर तो रहा है, मुझे पता है, ये तो सवाल ही ना पूछता। वो ये सीए खुद भी बिजनेस नहीं कर सकता और कर्ता बन के भी बिजनेस नहीं करता अपने एचयूएफ, वो नहीं कर सकता। लेकिन एक अलाउ कर दिया इंस्टीट्यूट ने, F&O, क्योंकि F&O तो बिजनेस माना जाता है ना, और इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया, स्वाय उसके कोई नहीं। अभी तक सवाल ये नहीं आया कैन एचयूएफ टेक कमीशन, ये सवाल बहुत आता है। फिर मैं कहता हूँ 31 मार्च वाली कमीशन नहीं ले सकता, 31 मार्च वाली नहीं ले सकता। समझ में आया मेरा मतलब? और एचयूएफ क्या, एचयूएफ प्रोफेशन कर सकता है? एचयूएफ प्रोफेशन करता है, प्रोफेशन तो इंडिविजुअल करता है, या उसकी पार्टनरशिप फर्म करती है। एचयूएफ थोड़ी करता है, एचयूएफ प्रोफेशन नहीं कर सकता, कमीशन ही। हाँ, एचयूएफ के बाद एजेंसी बिजनेस है, एजेंसी का काम कर रहा है, प्रॉफिट का, तो उसमें आ गया तो वो क्यों नहीं कर सकता? सकता है भाई ना, सब कुछ कर सकता है। Sir, if you can explain the concept of per capita distribution of HUF partition. मैंने बताया ना, पहले पर स्ट्राइप आ गया, बेटे को मिल गया 1/4। अब बेटा अपने बेटा और बेटी में बांटे, उसे कहते हैं पर कैपिटा इक्वल। बेटा अपनी वाइफ को नहीं देगा। बेटा जो 1/4 मिला, उसमें 1/4 में से एक बेटा और उसकी 2 बेटी, एक बेटी भी है, तो 1/4 का 1/3 आप रखेगा, 1/3 वो बेटे को बांटेगा, 1/3 अपनी बेटी को देगा। फिर जो बेटा, जो ग्रैंडसन है, उसका अगर शादी हो चुकी है तो वो अपने बेटे में और बेटी में बांटेगा उस रेशो। उसे कहते हैं बाय मीट्स एंड बाउंड डाउन द लाइन अमंगस्ट ऑल मेंबर्स। Sir, one question. I have a HUF from 1970. I have taken interest-free loans from the members from then. Now you are saying there is no interest-free loan. अरे तब पूछो यार, अब 6 साल के पुराने केस थोड़ी खुल जाएंगे या 10 साल के? हो गया ना, ले लिया था, बार बार मत लो।
गलती तो बहुत हुई है, मेरी भी बेटी के साथ HUF की, छोड़ दो ना पुरानी बातें। पर्पस क्या है आप अपने आप सोचो, तक थोड़े से लॉजिक में जाओ। मैं अब लोन क्यों दे रहा हूं इंटरेस्ट फ्री? उसकी इनकम क्रिएट कर रहा हूं ना। अगर मैं लोन दे रहा हूं वहां पर भी 30% है, यहां भी 30%, तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने HUF को लोन देकर वहां से वो आगे बिजनेस करेगा या उसको आगे इन्वेस्ट करेगा तो इनकम कमाएगा। इनकम कमा के वो स्लैब रेट का बेनिफिट लेगा, तो टैक्स प्लानिंग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? वो टैक्स प्लानिंग मानी जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि वो अलाउड नहीं होता। वेलकम शारिया जी। Sir, what is the tax liability in HUF partition? There is no liability in the HUF partition. Everybody gets the share. Profit बढ़ गया तो अपना share, they take their respective share. That's all. No, nothing. They will get the share in their individual capacity. Absolutely no problem. No tax. Can HUF take gift in cash from non-relatives? You know that 269 ST, you cannot take more than 2 lakh rupees in a day in a cash. Or if non-relative, it is fully taxable because it is more than 50,000. It is more than 50,000 taxable, but cash gift cannot be more than 2 lakh. You know that's 269 ST. ST आ गया है ना, 2 लाख से ऊपर आप किसी से ले नहीं सकते. In case of death of a woman without having will, whether her mother is entitled to get share? No. Female की death without will होती है, तो that her share will go to her husband and children. Mother नहीं, वो सिर्फ वहां पर ही है अपनी माँ. किसकी माँ? तो कर्ता की वाइफ. ये तो कर्ता नहीं है ना, ये इसकी मदर को नहीं मिलेगा. किसको मिलेगा? हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. माँ को नहीं मिलेगा. आप विल कर दो, जो मर्जी ले जाए. विल में तो किसी को भी दे दो. You can give it to, you can make a will to anyone. Nobody stops you. But the mother will not get, only husband and children. Equal ratio. Can HUF do his will? अपने शेयर की will कर सकते. What is your share? You can make a will of that share. That's all. Not more than that. All the attendees and are requested to send their queries. I have taken, I think, almost most of the queries. Mr. Jayachandra is already there. It is almost 6. So you can do the yes, sir. Let him take up the topic. If there is no Yes, sir. question. Yes, sir. Nitin sir has joined us late. So I would like Nitin sir to welcome sir and address us with his words of wisdom. Nitin sir. Thank you, Yogi ji. And first of all, my apology. Just due to network connectivity, I could not join on time. Thanks to Ahuja sir for such a nice and wonderful deliberation, sir. CA Prasanna Kumar ji, sir, welcome you, sir. And highly congratulations to all the hosting branch, CA Mohit Jain ji, Kishangarh branch chairman, Alwar branch chairman, CA Amit Agarwal ji, Chittorgarh branch chairman, CA Yogesh Kabra ji, and Shri Ganganagar branch. And welcome to Jay Chhera ji. Really a very nice deliberation by our Girish Ahuja sir. और सर आपने माइन्यूटली एक एक चीज को, HUF की इंट्रिकेसीज को और एक एक पॉइंट्स को जिस तरीके से डेलिब्रेट किया, रियली हम सभी लोगों के लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहा. थैंक यू सो मच सर. और सभी पार्टिसिपेंट का वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट ने भी इतने अच्छा जो अटेंडेंस दी और प्रोग्राम को इस तरीके से यूजफुल नॉलेज को शेयर किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Please give me permission. I have some guests coming. So I just want you to sign off. So it is 6 o'clock. Anybody wants any question? I'm still there. Another 5 minutes. If you have any problem. Definitely, sir. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. All the best. Sir. Thank you, sir. All the best. Sharia, all the best. Thank you very much. Take care. Stay healthy. Mohit sir. I would like to request Prasanna Kumar sir to please give your words of wisdom about PDC and welcome Jay Chhera sir. Please. Yeah. Good evening.
I don't have much to say except to welcome Jay Charya, the hero. So we have seen champion just now. Now you are here seeing a hero. You all been hero of Central Council. So thank you, sir. Thanks for coming for the program organized by the Professional Development Committee. Thank you. So over to the organizer. Thank you, sir. Actually, I just add my words. I had given the time slot in M2M to past President Nihal Jambusaria ji at 6 o'clock. He just called me. He is joining very soon. And we are having a spare time just because the session has been completed earlier. Without taking much of your time, I just want to introduce Jay Chera ji, the next session moderator. He will definitely take his session upon the how to develop practices in the professional opportunities in tier 2 cities. Actually, all the branches, the hosting and co-hosting branches are small cities, and to develop practice or professional opportunities, other than the orthodox practice we are doing, what are the opportunities and area of scope open for all of us is a kind issue, as we are all aware. Definitely, day by day, we are getting the limits of audits and statutory audits, and we are getting a lesser scope, a narrower scope of work. And what are the new scopes and area of scope available to all of us will be guided by the past presidents and Jay Chera ji. And to update you all, Kemisha ma'am will not be able to join till now because he is not able by health. I would like to request Jay Chera ji to please give a brief about the session and what will be the topic and what we are about to ask the presidents. And in case some participants do want to ask some kind of questions, they can send in earlier to question and answer section. We will definitely ask that kind of questions to the president. Over to you, Jay Chera, sir. Welcome. On the Very good evening to all of you. I am not sure my colleague Prasanna ji is there or not now. Just but was a wonderful experience to be together. Well, once again, a very good evening. CA Mohit Jain ji, Kishangarh branch chairman, CA Amit Agarwal ji, Alwar, CA Ankush Chopra ji, Bikaner, CA Yogesh Kabra ji, Chittorgarh, CA Dheeraj Leela ji, Sri Ganganagar branch, and all my dear friends, once again, a very good evening. And I think this is a wonderful opportunity interacting with the members of various branches of Rajasthan. When Mohit ji asked me if I would like to join it, I said I would be very happy to join this program. And even I would be happy joining physical, because somehow I feel that when you are physically there with people, then you can interact, you can feel, you can make the sense what exactly how the things are going on, and accordingly you can plan out your speech. I think past president CA Nihal Jambusaria ji is already there. It seems so. Welcome. Anyway, Yes, sir, he had joined. Yeah, good evening, everybody. Thank you. Good evening. Kishangarh branch and all the hosting branches are welcoming you, sir. It's a pleasure seeing you after so long, sir. And thank you. Thank you. How's you, sir? Good, good. Very good. Over to you, just. So, nearby, till the time the other two speakers actually come, I'll just very quickly give the details as to how this session is going to go. The actual fact is that our Ahuja ji was taking the session and we were supposed to join at 6 o'clock. He left 5 minutes before. So I'm filling up the vacuum as of now, and we'll come back to you the moment we are actually starting the session. So friends, we are actually, first of all, I'm really very happy to look at the way the conference has been organized. The branches might be smaller, but the conference is not smaller. They have selected the best topics and the best speakers that they could get. And the name itself is Avsar, opportunities. So naturally this session has to be very important. What are the emerging opportunities? What are the new opportunities? What are the global opportunities? That is, that naturally is
what we are going to discuss in this particular session. For many years, we have been practicing in taxation, audit, and such type of compliance services. But if you look at it, our country has emerged. The way the business is being done today, there is a major change. And friends, I would like to tell that all these 5 branches, when we say opportunities in tier 2 cities or something like that, but because of this technology, and more particularly during this COVID, we have learned using this Zoom and all these things. And it is very much possible today that sitting in Kishangarh, you can serve a client at Toronto. It is very much possible that you are sitting in Bikaner and your client is there in Delhi, right? So now that bifurcation of tier 1 or tier 2 is slowly and gradually moving out. So what we are going to discuss, we have wonderful panelists today, right? In a single panel, having three past presidents of ICAI is a luxury. It's definitely a luxury. It generally does not happen. So we are going to take the experience, the benefits of the experience of these 3, like, should I say, giants, in terms of knowledge, in terms of exposure, in terms of experience, who actually led the profession from the front. So we are going to discuss about what are the emerging opportunities, what are the emerging areas. We are going to discuss about what are the opportunities abroad, how to tap them. And along with that, of course, we do understand that various, Atul Gupta ji has also joined. Yes, sir. So, good evening, sir. Most welcome. Atul, sir. Sir, visible, not sure. Visible. Sir, you are not visible, sir. So it's the time to begin our show now, and taking the charge, I want to request CA Amit Agarwal, the chairman of Lower Branch, to please welcome our guest and have a brief profile of CA Nihar and Jammu Sariaji, immediate past president of ICAI. Over to you, Amit. Thank you, Mohit, for this opportunity. Members, I am very pleased to introduce our past president, CA Nihar Niranjan sir. CA Nihar Niranjan sir has been elected as the president of ICAI for the year 2021-22. He has served as a Central Council member since 2013 to 2021 and has represented ICAI in many important committees constituted by the government, ministries, and regulators. He has been nominated as a member of the e-commerce committee formed by the Ministry of Finance and peer review committee of the Central Board of Direct Taxes. He has made noteworthy contribution in whatever capacity he served the profession, particularly as the chairman of the India's Implementation Committee, ICAI, International Tax Committee, and various other important committees, board of ICAI. He has also served as a member of SAFA Committee on Professional Accountants in Business. He has been prolific speaker at national and international forums. He has addressed across 1,000 seminars, conferences so far, covering various subjects of professional interest like direct tax, accounting standards, international tax, and professional development alike. I welcome you, sir, and now request you to kindly grace the occasion with your kind words. Over to you, sir. Thank you. So is it that the questions which were sent I have to take up, or what is the format? You are just about to say words of wisdom, and then Jay Chiaraji will ask one by one session, sir. Okay. It will Then, be 2 hours, and it will be better for all the participants. Yeah. At the outset, my compliments to all the 5 branches, and it's a matter of great pleasure that today my council colleague for so many years, Jai Chaira, who is a noted scholar and an expert in many fields, is going to moderate this session and ask a question. So at the outset, let me mention that this entire session
is designed to look at what are the opportunities and what are the difficulties that probably tier 2 city members may face, and what are the opportunities, how they can be grabbed, and what should be the approach of tier 2 cities professionals going forward. Just now, some time back, CA Jai Chaira very rightly put it, that now that distance between these cities, between the countries, has already almost vanished with the help of technology, insofar as consultancy, advisory services are concerned. There are certain services which require physical presence. Tier 2 city members may not be in a position to perform so frequently or so conveniently. But even before the pandemic broke and we started, operating through the internet and technology, even before that, our members did travel a lot and render services offline, that is physically. So for tier 2 cities, if I look at the current time, particularly probably God had sent this pandemic only to make human beings know that you can perform without traveling. You can do so many things without really taking so much trouble and spending so much time on traveling. Instead of spending, I may say, wasting so much time on traveling. So my message is that there are a number of opportunities, and going forward in this session, I will be happy to deal with some of the questions in greater detail and answer them. So this is the message that I would like to give from what I have learned from the experience, and particularly in last 2 years when at the Institute we observed how things are moving. This was the experience which I am sharing with you. Thank you. We have Atul Gupta ji, but I'm not sure whether he is not appearing as a panelist as of now. If the host can do something about it. And Uttam Agarwal ji is also there. Yes, sir. Uttam ji had joined, but he is traveling. He just asked me कि जैसे ही उनका सेशन स्टार्ट होना मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा. तब तक अपन यहाँ सर से जो भी क्वेश्चंस राउंड स्टार्ट करना है, we can start it right now and we can take one by one. Sir, अतुल गुप्ता जी भी ज्वाइन हो चुके हैं. आप जरा चेक करिए उनको, आप कैसे हम लिंक पे ले सकते हैं. तो एक नया लिंक भेजा है मैंने, अभी वो वापस ज्वाइन कर रहे हैं. शायद इनका कनेक्शन इशू आ रहा था. I'm sending it again, sir. Till then you can ask, continue with Nihar sir. I'm just bringing. Okay. So what I'll do is, the moment panelists keep on joining, I'll keep on shuffling the questions. I keep repeating the questions also for the benefits of our audience, because we have 3 stalwarts who can keep on adding new dimensions to this particular issues. So nearby, the first and foremost thing that comes to our mind is, people are now talking about that the traditional practice areas, they have some challenges. So, new areas must be there. So according to you, what are the emerging areas which our chartered accountant should tap? And particularly for these cities, for the smaller tier 2 cities, if we talk about that way, what would be your suggestions? Means what areas they should indulge into? Yeah, Jai Bhai, very good question. Particularly, let me spend half a minute on the traditional areas. I hope you are able to hear me. Yeah. Is it clear? Voice is clear. No? Yeah. So first of all, audit remains our core area. And in 1949, the Institute was formed particularly to conduct assurance service, and Institute has in 73 years improved upon the tools that we are using for auditing, and even the scope of reporting is going on increasing. Direct tax, indirect tax were also the areas which we were pursuing, particularly when I qualified in 1984. Direct tax, indirect tax, and audit were the 3 main areas in which chartered accountants were practicing. But going forward, the scope for CA practice kept on expanding.
Risk advisory was one area which was added through the internal audit. We were conducting internal audit in a traditional manner. And when the risk factors were added, this practice became very dynamic. And if you look at last 5 to 6 years, and then we will come to the last 2 years. In last 5 years, if we see in 2016, Insolvency and Bankruptcy Code was enacted. And at that time, very few professionals were available, and chartered accountants, and particularly our institute, took up the challenge and formed the Section 8 company ICAI, through which 63% of the chartered accountants have qualified through institute's ICAI. And of the total insolvency professionals, the percentage of chartered accountants pursuing this practice is 64%. Some of them have done it very successfully. Some of them are still struggling, but this is an emerging area, even for Tier 2 city advisory in IBC, and particularly in some of the cities, even NCLT, NCLAT are there. And in many areas, if NPAs are to be resolved through IBC, then this chartered accountants who are IPs are selected as resolution professionals. So this is one emerging area. Sustainability, in which now the entire world has become serious, including our country. And if you see carbon emission record of India, we are standing last but second position in the world, which we have to improve. And that is how SEBI has made sustainability reporting mandatory for top 1,000 listed companies. Now this will percolate down, and it will come down to even medium-sized companies. Here also big scope is lying, because it is non-financial reporting, but it is to be reported in terms of value that is added during the year by the corporate. And value addition can be quantified only by none other than accountants. So a big scope for practice is there, and those who study sustainability will really have a big gain. International tax transfer pricing, I have seen particularly in cities like Jaipur, there are a few firms which are serving either the firms in Mumbai or even corporate clients in Mumbai, sitting there, because with the help of technology now, audits are conducted online, and they are able to do the advisory as well as transfer pricing audit. If I talk about last 2 years, another area which has emerged is advising MSMEs. Every state government in the country came out with relief packages for MSMEs. You will agree that with 41% share in the GDP of the MSMEs, all state governments were serious about seeing that MSMEs revive and they thrive. And here many chartered accountants who took up advisory to MSMEs have done very good job. Startups during the pandemic time, many youngsters and many entrepreneurs who wanted to start something new were really apprehensive about the future. And now, you know, we were talking about VUCA world, vulnerability, uncertainty, incomprehensibility. Now the world has become more vulnerable and uncertain, and at such times, to encourage startups and do the risk advisory, only chartered accountants are looked upon as the right professionals. These are the various areas which I see for Tier 2 cities, which can be taken as emerging areas. Even India is something which, if you learn, you can not only advise in India, but it is 97% IFRS. There are very few differences which are left. So you can advise even corporates in foreign countries. Many chartered accountants are having outsourced service providing facility here in the area of IFRS, and sitting in any part of the country, according to me, as rightly put by Jai, that you can advise somebody in Toronto, USA, Australia, or any country of the world. So these are the opportunities which are lying for chartered accountants.
which I thought I will elaborate in little detail. Thank you. Mohit ji, we have Uttam Agarwal ji now. So if you can drop him, please, you may take it up. Yes, sir. I'm informing. Till then, I just request Amit ji, please. हाँ, sir, आ गए हैं. So you may continue with Uttam ji, sir. And I, on the behalf of all the branches, I want to welcome Uttam Prakash Agarwal ji, sir. And sir is so humble, and on the single request, sir guided us how to conduct this kind of program, how to involve, sir, how to get interaction with all the presidents, and such kind of guidance from such a big leader and mentor of all of us is just getting a delight on the behalf of sir. Without taking much of your time, I just want to hand over to Jai sir, as Atul sir also joined us, and all the stars of the galaxy are in our screen now. Mohit ji, you already introduced Nihar Jambusaria ji. Of course, all the three eminent panelists, they don't require introduction as such, but you may introduce our panel joined now, Uttam ji and Atul ji, and ask for their initial remarks, and then we may continue with the session. Mohit ji. Yes, sir. I just want to take an opportunity to give a brief profile about Atul sir. Actually, Atul sir को मैं काफी टाइम से follow भी कर रहा हूँ the national conference में. Exactly 1 year ago on the same dates. Sir का एक जो quote था, aspire to inspire before we expire. Sir, I personally follow this and following this for a lifetime. Taking this an opportunity, I just want to take a brief profile of sir. Actually, sir's profile is so started with so many things, but I will take a few moments for this. See, Atul Kumar Gupta ji is a staunch leader, has risen to the highest echelon of accounting profession to acquire position of president of the ICAI for the year 2020-21, the second largest accounting body in the world, being the vice president in the year 2019-20. He has served accountancy profession for more than 2 decades and is widely respected for his strong organizational skills and deep insight in the affair of profession. A commerce. Mohit bhai, we may skip the introduction, at least for me. Better, because there will be more time available for us for the discussion, and I request first you please request the Uttam sir to speak rather than myself speaking. I'm junior to him. Yeah. Yes, sir, definitely. I accept your guidance. So, Jai ji, we are welcoming Uttam sir also. And please, sir, take your time. You all are so joined in your leadership. We all the small branches are unable to handle such kind of screen that all our seniors, our mentors are there. Sir, it's all yours. You just ask questions and the interaction with Uttam sir and Atul sir as suits you. Sir, you're on mute. Sir, you're on mute. Sir, Jai sir. Uttam ji, a very warm welcome to all you. And thank you. Nice to see you. And sir, the topic has been very important, opportunities. We keep on discussing about the technicalities of income tax, GST and all that we have been doing. But we would like to see to it that our members are futuristic, they are visionary, and we appreciate all these branches coming together for this wonderful program, also the new opportunities. So according to you, what are the new opportunities you look at that for our chartered accountants to grab, and what type of skill sets they should develop, sir? Good evening to all, and happy to see so many certificates. Jai Cheraji, back up to you, backside to you. And also Atul ji, Nihar ji, all who have served this institute,
and my dear all friend from Kishangarh, Alwar, Chittorgarh, and I'm always be a part of Rajasthan. I may be from Bombay, but under my presidency, I was more focused on Rajasthan. Rightly said by Jai Cheraji that all the chartered accountant are futuristic, visionary. And I see today, once we started setting up so many branches, objective and purpose of ICAI was that only to bring the new leader and guide the future generations. Jai Cheraji, I will like to say that whatever work today we are doing as a chartered accountant, first of all, I am surprised in spite of after 75 years completions, and when we are hosting the World Congress, right? And we still keep on discussing that what are the opportunities. I think in the chartered accountancy profession since 1949, right, there are so many opportunities which even my 90% chartered accountants are not aware. Let me tell you frankly, I was also not aware till I became the president and the council of the ICAI, and after that having a various directorship in other company. When I see in the WhatsApp group and everywhere people and my members more particularly discussing always about the due dates, filing of returns, this and that, I keep telling my all young generations, right, that this is not a work what we are doing, because the same work are being done. See, the GST filing is done by the other people, income tax filing is done by other people, even the consultancy in the income tax, even the society audit, even the bank audit, the bank officers are doing. Are we chartered accountant who have qualified in the population of 140 crore? Hardly we are 3 lakh member. The same work what we are doing, the other people are doing who cannot dream even to become a chartered accountant. So first of all, discussing about the opportunity, we must see the confidence among the members if we are the great on this earth. And let me tell you, moment you enter to any corporate world, there are opportunities, you can't even define how many opportunities are there. If I today let the people say GST we are doing, how many GST experts we have today? We all doing the initial work. And if there is an expert chartered accountant, then I don't think there will be a lot of complication which is going on. So what I can say, we chartered accountant have been considered as the financial professional, but we people have not focused in the finance sector. My all colleague, past president will agree that whenever we sit in the audit committee and the board of directors in the any financial sector, let it be the insurance company, let it be the mutual fund, capital market, banking, hardly the 5-7 firm name comes for giving the opportunity. There are number of, right? Take example, the recently circular issued in the month May 2022 by SEBI for the ESG compliance to more than 1,000 companies. First of all, how many chartered accountants are aware about this? There is no discussion required. What are the opportunity? My request to the member, kindly keep on visiting RBI website, SEBI website, MCA website, IID website, RERA website. They are coming out every alternate day. Let me tell you, in the last meeting of one of the company where I am a chairman, I asked, boss, whenever I sit, you say, sir, we have to appoint this auditor, that auditor. How many auditors you have to appoint, chartered accountant, how much fees we are paying? 14 firms have been appointed by one mutual fund. Other than the statutory and tax audit, how many chartered accountants are aware? And total fees we are paying more than 2.5 crore rupees. Same thing in the insurance company. Also, there are various opportunities which we people are not aware. And I am not always the traditional, somebody must be talking about the RP, IP and all these things. What is happening in the real terms? Not a single company by any chartered accountant really done the restructuring. What the malified practice is happening, we should not be part of. Enough we have done in last 75 years. Forget about the compliances. When I have a very, even the regret, anything new come, my chartered accountant says, oh no, I'm doing this practice, that practice. You see the example of independent directors. Everybody started happening for exam. IP, everybody this one. Concurrent audit, everybody started. That means what we are not focused.
that we do not have opportunity, and there is no need to think over the 2-tier or 3-tier or multi. See the Baba Ramdev, right? He has not attended any of the IIM or any multinational or international company, and he was sitting at Haridwar. Has anybody dreamed that anybody will be there to fight with this Hindustan Lever, Procter Gamble, and all these things? So first of all my members from this city, do not consider yourself that you are small. You are chartered accountant with chartered accountant. Therefore, we do not say the junior or senior. Sometimes senior is sitting and junior is speaking very much more than that. So you have to think, you have to build up the confidence. Once you have the confidence, everything is possible. And wherever you enter with the value addition, that becomes the opportunity. I'm a part of various resolution professional and all. Let them do all whatever thing. But so many process activities that chartered accountants are not aware. And opportunity, already 30,000 listed companies are there. How many chartered accountants we have? But you see the fees, 10,000, 12,000, 25,000. ICAI work hard to get the tax audit. What we are doing? 1,200, 1,500, 1,700, 2,000, 5,000. Role of a chartered accountant will remain in existence for the purpose of value additions. If we keep on thinking about only the regulatory compliance, this is income tax and all these things, I think we will not be anywhere else. The COVID has given, technology has given our idea that it is not that you are Kishangarh or you are Chittorgarh or Bhilwara or anywhere else. I know that one family, 3 chartered accountants sitting at Haridwar, their gross income is more than 2.5 crore rupees. I surprised, I asked when I visited, and not today, 2008-9, मैं बोला सब बाबा लोगों का रिटर्न आपके पास है क्या? इतना फीस कमाते हैं ऋषिकेश हरिद्वार का? बोला नहीं सर, we don't do all this work. Right? So मन में से चार्टर्ड अकाउंटेंट को, दिमाग से हमारे मेंबर को निकालना पड़ेगा कि हमारा ये एम्पैनलमेंट कब होगा, ये ड्यू डेट कब होगा, अलॉटमेंट कब होगा. अभी कंकरेंट ऑडिट का एम्पैनलमेंट आया, दुनिया भर के लोग फोन कर रहे, बैंक ऑडिट जा रहा है, जाने दो. हमारे को वैल्यू एडिशन के लिए ये 4 सेक्टर जो इतने बड़े हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत बड़ा रोल है. So I don't foresee that any discussion we require for what are the opportunity unless and until we become a confident कि बॉस मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, the best value addition होना चाहिए. I don't want to compromise with the cost. आप 100 क्लाइंट का काम कर लो 2000 का और 5 क्लाइंट का एडवाइजरी कर लो, इसे बिगर अपॉर्चुनिटी. और आपको एकदम शांति में रहेगा. ड्यू डेट पे ऑडिट की क्लाइंट घर पे सो रहा है और आप दिन भर लगे हुए हैं, सर ये हमारा सॉफ्टवेयर का लाइट चले गया, ये वेबसाइट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. I have my daughter, she is a chartered accountant, myself, and both we do not know what is the process of DIN, SIN, MIN, FIN, whatever is happening today. Even let me be blunt on record that I do not know how to operate the computer also, because I have a thought process. When there was no computer, not even my single senior chartered accountant used to sit on the type, because our role is to apply application of mind. Our intelligence lies there only. So what we are doing today, all sitting on the computer, right? Finding out in a day 20 times to charge our laptop. So we have to change our mindset. We have to build up the confidence, right? Any company you enter with the ideas, because ICAI has given so many skill sets during the course of your articleship training as well as the course curriculum. It's very nice. No profession has given you. It is not only for filing the returns and for GST compliances. Though not part of any malified practice like IP, RP, wherever you are there. There are various other fields. Kindly look into the financial sector. You will have a great role to play. Good opportunity, respectfully, you earn very good money. I do not know how much time is permitted. So first I will pause here. Let other people and Judge Hera guide us how much time we all have. So thank you very much. Friends, in one line I will say, you people have to have the confidence.
right? Anything is possible. I should not speak, but let me tell you, when I thought it to have the institute, right? What ICAI, the government is also thinking of IIA. Already the same model 10 years back I did it. Everybody was saying, Uttamji, nothing will happen. But today with the proud I say, 8 country people are there with me. So that confidence should speak, quality should speak. And that quality we have as a chartered accountant. Nobody can challenge our quality of chartered accountant because you are already qualified by ICAI. वो दोनों चीज अगर है हमारे पास में, कोई अपॉर्चुनिटी की चिंता नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटी. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Number of good points came out. Delegation, value addition, mindset, risk management, number of aspects are there, and we can discuss on that. Sir, time तो काफी है क्योंकि आप जैसे speakers जो हैं, right? आप अतुल भाई, निहार भाई, past presidents को सुनना is a luxury for me and for all the members. Time है, but what we'll do is we'll one by one, rope in all our panelists. And now I come to CA Atul Gupta ji and Atul bhai. I hope I am audible, Atul bhai. Yeah. So a lot of has been discussed about these opportunities. I would ask, what are the overseas opportunities? How do we develop our global outlook? And what about BPO or KPO, something like that? Getting to tier 2 cities. Sir, something on that. And of course, along with that, your general idea about the various opportunities. Thank you, Jai Bhai, and very respected past President CA Uttam Agarwal ji, immediate past President CA Nihar Jambu Saria ji, and all the respected chairman of the 5 branches of CIRC of ICAI, and my very dear friend Jai Bhai, who is, as Mohit mentioned, aspire to inspire. So for me, the inspiration is Jai Bhai. So thank you very much, Jai Bhai, for posing this question. And I completely agree with the suggestions given by Nihar Bhai and Uttam sir for the members of the profession who are viewing this webinar through this platform being organized by the branches. मैं जय भाई ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा पहले अपनी बात को सिस्टमाइज करते हुए कि 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी. पहली बात कि हम लोग जो है वो आज के जिस वातावरण में जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर, जिसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे ग्लोबल विलेज, तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ग्लोबल विलेज जो होता था वो टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होता था कि आज टेक्नोलॉजी हमारे को एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर रही है. लेकिन अभी जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स, इवन जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर जो है वो एक ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं. मतलब जिसे हम बोलें तो दैट इज ए डीलिमिटेशन ऑफ जुरिसडिक्शंस. तो आपको इस बात को आप एग्री करेंगे कि पहले हम लोग जो है वो एक्साइज और वीएटी फॉलो करते थे, उसके बाद सर्विस टैक्स आया. अभी हम लोग ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, और जो जीएसटी की जो प्रीएम्बल्स हैं अगर देखा जाए तो वो 164 कंट्रीज में एक जैसी प्रीएम्बल्स हैं. कहीं पर जो है वो थ्रेशोल्ड अलग है, कहीं पर जो है वो प्रोसेस अलग है. तो प्रवीण जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप म्यूट कर लें तो उसके बाद अगर मैं सिमिलरली अगर बात करूं तो आईएफआरएस है. अगर मैं देखूं तो इंडियाज क्या है जी, इंडियाज इज प्रैक्टिकली 99.6% आईएफआरएस ओनली. रिस्क मैनेजमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं पर जो प्रीएम्बल्स हैं इनकी वो ग्लोबल होती जा रही है. तो अगर मैं देखूं कि इंडिया का लॉ और अगर मैं बोलूं यूरोप का लॉ या मैं बोलूं सिंगापुर का लॉ या मैं बोलूं सऊदी का लॉ, वो कहीं ना कहीं पर एक जो है वो कॉमन प्रीएम्बल रखता है. इस बात को समझते हुए हमें ये देखना होगा कि ये चीजें जो हैं वो हमारे लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी लेके आती हैं और चैलेंजेस भी लेके आते हैं. अभी फिलहाल इस वक्त जो है वो जय भाई आप जो है वो सूरत में बैठे हुए हो, मैं गुड़गांव में हूँ, उत्तम सर जो है वो और निहार सर जो है मुंबई में है, और हमारी ब्रांचेस अलग अलग स्टेशन पे हैं, पर हम बात कर पा रहे हैं, हम डिस्कस कर पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं पर जब टेक्नोलॉजी अनेबलर होगा तो ये नहीं होगा कि मोहित जी जो है वो अगर किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं
अगर वो उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी जुरिस्डिक्शन केवल इंडिया है। तो पहले क्या होता था कि वीएटी में आप राजस्थान के कंसल्टेंट हो, आप जयपुर के, आप जो है वो गुजरात के कंसल्टेंट हो, लेकिन आज जो है वो जीएसटी में आप नेशनल कंसल्टेंट हो। मैं यहाँ पर इसको आगे लेके जाना चाहूंगा, और जैसे आपने केपीओ की बात करी कि आप अपने आप को चाहें तो ग्लोबल कंसल्टेंट के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आप जो है, जैसे आपने बोला, इनोवेट और इवेपोरेट, कि अगर आप अपने आप को इनोवेट कर पाते हैं, आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाते हैं, आप अपने आप को जो है वो उस लायक बना पाते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अगर अपने आप को हम वो कर पाते हैं तो हमारे लिए आज की तारीख में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं। पर वही अपॉर्चुनिटी चैलेंज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम लोग जो है वो उसको अपने आप में उसको हार्नेस नहीं करेंगे जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जो दूसरी बड़ी बात जो सर ने बोलना चाहा, जो हमारे पास प्रेसिडेंट सर ने बोला, वो है अपना कि हम लोग जो है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से, तो अब क्या हो गया कि साहब बिजनेसमैन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो अपने आप में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, और जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करता है तो वो दो तरीके से करता है, या तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करता है या फिर वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। आपने देखा कि पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब हम डिबेंचर्स इशू होते थे या लोन्स इशू होते थे, तो उस केस में क्या होता था कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी हायर साइड पे रहती थी। लेकिन अब क्या हो गया जी, प्राइवेट इक्विटी आने लगी, वेंचर कैपिटल आने लगा। अब जब वेंचर कैपिटल आता है, प्राइवेट इक्विटी आती है, तो वैल्यूएशन होती है। अब हमारे सामने एक बैलेंस शीट है जिसके अंदर 3000 करोड़ की बैलेंस शीट है, जिसमें 2500 करोड़ की वैल्यूएशन है एक इंटेंजिबल्स की। अब उस केस में क्या मैं अपने आप को कैपेबल पाता हूं कि मैं उस बैलेंस शीट को वेरीफाई कर पाऊं? क्या मैंने वो टेक्निकल नो हाउ स्किल डेवलप कर ली जिसकी वजह से मैं अपने आप को कर पाऊं? तो काफी सारा जैसे जैसे बिजनेस बदल रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रोफेशन जो है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम के चारों तरफ इवॉल्व होता है, तो जैसे जैसे सिस्टम चेंज होगा हमें अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। तो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जिस तरीके से फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वो उस तरीके से क्या हम अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जय भाई, वो है डिजिटल डिसरप्शन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला कि 7 मिलियन जॉब्स जो हैं वो लॉस होंगी अगले 3 साल में, जिनमें से अकाउंटिंग बुक कीपिंग जो है वो अपने आप में प्राइमरी जॉब है, ऑडिटिंग प्राइमरी जॉब है, जो अपने आप में आने वाले समय में स्ट्रेस में आएंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि 133 मिलियन, जो 70 मिलियन जॉब लॉस होंगी तो 133 मिलियन न्यू जॉब्स का भी जन्म होगा, जिनमें डाटा साइंटिस्ट, जिसे हम अपनी भाषा में डाटा एनालिटिक्स बोलते हैं, वो आने वाली है। आज हम लोग एक छोटी सी बात देखते हैं कि अपने आप में जो एक टोल प्लाजा पे जहां पर हम लाइनों में लगा करते थे, फास्टैग आने से, अभी तो फास्टैग भी खत्म हो रहा है, फास्टैग आने से हमारा अनइंटरप्टेड जो है वो 1 मिनट के लिए हम लोग जो है वो टोल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर वहां पर भी जॉब लॉस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो व्यक्ति वहां पर टिकटिंग कर रहा था, जिसका लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट था, वो कहीं ना कहीं पर अब जरूरत नहीं है। पर यस, एक जॉब नई जन्म ले रही है, एक नई जॉब ने भी जन्म लिया, और वो जॉब है अपनी रिकंसिलेशन बिटवीन द फास्टैग कंपनी एंड द टोल प्लाजा कंपनी। तो उस व्यक्ति के पास जो अपने आप में अनएम्प्लॉयड होने जा रहा है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाए या वो अपने आप को रीस्किल करे। तो रीस्किलिंग ऑफ स्किल, और वो स्प्रेडशीट पे अपने आप को एक्सपर्टाइज डेवलप करे जिससे कि वो उस जॉब को कर पाए। सिमिलरली हमारे प्रोफेशन के अंदर भी जो है वो इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं है। जब हम लोग कंप्लायंस जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि रूटीन एंड रिपीटेटिव है, जो धीरे धीरे करके सिस्टम्स को आउटसोर्स होने वाली है, तो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले समय में जो है वो हम लोग जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप में जो है, ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई कि अपने पास 3 बातें हैं, चाहे इसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोले या फैक्चुअल स्टेटमेंट बोले, कि आप डिलिमिटेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, ग्लोबल विलेज में एंटर करने जा रहे हो, न्यू वे ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस आता जा रहा है, डिजिटल डिसरप्शन हमारे प्रोफेशन के सामने एकदम सामने खड़ी है। हम लोग जो है वो रूटीन एंड रिपीटेटिव थिंग्स अगर करते हैं, कंप्लायंस जॉब करते हैं, तो वो हमारे लिए आने वाले समय में वो 1 मिनट के लिए एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी फर्म्स जो टायर 2 फर्म्स है या टायर 1 फर्म्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरीके से अपने आप को, और इवन केपीओस के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, इसके लिए मेरी 3-4 जो है वो सजेशंस हैं। क्योंकि टॉपिक जो है वो उसी तरह का है, तो मैं उसी तरीके से उस चीज में ही एड्रेस करना चाहूंगा। जो पहली इंपॉर्टेंट बात है आपके ऊपर ही है जय भाई, जो आपने एक विजन दिया, और वो था नेटवर्किंग का विजन, जो था एफिलिएट मॉडल का विजन। कहीं ना कहीं पर हम लोग जब तक अकेले रहेंगे, आप अपनी अलग प्रैक्टिस करोगे, मैं अपनी अलग प्रैक्टिस करूंगा, आप अपने एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, मैं अपने आप में, लेकिन हमारे पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोगों ने बाय एंड लार्ज, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं रहे, हम लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गए।
तो हम लोगों को क्योंकि उस तरह का हमारा लाइवलीहुड नहीं था, हम लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं पर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो डेवलप नहीं करी, जिसकी वजह से हम सर्विस प्रोवाइडर रह गए। और फिर हम लोग अपने आप को पूल नहीं करते, क्योंकि मुझे रखना है जय छेरा एंड कंपनी, अतुल गुप्ता एंड कंपनी, मुझे उस नाम से मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ। मैं अपने आप को जो है वो ट्रस्ट नहीं बना पाता हूँ कि अगर मैं मिलके काम करूंगा तो हम लोग जो है वो बड़ी एक फर्म बना सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले क्या, बड़ी फर्म बनाना, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो मोहित और अमित जी ने क्या करा कि दो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, इन दोनों ने क्या करा कि अपने आप में जो नेचुरल फ्लोइंग है कि मोहित अगर मान लीजिए एक्स सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है और मोहित के पास जो क्लाइंट जिसको वो डील करता है वहां पर वाई सब्जेक्ट की भी जरूरत है, तो आज मोहित के पास कोई रिसोर्स नहीं है, मोहित को छोड़ना पड़ता है वो काम। लेकिन अगर वो अमित के साथ पार्टनरशिप कर ले और अमित उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, तो अमित को बैठे बिठाए जो है वो एक स्पोक्स मिल गया, एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया, जो उसके लिए उसके बिहाफ पे जो है वो प्लोइंग करके दे रहा है। दैट इज द वर्ड, द प्लोइंग इज द राइट वर्ड, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक हम लोग एफिलिएट मॉडल, जय भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जय भाई एक अलग से सेशन ले आप लोगों का और बताएं कि कैसे एफिलिएट से नेटवर्किंग, नेटवर्किंग से मर्जर और मर्जर से जो है वो एक यूनिफाइड बड़ी फर्म बनाई जा सकती है। इसके ऊपर जो है वो एक दिन आप सेशन लीजिए, जो वो आपको बताएंगे कि प्रियम्बल क्या है। तो कहीं ना कहीं पर जब तक हम अपने आप को बड़ा नहीं बनाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज को पूलिंग नहीं करेंगे, आप कोई भी बड़ी फर्म उठाइए, कोई भी लार्ज इंटरनेशनल फर्म उठाइए, उसका सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? सबसे बड़ा एसेट होता है उसका रिसोर्सेज की पूलिंग। अगर उन्हें किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ देखना होता है, उनके पास एक बहुत बड़ा नॉलेज पूल होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी क्लाइंट को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो अपने आप में सपोर्ट कर पाते हैं, असिस्ट कर पाते हैं। और उसकी वजह से उनको लगता है, क्लाइंट को लगता है वाओ, अगर मैं इनसे सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहा हूं तो ये बोल रहे हैं, बहुत पा रहे हैं। अगर मैं इनसे एक मिनट के लिए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पे बोल रहा हूं तो ये बोल पा रहे हैं। मैं इनसे सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहा हूं तो ये बोल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो है वो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हम लोग जब तक बिखरे रहेंगे, जब तक हम अलग अलग रहेंगे, जब तक हम बटे हुए रहेंगे, कोई भी एक मिनट के लिए कहीं ना कहीं पर हमारे को जो है वो उस तरीके से आता है और बाहर से आएगा और एक मिनट के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं दबोचने की कोशिश करेगा। तो जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो इसलिए जो मेरी पहली इंपॉर्टेंट बात है, उन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि वो आप संगठित होइए। संगठित होना अपने आप में जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता दूं लग्जरी नहीं रही है, वो आने वाले समय की नेसेसिटी हो गई है। तो जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप एक मिनट के लिए कभी भी किसी से आप जो है बहुत सारे बेनिफिट्स आप उस तरीके से आ ही नहीं सकते। जो दूसरी चीज है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ पर मान लीजिए हम लोग बात करें किशनगढ़ में, और किशनगढ़ में सपोज कीजिए कि हमारी 100 फर्म्स हैं, या हम चित्तौड़गढ़ में बात करें कि चित्तौड़गढ़ में हमारी जो है वो 200 फर्म्स हैं। हम लोग जो है वो किस तरीके से रिसोर्स को पूल कर सकते हैं आपस में। तो एक तो हुआ कि हम लोग ने नेटवर्क बना लिया, एफिलिएट बना लिया, पर एट द सेम टाइम जो पर्पस होना चाहिए, अगर नेटवर्क एसोसिएट नहीं भी बने तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी पूलिंग कैसे हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े एडवोकेट्स जो होते हैं वो चैम्बर सिस्टम बन जाता है। चैम्बर सिस्टम बनने से क्या होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपस में इमीडिएटली डिस्कस कर लिया, टॉपिक डिस्कस कर लिया, कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, नॉलेज डिस्कस कर ली। अपने को वो चीज नहीं है। तो आज की तारीख में क्या है कि मेरी छोटी फर्म जो एक मिनट के लिए टायर 2 सिटी में बैठी हुई है, उसके पास अपने आप में को ग्रो करने के लिए, एकेडमिकली ग्रो करने के लिए, विजडम वाइज ग्रो करने के लिए उसके पास जो है वो उतना साधन नहीं है जितना साधन जो है वो एक मिनट के लिए बड़ी फर्मों के पास है। यस, वेबिनार आना, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना, कहीं ना कहीं पर बड़े से बड़े स्पीकर को प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाना, ये अपने आप में हमारा फैसिलिटेशन हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि अगर एक मिनट के लिए अगर हम लोग बैठते हैं, क्वालिटी सर्कल की तरह बैठ के पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप में ग्रोथ होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि हम लोगों को लगता है टायर 2 फर्म्स वो नहीं करती हैं। मैं जालंधर की एक फर्म को जानता हूं, जालंधर के अंदर जय भाई एक व्यक्ति भाई साहब है जो एक मिनट के लिए बड़े से बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का केस, चाहे वो चंडीगढ़ में हो या वो एक मिनट के लिए दिल्ली में हो, वो अपने आप में उनकी फर्म जो है वो एक मिनट वहां से ट्रेवल करती है। आजकल तो ऑनलाइन हियरिंग हो गई और वो बड़े से बड़े केस को हैंडल कर रही है। क्या हुआ मतलब हुआ कैपेसिटी का रादर देन द लोकेशन का। तो अगर मेरे पास वो कैपेसिटी है डिलीवर करने की, अगर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो हमारे पास प्रेसिडेंट सर ने कहा डिलीवर करने का, अगर मेरे पास वो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है, अगर मेरे पास मेरे स्पोक्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक मिनट के लिए आज की तारीख में, जैसे जय भाई ने कहा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो मैटर करती हैं। एक लास्ट बात और मैं कहना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आज भी एक सुबह सेमिनार में था सोनीपत में, मैंने बोला, और वो क्या कि हम लोगों को जय भाई एक मिनट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा कंप्लायंस फर्क से। जैसा कि सर ने बोला, मैं थोड़ा क्या है कि
हम लोग दूसरे वाली लाइन में काम करते हैं, तो सर ने इंसॉल्वेंसी और वो जो दूसरी बातें कही, मैं बोलूंगा आपको जूरिस्प्रूडेंस की, इंटरप्रिटेशंस की, मैं बोलूंगा एनालिसिस की। आज की तारीख में क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल, क्योंकि जीएसटी से ले लूं, क्योंकि जीएसटी में मैं ज्यादा बेटर अच्छा एग्जाम्पल दे पाऊंगा कि जो मेरी रूटीन एंड रिपीटेटिव थिंग्स है, आज हम लोग जो है वो मेरी परचेज तो डिपार्टमेंट के पास पहले से ही अवेलेबल है। अब ई इनवॉइसिंग का सिस्टम आ गया, पहले 500 करोड़ था, अब धीरे धीरे करके 20 करोड़ पे आ गया। अगले कुछ दिनों में वो B2B की हर एक इनवॉइस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब मेरी सेल्स भी जो है वो पहले अपलोड होगी, मुझे IRN नंबर मिलेगा तो मैं इनवॉइस इशू कर पाऊंगा। मतलब मेरी सेल भी आपके पास है, मेरी परचेज भी आपके पास है। तो जो ग्लोबली सिस्टम है कि केवल OTP पे रिटर्न फाइल होती है, कि डिपार्टमेंट सेल्फ पॉपुलेट, जिसे हमारी भाषा में जो 3B आज आपका था ऑटो पॉपुलेटेड, जिसे आप ऑटो पॉपुलेटेड बोलते हैं ना। ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब क्या कि आपकी सेल है 3 करोड़, परचेज है आपकी 2 करोड़ 80 लाख, 20 लाख का डिफरेंस बनता है 3,60,000। तो आपको जो है वो सिस्टम ही बता रहा है कि आपको 3,60,000 रुपए जमा कराना है। आप एग्री करते हो तो आपको OTP देना है, बैंक से ऑटोमेटिकली 3,60,000 ट्रांसफर हो गए, रिटर्न फाइल्ड हो गई। आप एग्री नहीं करते हो, आपको लगता है नहीं साहब मेरा क्रेडिट जो है वो थोड़ा ज्यादा है या मेरी सेल थोड़ी कम है, आपको उसमें जो रेक्टिफिकेशन करनी है वो कर लीजिए। पर कितना लोगों को जरूरत पड़ेगी? शायद 100 में से 20 लोगों को जरूरत पड़ेगी, 30 को जरूरत पड़ेगी, पर धीरे धीरे करके वो 20-30 भी अपने आप में बोलेंगे हाँ मेरा डेटा ठीक फ्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे रूटीन एंड रिपीटेटिव थिंग्स सिस्टम्स को आउटसोर्स हो जाएंगी, तो जो मेरे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई 90% एनर्जी अपनी सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो कंप्लायंस वर्क में लगा रहे हैं, वो अपने आप में धीरे धीरे करके आपका वेनिश हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस की साइड में जाना पड़ेगा, ताकि ये सब्जेक्ट हमारे कप ऑफ टी बने रहें। एक्साइज में ऐसा ही हुआ, ध्यान दीजिएगा, एक्साइज में ऐसा ही हुआ कि हमारे लोग डील नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत पुराना लॉ था। और अगर मैं आज 50 साल पुराने लॉ में एंटर करता हूं तो मुझे सब्जेक्ट की उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है जितनी मुझे होनी चाहिए टू हैंडल दी लिटिगेशन। आज फेसलेस असेसमेंट आ गया है। फेसलेस असेसमेंट में कौन सफल है? वो सफल नहीं है जो जानता है किसी को, वो सफल है जो अपने आप में बढ़िया तरीके से लीगल ड्राफ्टिंग कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो मैं कहूंगा एक तरफ ग्रोथ करने के लिए अपने आप को पूलिंग करिए, अपने आप को बड़ी फर्म्स बनाइए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, एक दूसरे को अपना स्पोक्स बनाइए, पर एट द सेम टाइम एग्जिस्टेंस की भी बात कर लीजिए, सर्वाइवल की भी बात कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग काम है वो कहीं ना कहीं पर धीरे 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 करके श्रिंक हो रहा है। जब तक हम अपने आप को 1 मिनट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, मैं बोलता हूं रीस्किलिंग ऑफ स्किल, दूसरा वर्ड मैं बोलता हूं न्यू एज जॉब्स, और तीसरा मैं बोलता हूं अडॉप्शन। तो 3 ये जो वर्ड हैं, जब तक हम अपने आप में इनको नहीं समझेंगे, इनके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, हमारे लिए ग्रोथ की बात छोड़िए, सर्वाइवल अपने आप में 1 मिनट के लिए वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बात ये होगा कि कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, कोई बिजनेस में चला जाएगा, कोई एक्स में चला जाएगा, पर वो दैट इज नॉट द एम। क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जिस डिग्री को लिया है, हम लोग कहीं ना कहीं पर उस डिग्री के इर्द गिर्द काम करते रहे। ये भी हमारा 1 मिनट के लिए ध्येय जो है वो अपने आप में होना चाहिए। आई बिलीव आई हैव टेकन much more the time as compared to the allotted one, but thanks you for giving me this opportunity. Over to you, Jay bhai. No sir, we are loving to listen to you sir. And we have a spare time, so don't worry about this time. So, thanks a lot Atul bhai for this wonderful explanation regarding networking, reskilling, adoption. Now let me request Nihar bhai, if you can listen to me. Yes. So nearby number of beautiful points are coming up, and I'm sure if the members who are listening to us, right, the members from these branches, if they can pick up only 2-3 points also from each speakers, and they actually work on that, even 1 point per speaker, then I think that can definitely be something that can change their way how they are looking at the practice. So let me come to a very important point, though it is not straight away related to opportunity, but indirectly it is affecting our opportunity, and that is fees management. I think when it comes to fees, probably chartered accountants are either undercharging, or maybe there is too much of delay, or there is no proper system, right? So, how should we develop the fees management system? That is one thing that I would like to ask you, sir. Yeah, I think very important question, because of which so many members are suffering. Now, let me mention Uttam ji and Atul ji, you have deliberated excellently.
and because you were connected little late, and system was still connecting you, and I somehow got connected early. I had to speak before you. But on fees management, my view is that, see, all our members, I have seen the mindset. They have the fear of losing client if they, that is in their mind, that phobia is in their mind, that if I charge little more or rather reasonable fees, the client will go away and he will give work to some other chartered accountant. Collectively, according to me, all chartered accountants have to understand that if we do not charge reasonable fees, appropriate fees, then where we will compromise? We will compromise in rendering service, which is the most dangerous thing to happen to us, because we will not be able to have infrastructure which is necessary for a CA office. Number two, we will not be able to impart adequate training to the partners and our employees. And as a result, they will not be adequately trained. And particularly in CA profession, things keep on changing, and reskilling every human being in the partnership firm in a proprietary concern is so important. All this requires adequate funds. Apart from this, another very important factor, that if you undercharge, you take home something which is very minuscule. You can't satisfy your family and the needs as per what you deserve. And this gives not only frustration, but also a sort of feeling that my skill, my knowledge, my degree, my qualification is not getting recognized. Now let us see who is responsible for this. Many times in many seminars, webinars, our chartered accountant friends say that why doesn't the institute prescribe mandatory fee? Now, if you look at constitution, it doesn't permit any regulating accounting body or any professional body to regulate fee. They can't put a ceiling limit or lower limit, that below this you can't charge or above this you can't charge. It is not legally permissible for ICAI to do that. It is for us to decide what is appropriate fee and charge it. And I think for this purpose, it is the responsibility of members. Maybe in some cities, if the cost is less and if they are charging little less than the other cities which are little costlier, some price difference is understandable. But somewhere a certificate is issued for 500 rupees and in some other city it is issued for 5,000 rupees. This much gap is not understandable, because how will you have adequate material knowledge to serve your client in the best possible manner? Our endeavor should be to serve the client and not compromise in the quality of service and charge appropriate fees. So I would rather put it on members to realize this and collectively decide that I will not charge anything less than what is, according to me, appropriate and reasonable. Thanks a lot, sir, for a very crisp, concise, and a very beautiful answer. May I request Uttamji? Uttamji, I have two things particular to ask. That is, once again, fees is very important. So I'll ask the same issue to you also, and then Atul Bhai also. And along with that, how do we actually develop our consultancy, our advisory services? Rather than for compliance, how do we slowly and gradually move more towards consultancy and advisory? You spoke about that in your initial remarks, how our members should do that. That is the question I would like to ask you. Jai Cheraji, first of all, there are certain regulatory body, like even the mutual fund or insurance. They do prescribe that this should be the commission paid to this should be your commission and all, right? But we all know that what the malpractice is being done by this company. But ICAI take the privilege and proud not to create any malpractice among the chartered accountant, because
always the allocations put on a chartered accountant. So therefore, we suggested at various occasions, even though we have revised the charging of the fees and all. But I don't think that in any other professional, right? And that too, even for the legal practitioner only, for notary, some fees they are charging. There also, there is a huge discriminations, right? So I do not think at all that we should prescribe at all, and members should also expect from ICAI. What has happened so far, we have all considered ICAI as an association. We are not the association, we are the regulatory body. We are here only to see what the government of India take the decisions and how our institute supervise our member to render the services. But whenever things happen about the extension of date, charging of fees and all these things, again and again, I will say only one line. You have to have the confidence on yourself that what service you are rendering, how it is beneficial to the stakeholders. And have you seen any lawyer has thought for any charging the fees? अरे एक हियरिंग अटेंड करने का 25,000 50,000, हमारा सीए 1,000 रुपए से ज्यादा बोलते हुए घबराता है कि भाग जाएगा तो कहीं. इवन लॉयर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां केस टू केस बेसिस क्लाइंट है. मेरे यहाँ सीए प्रोफेशन में वी डू नॉट हैव अ केस टू केस बेसिस, right? So if you provide and you step in the shoes, right, of as a entrepreneur, कि भैया मैं खड़ा हूं, you are not to worry. आपके पास कोई भी एनओसी लेने को नहीं आएगा. जो डर है ना मन में कि थोड़ा फीस बोला एनओसी लेने आ जाएगी. और वन हैबिट वी हैव टू क्रिएट टू से नो. आज मेरा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो ना नहीं बोलता है. कुछ भी काम बोले तो मैं कर लूंगा, भले नहीं आएगा तो बाजू से करा लूंगा. मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग नो, right, automatically your standard of charging the fees will increase. Every year, if you decide to leave the 15% of your client, automatically you will have a confidence to increase automatic fees. और 10 से 15% फीस आप हमेशा बढ़ा दो. There is no need of ICAI to prescribe. You prescribe yourself. 15% फीस बढ़ाने से 15% क्लाइंट चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली रेवेन्यू कैलकुलेशन कर लो आपका. जो अच्छे क्लाइंट है, जो आपका वैल्यू करेंगे, they will not go. Your service should not be comparable with any other. So बोलेगा वो 1,000 लेता है, मैं आपको 1,000 में कर देता हूँ. Right? So questions of prescription of the fees is at the chartered accountant level only, not with the ICAI. ICAI is the regulators, right? That the member has to be disciplined. The ICAI is there to enhance the knowledge, provide the technical support to the members. Do not expect anything from ICAI. It's a mother institute. What the institute? We all are the institute, right? Individual member take. In last something happened in Noida or some Ghaziabad. All people were saying something. I say, if we have a confidence, stop work for 5 days. All problem will resolve. But there is no unity. There is no confidence on us. So my answer will remain. If you have the confidence, if you have the belief on yourself that your service is superb, not comparable, client without you is impossible. That confidence you have to build up. वो है दूसरा, लेकिन अपने अंदर आना चाहिए. I keep telling to my young students, जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, दुनिया आपकी इज्जत कभी नहीं करेगी. Try to respect yourself first. ये इसमें सब आंसर आ गया. आप थोड़ा भी गुडी गुडी ये वो वगैरह बात वगैरह करेंगे कहीं पे भी, हाँ चला लेंगे कर लेंगे. यू बी क्लियर. लॉयर के पास जाते हुए लोग घबराते हैं, है ना. डॉक्टर के पास हम रिलेटिव भी होता है ना, तो निकलते समय जेब में हाथ डालते हैं. साहब साहब को दे दो कि हमारे सीए को कोई हाथ डालता है, पुराना पैसा बाकी तो भी नहीं आता. बिकॉज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर इज नॉट देयर. तो मेरा सम अप, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग सो मच, if you have the confidence, if you have a belief. आपको मैं बता दूं, मेरा ऑफिस बॉम्बे में है. मैं 94 में कांदिवली में लेके आया था. My all friends used to laugh. अरे सीए है तो बॉम्बे में चर्च गेट में होना चाहिए, उधर होना चाहिए था. आज सबका ऑफिस इधर ही एरिया में आ गया है. तो मैं तो वैसे ही फ्यूचरिस्टिक हूँ. मैं तो 10 साल पहले चलने वाला आदमी हूँ. बिकॉज मेरे पर कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 लाख लोगों में एक हूँ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में. आईसीआई ने मुझे इतनी बड़ी डिग्री दे दी है कि मैं कभी भी भूखा नहीं मरने वाला हूँ.
मैं समाज में नंबर 1 पे रहने वाला हूँ. I keep on thinking myself that yes, I am a great because I am a ICAI member. ये अगर एक हम में आ गए ना, तो ये सब चीज की जरूरत नहीं. तो चेयरमैन सर, मैं तो ये आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं एक ही बात करूंगा कि कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ. मैं आपको बताऊंगा, मैं 2-4 कंपनी में ये जो लो डिडक्शन का जो सर्टिफिकेट आता है, आई चार्ज 5 to 7 लाख. एक बार तलाटी साहब को बोला तो तलाटी साहब बोले ऐसा देते हैं क्या? मैंने लेना आना चाहिए. और ऐसा नहीं कि ऑफिसर के नाम पर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि ऑफिसर के नाम पे नहीं लिया. ऐसे कि मेरे को ये आपको ये फायदा हो रहा है, मैं इतना टाइम दे रहा हूं आपके लिए, बराबर. और नाउ वी स्टार्टेड चार्जिंग द ओवरली. मेरा नहीं कि मैं गया तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ. यू स्टार्ट मेंटेनिंग द मैंडेट. हमारे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैंडेट साइन करवाते, इसीलिए बाद में डिस्प्यूट होता है, एलिगेशन आता है. आप जब भी क्लाइंट आता है आप उसे पूछिए भैया आपको क्या चाहिए, राइट. बी स्पेसिफिक इन मैंडेट कि मैं ये करने वाला हूं, उसकी ये फीस चार्ज है और मुझे काम शुरू करने के पहले मुझे एडवांस चाहिए. कभी भी आपने देखा आर्किटेक्ट के पास में, डॉक्टर के पास देखा, वो टेस्ट नहीं किया, गए तो उसका पैसा लगा, टेस्टिंग के कमीशन के साथ में बात का इलाज का पैसा अलग लगेगा. एडवोकेट ये अपना जो आर्किटेक्ट, आई एम सरप्राइज समटाइम्स, वो कुछ भी नहीं बनाते हैं, बोला मेरा 15% फीस होगा. अरे भैया डिजाइन तो बताओ हम क्या करने वाले. नहीं, विल स्टार्ट आफ्टर पेइंग 5 लाख रुपीज, बाय पेइंग 1 लाख रुपीज, 5,50,000. हमारा तो 5,000 रुपए भी मेंबर नहीं मांग सकते. I think today through this particular seminar and from Rajasthan, if you start taking this कि हमारा mandate बनाना शुरू करें, तो automatically client will understand कि आपके अंदर थोड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है, आप रियल में आप अपनी खुद के टाइम की वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए आपने लिखवाया है. अभी क्या होता है, अरे सर कर लेंगे ना, देख लेंगे. क्यों देख लेंगे? देखने के बाद में हमारा डिस्प्यूट होता है, बाद में एनओसी आती है. So start maintaining the system of issuing the mandate letter. Start increase the fees every year. जाने दो जो जाएगा. और जाएगा किधर? हम 3 लाख के बीच, 3 लाख भी नहीं, अभी तो 1.25 लाख लोग हैं. सारी लिमिटेशन है नंबर की, वो कॉन्फिडेंस हमको लाना है. और फिर इंस्टीट्यूट बैठा है ना, कोई गलत काम करेगा तो I said LIC no, I say Coal India no, I say Bharat Petroleum no. I feel proud sometimes. और गया तो गया, क्या लेके गया? Still उत्तम अग्रवाल remain chartered accountant. So that confidence you have to build up. सब लोग चल के आएंगे और अभी तो ग्लोबली लोग आने वाले अपने पास. जब बिग 4 इतना काम कर सकती है, जहाँ एक दूसरे को जानते तक नहीं है. अतुल जी सही कह रहे थे, हम हमारी कंपनी के नाम के पीछे लगे हुए, अतुल गुप्ता एंड कंपनी, उत्तम अग्रवाल एंड कंपनी वगैरह. And I remember when Mr. Ratan Datta, who founded the PwC, he called me to Agra conference of PwC. मुझे बताया कि उत्तम जी आप लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हो, फिर भी आप लोग साथ में नेटवर्किंग पे नहीं आते हो. हम एक दूसरे से कंपटीशन झगड़ा है, फिर भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. तो अगेन द यूनिटी, रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, राइट. सो ये सारी जो चीजें हैं जिनको हमने कभी कंसीडर नहीं किया है, जस्ट 2-4-6 महीने आप कंसीडर करके तो कोई बात नहीं, काम नहीं होगा, आराम से बैठेंगे. मोमेंट ए चार्टर्ड अकाउंट सीट आइडल ना, ही विल हैव ए डिफरेंट आइडिया. अभी मैंने कोरोना में घर में बैठकर, क्योंकि बैठने की आदत नहीं है, तो मैंने 2 पोर्टल खड़े किए जो मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा था. Mauka.in करके मैंने बनाया, which I am bringing the whole media industry on with the transparency of the platform. I am bringing Champion.in, bringing the sports as an extracurricular activity to the education. I am talking to certain university to grant this one. So हमारे को जो CA में जो knowledge दिया ICAI ने, is not for filing returns ये वगैरह, not for always asking for the opportunity. बहुत कुछ है माइंड है, ये हमारी opportunity है. How to use, that is very important on all of us. So Chairman, this is my view on this. Again and again I keep telling, be industry specific also, right? आज हम सब लोग जो स्क्रीन पे बैठे हैं, सबके नाम के आगे खाली CA उत्तम प्रकाश अग्रवाल, CA योगेश, CA जय छेरा. Why not the CA उत्तम प्रकाश अग्रवाल investment banking? Why not अभी is a chartered accountant, insurance sector, mutual fund, artificial intelligence, GST, IFR, Ind AS. There are various. So unless and until you are not
specialized, that will be again a problem. Future members should, young members should start focusing on that. हमारे लोग चाहिए. आज हम बैंक में था, मैंने कहा ऑडिटर अपॉइंट करना, 5 नाम आए, 6ठा नाम नहीं आया, बिकॉज वो हर बैंकों में वही जा रहा है. म्यूचुअल फंड में हो तो वही नाम 5-6 घूम रहा. So be specific in particular sector, gain the knowledge, and go to the industry. Industry will welcome you. Thank you, Jacharaji. Thank you, sir. Thank you. So, Uttam was talking about specialization. Now I'm coming back to Atul Bhai. Atul Bhai, something on consultancy and fees collection, if you can add, and any other topic you'd like to add up, sir. Thank you, Jai Bhai. Thank you, Jai Bhai. I'm aware that we are short of time, so I will say only 3 words, 3 liners. One is that if you are asking for the fees, मैं जैसे सर ने बोला अभी सारी बातों का एक वो है, either whether you are a jack of all or you are the master of one. तो अगर हम फीस की बात करें तो फीस अपने आप क्या है ना जी, आपने सर ने क्या बोला कि हम किसी बड़े वकील पे जाते हैं 50,000 रुपए फीस देते हैं, वो वहीं पर ही ऐसे वकील भी हैं जो 1 मिनट के लिए किसी भी छोटी सी फीस पे, अल्टीमेटली क्या होता है कि डिपेंड है कि आप, हम एमबीबीएस को दिखाते हैं तो हम उसको धमका के दिखाते हैं, एमडी को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर को भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े तो वेट करके 2 घंटे की वेट करके 2 दिन का अपॉइंटमेंट लेके एडवांस फीस देके दिखाते हैं. तो अनलेस एंड अनटिल हम लोग जो है वो जो मेरे पुरानी बातें थी मैंने कही थी उसी को मैं वो जस्ट अगर मैं शब्दों में पिरोऊं एक लाइन में तो you have to check whether you are a jack of all or the master of one. तो फीस अपने आप गवर्न हो जाएगी, मिलने की भी फीस मिलेगी. जो दूसरी बात है उसी में वो नो फ्री कंसल्टेंसी. तो अभी क्या है ना जी, हम लोग जो है वो अगर मास्टर ऑफ वन बन जाएंगे तो मिलने की फीस मिलेगी आपको, कि भाई आपको जैसे सलाह लेनी है आर्किटेक्ट से, जैसे सर ने बोला एडवोकेट से, तो अगर आप एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और जो आउट ऑफ द बॉक्स वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हैं तो आपको मिलने की भी फीस मिलती है जी. आप वो नॉर्मल फीस की तो बात छोड़िए कि आप कितने भी फीस चार्ज कर सकते हैं, और फिर वही डिपेंडेंट सप्लाई का गेम है कि अगर आप ज्यादा वो है नॉलेजेबल है तो आपको फीस बढ़ती चली जाती है जी. आज वकीलों का भी ऐसे होता है जी, पहले वो 5,000 रुपए मिलने के लेता है, बाद में एक हियरिंग के वो 5 लाख भी लेने लगता है. और जो तीसरी चीज है वो जो मेरे को लगता है कि आपको उसके अंदर मैदान में कूदना पड़ेगा वो है हाउ टू से नो, लर्न टू से नो. तो वो वापिस आपको, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो और आप उस बातों को कह पाओगे जय भाई, तो आपको सिखाना पड़ेगा मेंबर्स को हाउ टू से नो, लर्न टू से नो. आप हम लोग जो है वो 1 मिनट के लिए किसी भी चीज के लिए नो नहीं कह पाते. वो अपने फैमिली इश्यूज भी हमसे डिस्कस कर रहा है तो हम नो नहीं कह पा रहे. हमें पता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो भी हम नो नहीं कह पा रहे हैं. हमें पता है कि वो फीस कम दे रहा है पर हमारा काम नहीं चलेगा पर फिर भी हम नो नहीं कह पा रहे हैं. तो हमें नो कहना कैसे सीखना है कि वो यस लगे, वो लगे यस लेकिन कहा नो है. तो वो अपने को, नहीं तो क्या हुआ नो में, अब हमारे जैसे मान लिए सर ने बोला राजस्थान हरियाणा वाला, तो नो जो है कहने का तरीका जो है वो सीधा ही दूसरे तरीके से नो कहेगा. तो इसलिए कहीं ना कहीं पर जो है वो नो कहने की भी आर्ट है, वो हमारे मेंबर्स को सीखनी पड़ेगी. दैट्स द पॉइंट. Thank you very much, Atul Bhai. And Mohit ji, I think the next session is waiting, I assume so. हमारे पास तीनों excellent speakers हैं, I am sure about it. Time is limited. Otherwise, हम इतनी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं. टॉपिक वेल्थ मैनेजमेंट, IFRS, compliance audit जो मैंने कभी अतुल भाई से ही सुना था, financial modeling, या sustainability reporting. Of course, Niyar bhai spoke on that. Incentive schemes, transfer pricing also has been discussed. Systems audit. So many opportunities coming up. The fact is that सरल भाषा में अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जहां पे एक बिजनेसमैन को ग्रोथ दिखेगा, जहां पे उसकी वेल्थ बढ़ रही है किसी भी तरह से, या तो उसका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, कॉस्ट डाउन जा रहा है, या उसका टाइम बच रहा है, भाई हम अगर उसको एसओपी बना के दे रहे हैं, सिस्टम्स दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, वहां पे जहां वैल्यू बढ़ेगी वहां पे आपको सामने फीस भी अच्छी मिलेगी. सो मोहित जी, क्या किया जाए, ये सेशन को कट किया जाए या जैसे आप कहें? Again, with a sorrow in my heart, I had to conclude this session. But having these mega stars in our screen right now, we are so humbled and so delighted to have all the past presidents at one screen. And we hats off to Uttam sir for his guidance, Atul sir and Nihar sir. They all are our mentors and our favorites. And
so well. They are explaining the such kind of so small in front of them to get all this kind of knowledge. That we are very obliged, deeply obliged, and definitely we will call you again for a full day session or 3 hours, 3 hours or 2 hours. As Jaisar said, we had to arrange some physical sense of seminar, but this is the way we can arrange all the participants. We are having a huge number of participants, and this kind of session, when we are getting an interaction, personal interaction with such kind of leaders, gives a detailed opportunity to get new scopes. And thank you all. I just want to hand over the session to Yogesh Kabra ji to please present the vote of thanks. And Jay sir, I told you we are about to listen from you also, but due to short of time, we will call you again, sir. I'll only add one sentence. मुझे ब्रूस ली का एक sentence पसंद है, and वो मैं आपको बता रहा हूँ. To hell with circumstances, I create opportunities. I think that is out like from my side. Yeah, please. मोहित जी 3 स्टार नहीं है देश में, 3 लाख स्टार है, हम 3 स्टार नहीं है. All CAs are star for the country. Definitely, sir. Don't underestimate any chartered accountant, including you all. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much to all. Thanks, sir. Pleasure is all ours, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Atul sir also, sir. Thanks, sir. Yogesh ji, please do formal vote of thanks. Yeah. Namaskar. I, CA Yogesh Kabra, Chairman Chittorgarh branch, feels privileged to have been asked to propose a vote of thanks on the end of second session on the last day of National Conference Avsar. First of all, extend my wholehearted thanks to our Honorable Past President, CA Niyar and Jambu Saria, the CA Atul ji, CA Uttam ji Agarwal, who spared time from their busy schedule to grace this national conference. I am fortunate enough to receiving full guidance and support during my articleship tenure at Vasai Hostel from Uttam sir. Also placing thanks to past Vice Chairman WIRC and motivational speaker Jay Chera sir for coordinating, conducting this session so nicely. Thank you very much to all the participants for attending this conference and making it grand success. Last but not least, I especially thanks to the people who have been the backbone of this event, our technical arrangement team, all the coordinators, chairmen and office bearers of all the host branches, staff, our media and press persons, as without their efforts, it is not possible to conduct this conference. Thank you once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you a lot. And now, without taking any of a second extra, I just want to hand over the session to my elder brother and a friend of mine, CA Saurabh Agarwal ji, and also Akash Bhagroti ji and Gopal Mundra ji. It's over. It's all yours. And I welcome Rishi Kumar Das ji from the ISKCON member. Radhe Radhe, sir. Welcome, sir. First of all, myself Saurabh Agarwal. I'm welcoming all of you in this national conference again. It's very glad to me to welcome you, to get the opportunity to welcome you, all of you. First of all, I would like to welcome Mr. Rishi Kumar Das, sir. He is the Vice Chairman of ISKCON Delhi, and many things that he is doing in his life for the betterment of the society, betterment of the life of the people, which we will definitely become the part of their kind words in the today's session. Sir, for your welcome, I am feeling very small alone. So I would like to request Mr. Akash Bhargoti ji to make you a warm welcome with your kind words. Mr. Akash Bhargoti ji, he is a chartered accountant, and he's very near to the young chartered accountants of Jaipur. He's a past chairman of Jaipur branch also, and the last few years he has spent a very good time with the young chartered accountants of Jaipur. There's a very huge fan following of him. So Akash ji, I would like to take your help to make a warm welcome of Shri Rishi Kumar Das ji. Please, over to you, sir. Thank you, Saurabh ji. And first of all, I would like to congratulate all the 5 branches, the hosting branch, Kishangarh branch, and then the Ajmer branch, Chittorgarh branch, Alwar branch, Sri Ganganagar branch, for conducting such a nice NATCON and giving all the members जो आपने topics choose किए हैं
and the kind of income tax में जो speakers का collection है, I think hats off to all you guys. बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब जो टॉपिक का सिलेक्शन किया आप लोगों ने किया. एंड टू ये सेशन का आई थिंक लास्ट सेशन, ये पूरे नेटकॉन का आपका लास्ट सेशन है. एंड इस सेशन का भी जो टॉपिक है दी स्ट्रेस जो हम प्रोफेशनल लाइफ में फील कर रहे हैं, एंड दी वंडरफुल. एंड अब जो आने वाला टाइम है दी जुलाई मंथ इज कमिंग, जहाँ पे इनकम टैक्स का पूरा प्रेशर आ जाएगा, एंड देन फिर द टैक्स ऑडिट सीजन, एंड देन द जीएसटी ऑडिट्स का, नॉट जीएसटी ऑडिट बट 9 एंड 9C का ऑडिट. तो पूरा ये जो टिल February टू जो अपन स्ट्रेस फील करेंगे, आई थिंक उनको मेंबर्स को कैसे बर्स्ट आउट करें, उसके लिए आई थिंक दास सर आज हैं हमारे बीच. वो हमको बताएंगे प्रोफेशनल्स को कैसे हम अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, सेम टाइम मतलब प्रेशर भी लेना है, प्लस अपने फैमिली को कैसे टाइम देना है, कैसे अपना बैलेंस प्रेशर करना है. सो दिस इज ऑल. एंड आई एक्सपेक्ट कि दास सर हमको सब चीजें पूरी अच्छे से बताएंगे. हम सब प्रोफेशनल्स को एक मंत्र देंगे जिससे हम अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो पूरा अच्छी तरह मैनेज कर ले. एंड वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट टू ऑल द ब्रांचेस फॉर कंडक्टिंग सच ए सक्सेसफुल NATCON. Thank you, Akash Saurabh, ji, thank you and very thank much. you, Mohit ji. Thanks for your kind words, sir. बिल्कुल very well said. But you have said that the professional life में stress कभी कम ही नहीं होता है. हर अगला दिन एक नए stress के साथ शुरू होता है. हम जितना इसको सिंपल बनाना चाहते हैं ये उतनी टिपिकल बनती जाती है. और not only the professional life, the personal life, the everything which we have, मतलब हर एक दिन एक मुश्किल के साथ होता है. ये बात अच्छी है कि हर एक दिन एक नए सूरज के साथ भी होता है, लेकिन इस मुश्किल को या तो हम ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, या शायद ये मुश्किलें हम हैंडल करना चाहते हैं लेकिन हमसे शायद बड़ी अपने आप को लगने लगती है. तो इन चीजों के लिए हम जरूर आज दास सर से अपने काइंड वर्ड्स लेंगे और समझेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट और है सर, दास सर आपके साथ, कि टॉपिक तो हमने आज स्वॉट एनालिसिस फॉर द प्रोफेशनल स्ट्रेस के लिए चूज किया है, लेकिन क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं स्क्रीन पे, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम सिर्फ इतने से पार्ट के लिए नहीं रखना चाहते. हम चाहते हैं कि ऑल टाइप ऑफ योर एक्सपीरियंस के साथ आपने जो जो चीजें आज तक प्रोफेशनल कल्चर में और कॉर्पोरेट्स के साथ डिलीवर किए हैं और उनको समझाया है, वो सभी चीजें कुछ जहां तक हम समझ सकें हमें समझाएं. हम कुछ नया आपके साथ जरूर सीखना चाहेंगे इन एवरी टाइप ऑफ थिंग. तो टॉपिक की लिमिटेशन से बियॉन्ड जाके हम कुछ आपके साथ जरूर सीखना चाहेंगे. इसी कड़ी में स्वागत की इसी कड़ी में मैं एक नाम और लेना चाहूंगा. हमारे एक और RCM आज हमारे साथ है स्क्रीन के ऊपर, श्री शरद जी जैन उज्जैन से. और मुझे मतलब आज सुबह ही ये पता लगा कि शरद जी सर इज द फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट रैंक वाज इन द डीसा. तो ही इज एन ग्रेट थिंग. शरद सर हमारे साथ है, ही इज द फर्स्ट रैंक होल्डर डीसा, और करंटली ही इज इन प्रैक्टिसिंग विद द ITAT एंड ऑल द सुपर जुडिशियली मैटर्स. तो शरद जी सर, दास सर का वेलकम करने के लिए हमारी हेल्प करें. बिल्कुल, ओवर टू यू सर. Sir, you are on mute, sir. शरद जैन सर, you are on mute, sir. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी. मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर. Whether I am audible? बिल्कुल परफेक्ट सर. हमारे आज के कार्यक्रम के सभी अतिथिगण, वक्तागण और सारे पार्टिसिपेंट्स, सभी को नमस्कार. आज किशनगढ़ ब्रांच, बीकानेर ब्रांच, अलवर ब्रांच, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर ब्रांचेस जो हैं, ये सभी मिलकर हमारे इंस्टीट्यूट की जो PDC कमेटी है उसके अंतर्गत नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है. 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से आज तीसरा दिन है, और हम जिस सेशन को डील कर रहे हैं वो शायद आखिरी सेशन है. तो हमारा जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो थीम है अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर CA, तो निश्चित तौर पर ये जो थीम है और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट है. और मैं इसको दूसरी तरह से कह सकता हूं कि काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं जिनको कि काफ़ी अच्छी तरह से डील किया गया है. और हमारा जो अंतिम सेशन है वो है स्वॉट एनालिसिस ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रेस. तो सब कुछ जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे योगासन करते हैं तो तरह तरह के योगासन होते हैं, आखिरी में हम शवासन करते हैं. तो शवासन करने के बाद उसका जो उद्देश्य रहता है
कि सब कुछ हमने देख लिया, उसके बाद सारे स्ट्रेस से हमको रिलैक्सेशन हो जाए। तो ये जो हमने मेंटल योगासन किए हैं 2 दिन, 2.5 दिन, पौने 3 दिन तक, तो उसके बाद अब हम जब आध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, अब जब हम स्ट्रेस से बाहर निकलने के प्रयासों की तरफ चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह वही उसी प्रकार का आसन है जो हमको रिलैक्सेशन देगा, जो हमको आराम देगा, जो हमको आनंद की अनुभूति करवाएगा। तो ये जो प्रोफेशनल स्ट्रेस की बात चल रही है, आज जो मनुष्य का जीवन है तनाव से भरा हुआ है, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो। स्ट्रेस से बाहर निकलने की आज हमको काफी आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में, अपने समाज के जीवन में और हमारे जो देश के प्रति हमारे कर्तव्य है, उन सब में आगे बढ़ सके। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे भारत में जो आध्यात्म है, इसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे कोई और बात हो, चाहे झगड़े हों, किसी भी बात का समाधान हमारे आध्यात्म के जो सिद्धांत है उनमें है। तो जो तनाव मुक्ति है, ये तो काफी छोटी सी चीज है। हमारा जो साहित्य जो इतना समृद्ध है, तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल स्ट्रेस जैसी चीज जो है, उसका अगर हम समाधान भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में ढूंढने जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, निश्चित तौर पर हम इसका रास्ता प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी सिद्धांत को समझाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय संत श्री ऋषि कुमार जी दास साहब हैं। ये इस्कॉन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन को सभी जानते हैं कि भारत में आध्यात्म का एक बड़ा नाम है। आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी संस्था है, एक विशाल संस्था है, वो इस्कॉन है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो गीता को समर्पित है। गीता के सिद्धांतों को जो अनुसंधान करते हैं, सिर्फ गीता के सिद्धांतों को जनरल बताने वाला कार्य वहां पर नहीं है। गीता का अध्ययन, उसके सिद्धांतों का अनुसंधान, और अनुसंधान करने के बाद जो मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान को खोजकर उनके बीच में उसका प्रचार करना इस संस्था का कार्य है। और ऋषि कुमार जी दास तो इसमें आदरणीय गुरुदेव काफी ऊंचे पद पर है। तो मैं समझता हूं कि आज गुरुदेव के आशीर्वचनों से हमारे सारे मेंबर्स को काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और हम सभी गुरुदेव के आशीर्वचनों से कुछ न कुछ सीख कर तनाव मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो तनाव मुक्ति के बारे में मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रोफेशन में काफी सारे स्ट्रेस आते हैं, पर मेरा ये कहना है कि हमें कभी भी कोई तनाव नहीं लेना है। कोई भी अगर तनाव या कोई समस्या आती है, तो अगर हम उसको एक चैलेंज की तरह लेंगे और पूरे जोश के साथ उससे निपटने में अपने प्रयास करेंगे, तो हमें तनाव नहीं होगा बल्कि आनंद ही होगा। मैं एक बार बड़े आदर भाव से आदरणीय हमारे ऋषि कुमार जी दास साहब, आदरणीय गुरुजी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारी कमेटियां, मोहित जी, सारे चेयरमैन, 5 ब्रांचों के, सारी मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और मंच जो है वापस से हमारे सौरभ भाई को सौंपता हूं। सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद शरद जी। आपके जब अध्यात्म की बात हो तो आपके शब्दों के अंदर एक अलग ही वेटेज होता है। रीजन एक शायद ये भी है कि आप महाकाल की नगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी बातें ज्यादा सुनने योग्य होती है। और बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने एक जो कंटेक्स्ट क्रिएट किया आज इस मीटिंग का, कि इस तरीके से जो एक भावना जो जुड़ना शुरू हुई है सब लोगों की आध्यात्म को लेके और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, आपने बड़ा ही सुंदर एक विवेचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी के अंदर मैं मेरे को कोऑर्डिनेटर श्री गोपाल जी मुंदड़ा साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे तो ऋषि कुमार दास जी सर का कोई परिचय की आवश्यकता ही नहीं है, सभी लोग इन्हें बड़े अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्योंकि आज आईसीआई के मंच पे पहली बार सर पधारे हैं, तो एक छोटा सा जीवन परिचय आप जरूर उनका सभी लोगों को दें, हमारे पैनलिस्ट और हमारे ऑडियंस उनको सुनने से पहले एक बार जाने जरूर। तो एक जीवन परिचय आप देने की कोशिश करें सर। धन्यवाद सौरभ जी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं प्रभु ऋषि जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उनका परिचय देना तो शायद अपने बुद्धे में नहीं है, जो थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी है आपकी वो मैं बताना चाहूँगा। वो वाइस प्रेसिडेंट है आइस्कॉन दिल्ली के। वो सर्विंग एज वाइस चेयरमैन ऑफ नॉर्थन इंडिया डिविजनल काउंसिल ऑफ इस्कॉन, ट्रस्टी ऑफ अन्न मित्रा फाउंडेशन, सर्विंग मिड डे मील to 10 lakh children per day. Great sir, great sir. Global topper at GBC College of Spiritual Leadership, 13 years corporate experience in 2 national news
Pepper Group and has been a corporate trainer at several corporate organizations over the last 2 decades. By education, he is MBA, National University Prize winner in quiz and debates, discipline of ISKCON India, Chairman H.S. Gopal Krishnan Goswami Maharaj since 2000. Thank you, sir. Great, sir. Great, sir. Thank you, Gopal ji. Thank you for the kind words और हमको जानने के लिए मिला. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो ऋषि सर, आज आपको यहाँ इस मंच पे पाके हम लोग सब धन्य हैं और इट्स आवर वेरी मतलब ये चीज एक है कि आईसीआई के लोगों को आज तक स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीजें मिली, आज शायद स्ट्रेस कम करने वाला पहला कोई सेशन हमको मिलेगा. तो ऋषि सर, आपके आदरणीय, आपके काइंड वर्ड्स के लिए हम लोग सब बेसब्र हैं. प्लीज सर, आप शुरू करें सर, अपने आशीर्वाद रखेंगे सर. थैंक यू सर. Can you allow me screen sharing because it says host disabled participant screen sharing. Mohit, can we share the screen? Can we do the right to screen sharing? निसर्ग जी प्लीज एक बार देखिए प्लीज. सर वांट टू शो हिज प्रेजेंटेशन. निसर्ग जी, तो जब तो शो हो रहा है आप एक बार बेसिक स्टार्ट कर लीजिए. जब तक निसर्ग जी करते हैं, मैं एक चीज ये शेयर करना चाह रहा था हमारे सभी ऑडियंस के साथ कि अगर वो कोई सेशन से रिलेटेड या अपनी किसी व्यक्तिगत सोच से रिलेटेड कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो वो विंडो पे शेयर अगर करें, पर्सनल विंडो पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं. तो जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, अगर सेशन के बाद हमें समय अनुमति देगा तो सर के साथ हम वो शेयर करेंगे और उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप चाहें तो वो मुझे पर्सनल विंडो पे आप भेज सकते हैं. तो जस्ट This is a test for the panelists that he should not come under stress. I agree with that. You will show your some. It's a Lord's plan that if I want to speak about stress, then I better know what I'm talking about. Okay, so till the time screen sharing happens, we'll do a little bit of prayer and then we start. Om Ajnanatimiraandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamine Filamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Hey Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. पहली बार आप सबसे भेंट हो रही है. So we'll try to mix it up in English, little bit of Hindi, little bit of English. Great, sir. That's what I was told. I don't know if I'll be able to share the screen, but if I'm not able to, I will still continue. I'll speak the way I can speak the way I can. तो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दिया मुझे. उसके बाद मैं आप कुछ बोलना चाहता था आपको कि अगर आपको ये सेशन बोर लगे तो बोर का डेफिनेशन जानते हुए शुरू करते हैं. So Ambrose Bierce says in the Devil's Dictionary that a bore is a person who talks when you wish him to listen. वो आदमी जो इतना बोलता है जब आप चाहते कि मत ज्यादा सुने. So that is a bore. I hope I'm not a bore. Let us see. तो आज मैं फोकस रखूंगा स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू डील विद एंजाइटी. So what is basically a healthy job? Healthy job is one where the employees are appropriate in relation to their abilities and resources. उनकी जितनी क्षमता है, उनके पास कार्य करने के लिए जो उपभोग हैं, वो दोनों संतुलित मात्रा में है और उचित मात्रा में है. उनको जो कार्य करना है उसके ऊपर उनका नियंत्रण उचित मात्रा में है और
उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे उनका कितना सहयोग मिल रहा है, that will make it a healthy job. So abilities and resources, control over the job and support they receive from the colleagues, तब जाके किसी का भी जॉब हेल्दी होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि एक वातावरण स्वस्थ है आपके कार्य क्षेत्र में, वो कैसे हमें पता चलेगा? इसका मतलब है वन इन विच, ऐसा नहीं कि कुछ हार्मफुल कंडीशंस है, बहुत ही दुखद दुरित परिस्थितियां हैं, उनका मात्र अभाव नहीं है, लेकिन साथ साथ देयर शुड बी एन अबंडेंस ऑफ हेल्थ प्रोमोटिंग वंस। आपका स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां आवश्यक है। वो है तो आपका वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी है, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, चाहे किसी कंपनी के पैनल में है, चाहे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप देखें। तो साधारणतया स्ट्रेस मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं। एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। इस यू स्ट्रेस का लाभ ये है, इट इज दैट इट विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट एंड इट विल हेल्प यू फोकस। इट विल एनकरेज यू टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। पहले मैं सुन रहा था उसके पिछले पैनलिस्ट से कि बहुत सारे नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आपके इस पूरे कार्यक्रम का ही थीम अवसर है, तो मेरे से शायद अपेक्षित पे है कि मैं कुछ मंत्र दूं। तो मैं मंत्र पे पहुंचने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव अगर स्ट्रेस है तो देन वी विल फील लाइक परस्यूइंग आवर गोल्स। हमारे लक्ष्य क्या है उसको पीछे पड़ेंगे लगभग हम, और हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य मिलेगा, एक पर्पस मिलेगा, एक अर्थ मिलेगा, और उससे फाइनली यू विल फील हेल्थियर एंड हैप्पियर। This is the kind of stress we are talking about. Then that is positive. But this stress is generally short-lived. जैसे कि आपको छुट्टी मिल गई या आपके बॉस ने आपको थोड़ा इंक्रीमेंट दे दिया, कुछ समय के लिए आपके प्रोजेक्ट टारगेट आपने मीट कर दिया, so you have an acceleration of positive feelings. So this is generally short-lived. लेकिन आप वर्क लाइफ देखेंगे, there is more evidence of distress. Distress is negative stress than there is positive stress. साधारणतः ऐसे देखा जाता है। तो आप प्रमाण के रूप में देखना चाहेंगे तो वर्ल्ड वाइड 615 million people, almost a billion people, they suffer from depression and anxiety. 1935 तक, 2035 तक आप देखेंगे, most probably as predicted, depression will be one of the largest cause of deaths. और इससे क्या होता है, आप सीए लोग हैं, आपको आंकड़ों से ज्यादा मतलब है। If you look at the global workforce, an estimated $1 trillion of productivity is lost. This is mentioned by the Harvard Business Review. $1 trillion is almost like India's budget, little less than India's budget, maybe 1/3 of that or something. That much productivity is lost every year because of depression. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साधारणतः स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? तो पहले मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया था, मुझे अभी भी याद है, 2007-8 में मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ा। सन 2000 से मैं आध्यात्मिक जीवन में हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि समाज की सेवा, भगवान की सेवा में मैं शरणागत होऊंगा ISKCON में। ये 2008-9 की बात है। तो लगभग उसी के समय रिसेशन चल रहा था। तो मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि कोई भी जॉब है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो उन्होंने 3 चीजें बताई। उन्होंने बताई, इट शुड बी अ जॉब यू नो हाउ टू डू। तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे लिमिटेशंस क्या है, ये काम मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने जीवन में संतुलन उचित मात्रा में ला सकता हूँ कि नहीं। और साथ साथ वो बाध्यताएं, वो ऑब्लिगेशंस ना रखें जो आप नहीं चाहते हो।
Don't take up unnecessary obligations of any types. Don't make commitments which are beyond what you prefer. So it should be something that you know how to do. It should be a job you know how to do. दूसरी बात, it should pay you well. Pay you well मतलब सिर्फ आर्थिक नहीं, in terms of satisfaction, in terms of relationships, किसी भी प्रकार से आपको उसका प्रतिसाद मिल रहा है, प्रतिक्रिया मिल रही है आपको. एंड तीसरी बात, it should be a job you know how to do. आपको करने आना चाहिए और आपको अच्छी पेमेंट भी होनी चाहिए और साथ साथ स्टेबिलिटी होनी चाहिए. ये 3 चीजें हैं आपके जॉब में. भले ही अवसर का मतलब है कि हम नए नए अवसर भी ढूंढे, लेकिन अवसर का ये भी मतलब है कि हम अपने वर्तमान परिस्थिति में नए अवसर ढूंढें, वर्तमान परिस्थिति के अंदर रहते हुए भी अवसर ढूंढें, जिससे कि हम अपने कार्य क्षेत्र में और प्रभावशाली हो सके, मोर इफेक्टिव. तो इसलिए हमें इन प्रकार के आदतों का अनुशीलन करना चाहिए, जिससे कि इन जनरल वी विल बी लेस रिएक्टिव टू स्ट्रेस. तनाव या दबाव के प्रति हम ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे. उसके हिसाब से हमारे कुछ हैबिट्स हमें डेवलप करने पड़ते हैं. कई लोग योगा करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं या सिमुलेशन करते हैं. दिमाग में सोचते हैं मैं बीच में सो रहा हूँ, मेरे हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक है. नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो मेरे हाथ में जूस है. इस प्रकार से विजुअलाइज करते हैं. या शीशे को देखकर बोलते हैं आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रांग. मैं मुस्कुराता हूँ, मैंने इस दुनिया को इस अपने मुट्ठी में कर ली है. All this kind of positive things. And above all, we should be comfortable with saying no to those activities that don't really help us. So these are like conventional approaches to stress. क्या कर सकते हैं stress के लिए? लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये लोग एक्सपर्ट हैं स्ट्रेस के बारे में. वो लोग बताते हैं पीपल इन जनरल दे वांट कंटेंटमेंट, तृप्ति, संतृप्ति. दे वांट लव, दे वांट हैप्पीनेस फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क. एक सार्थक कार्य क्षेत्र से उनको संतृप्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए. एंड दे शुड हैव नरिशिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स इवन एट होम. अ हेल्थी माइंड, अ हेल्थी बॉडी, दोनों चाहिए. इन सबसे ऊपर द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन सेज, ऐसा नहीं कि कोई योग की संस्था बोल रही है, यू रिक्वायर अ स्पिरिचुअल कोर एंड अ रीजन फॉर लिविंग. जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए और एक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु होना चाहिए. देन वी विल बी हैप्पी. एंड इफ यू आर हैप्पी यू विल नॉट बी अंडर स्ट्रेस. तो एक famous author, Marilyn Tam, she's a PhD. She wrote a book in 2013. The book was called The Happiness Choice. Sukh ka vikalp. So what does she say in that? She says that शांति अथवा सुख आता है अंदर से. तो कुछ ऐसी चीज जिस पे हमारा विश्वास हो, जब हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उस समय जो हमें मदद करें. I think now you can see the screen, right? Yeah. Yes, sir. So there should be belief in something that is greater than ourselves. हमसे बेहतर कुछ है, हमसे बड़ा कुछ है जो कि हमें पालता है. एक कॉलेज के समय मैंने एक स्टोरी देखी थी, आपको इंटरनेट में बहुत बार मिला होगा. एक व्यक्ति रात को सो रहा है, उसको सपना आ रहा है और इस सपने में वो देख रहा है कि सागर के तट से चल रहा है और वो देख रहा है कि उसके जीवन की अलग अलग घटनाएं वहां दिख रही हैं, उसके सामने से झलक जैसे गुजर रही हैं. They're whizzing past as glimpses. और उसने देखा कि और साथ में भगवान भी चल रहे हैं. और उसने देखा, इस तरफ देखा तो भगवान चल रहे हैं, और यहां देखा कि जहां सुख की घड़ी है वहां पर 4 निशान है, मतलब 2-2 जोड़ी चरण के निशान है. उसने देखा हाँ भगवान है, मैं हूं. तो उसने भगवान से पूछा कि क्या आपके चरण कमल है? हाँ बेटा, ये मेरा है.
तो फिर आगे देखा उन्होंने, जब उनके जीवन में दुख की घड़ी जब जब आई, तब एक ही फुटप्रिंट के पैर दिख रहे थे, बस एक ही जोड़। तो उसने पूछा, भगवान आपने तो बताया, आप तो बताते हैं कि मैं तुम्हें कभी त्यागता नहीं हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन जब जब दुख का समय आया मैंने देखा कि आपने मुझे मेरा सहारा छोड़ दिया। तो भगवान ने बताया, मेरे बच्चे, ये मेरे ही पैर के निशान है, जब जब तुम्हारे दुख का समय था मैंने तुमको अपने हाथ में उठाया था, इसलिए तुम्हारे पैर के निशान नहीं दिख रहे। So when God gives us a problem, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि God I have a problem, हमें बोलना चाहिए problem I have God। जैसे दीवार मूवी में डायलॉग आता है ना, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला, मेरे पास क्या, मेरे पास माँ है, तो मेरे पास गॉड है। That is an understanding we should have, that there is a spiritual core for all of us. We are not human beings practicing spirituality. We are spiritual beings who are in a human body. ये पहले मालूम होना चाहिए। शीला प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, 70 साल की उम्र में 3 हार्ट अटैक के बाद कार्गो शिप में गए थे अमेरिका, क्योंकि फ्लाइट का पैसा नहीं था, तब तक प्लेन तो चलते थे, पैसा नहीं था। सुमति मोरारजी नामक सिंधिया शिप लाइन्स के ओनर थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया, कार्गो शिप में अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने बताया, मुझे पता नहीं था कि लेफ्ट है कि राइट है, कहां मुड़ूं। उनके हाथ में सिर्फ $6 थे, 40 रुपए। सौरभ जी इंट्रोड्यूस सेइंग दैट इस्कॉन भारत में बहुत विख्यात है। टुडे इस्कॉन हैज 750 सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। It started with a 70-year-old man, $6. Look at the return on investment. Investment banking की बात चल रही थी, wealth creation की बात चल रही थी. This is wealth creation. Why? Because he took the energy from inside, and that energy is not just his. That energy is the same God who carries us. He had faith. कृष्ण को वो प्रार्थना कर रहे हैं, बोस्टन पियर पे जहाज रुकी कुछ समय के लिए, तो उस पे खड़े खड़े उन्होंने कविता लिखी। उसके अंत में वो लिख रहे हैं, मुझे नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ तुम्ही, मुझे ऐसे नचाओ जैसे कि कठपुतली की तरह मुझे नचाओ, क्योंकि आप किसी वजह से आप मुझे लाए हो, मुझे पता नहीं क्यों लाए हो अमेरिका में। उनके गुरुदेव का आदेश था कि पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो कृष्ण भावनामृत का, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ लिखो। Today, the Bhaktivedanta Book Trust is practically the largest publisher of spiritual literature in the world. Right. Books have been translated in over 80 languages of the world. Avsar, opportunities come in many ways, but you have to go within. If you're peaceful inside, you'll be peaceful outside. If you're corruption inside, you will give corruption outside. चाहे सीए हो, चाहे कुछ भी हो, सीए हो, बीए हो, एमए हो, एमबीए हो. When I did MBA almost 26 years back, life was different. I got placed in a newspaper industry. Every day there is challenge. अगले दिन पेपर टाइम पे निकलेगा नहीं तो इतना शेल्फ लाइफ कम है न्यूज़पेपर का कि आधे घंटे में व्यक्ति पढ़ के फेंक देता है. तो जल्दी मार्केट में पहुंचना जरूरी था. ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करते थे, विश्वास नहीं करोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचने के पहले जो ट्रक्स जाते थे उसके रास्ते में ऑपोजिशन कंपटीशन के ट्रक जाते थे, कील डालते थे ताकि ट्रक लेट पहुंचेगा. सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड is that if you want to overcome stress, is that you must understand that your success depends on your inherent strength and the strength of somebody higher. Your success does not depend on somebody else's failure. It is not a zero-sum game. मैं जीतूंगा तुम हारोगे. वो खेल भौतिक जगत का है,
But we must understand in the long run, if we want to be successful, our success depends entirely on our ability. जैसे मैं एक ऑटो रिक्शा में चल रहा था, मुसलमान भाई चला रहा था, उस ऑटो में लिखा था मेरी मेहनत उसकी रहमत. So we should work like everything depends on our ability, but we should pray like everything depends on Krishna, everything depends on God. Combination of both are required. Then you can change then you can change $6 into 750 centers across the world. Today, the world's largest temple is getting constructed in Sridhar Mayapur, our international headquarters. Thousands of people are coming. वहां पे एक व्यक्ति भी नहीं था, जंगल था, डाकू थे. आज वहां कम से कम उस स्थान पर निवास करने वाले 4,500 व्यक्ति हैं, जिसमें से मेजॉरिटी इंडियंस नहीं हैं. और इस स्थान के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा. दिल्ली वाले जानते हैं मायापुरी, वेस्ट दिल्ली के पास, नॉर्थ दिल्ली में, लेकिन मायापुर कोलकाता के पास है, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था. So the point is, people feel respected for who they are and what they believe, then they are happier and more productive. श्रीला प्रभुपाद के अंदर विश्वास था that I am a servant. मुझे अजीब लग रहा था जब मुझे मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था तो सब बोल रहे थे दास सर करके. दास नाम ही रखा इसलिए गया कि मैं दास हूं, मुझे सेवा करनी है. दास के साथ सर थोड़ा विरोधाभास लग रहा था मुझे. मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझा है सर शब्द. हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, बांग्ला में है. वो बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा, हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है. वो हमें तब याद आता है जब घर पे किसी की मृत्यु होती है. 13 दिन याद रहता है कि हम आत्मा है, उसके बाद हम शरीर बन जाते हैं वापस. राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य सिर्फ उन 13 दिन में नहीं है, उसके बाद भी राम नाम सत्य है, उसके पहले भी राम नाम सत्य था, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं. सीए का मतलब सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, दांत नहीं है एक्स्ट्रा. सीए का मतलब वो भी मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य शरीर है. आपके पास कुछ स्किल सेट दिया भगवान ने, उस स्किल सेट को किस हद तक आपने यूज किया, दैट इज व्हाट विल डिटरमिन योर सक्सेस. एंड देयर इज नॉलेज. आप लोग नॉलेज है इसलिए कोर्स पास किए या एग्जाम पास किए, उसके बाद यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप अपडेटिंग योरसेल्फ विद कोर्सेज, ये भी आवश्यक है. इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये आवश्यक है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बताते हैं, साथ साथ जीरो डिफेक्ट. ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बताते हैं जीरो डिफेक्ट. एक पुर्जा गलत हो गया तो मशीन डूब गई. आप लोगों का एक आंकड़ा गलत हो गया बैलेंस शीट का, और यकीनन मैंने जीवन में एक बैलेंस शीट टैली नहीं किया, तो मुझे अजीब लगता है कि भगवान की विडंबना देखिए, जिस आदमी ने लाइफ में एक बैलेंस शीट टैली नहीं किया, उसको सामने खड़ा कर दिया गया उन सारे एक्सपर्ट्स के सामने जो कि सीएस हैं. और उसका कारण यही है, आई एम ऑल्सो सीए, आई एम चैतन्य's असिस्टेंट. भगवान के हम सब दास हैं, ये पहले मालूम होना चाहिए. वी आर सर्वेंट्स फर्स्ट. वी वांट सर्वेंट लीडरशिप. आप सब लीडर्स हैं समाज के, बट यू शुड बिकम सर्वेंट लीडर्स. देन यू विल बी हैप्पी. व्हाई? दिस इज व्हाई आई एम कमिंग टू द पॉइंट. स्ट्रेस क्यों होता है? The attempt to be in control of anything causes stress. स्ट्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपने आप को नियंता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं. ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंता, कंट्रोलर. और हम सोचते हैं, यहाँ पे कुछ बातें भी मैंने थोड़ी बहुत सुनी थी कि हमें ऐसी परिस्थिति लानी है कि क्लाइंट को मेरे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि मेरे लिए भगवान के अलावा कोई नहीं है. मैं अपनी क्षमता से नहीं कर रहा हूं, मेरी मेहनत उसकी रहमत. देन वी विल अंडरस्टैंड वी आर नॉट कंट्रोलर्स. हमें स्ट्रेस सबसे अधिक इसलिए हो रहा है कि मुझे बैलेंस शीट का टारगेट है, जीएसटी फाइलिंग का टारगेट है, या नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा,
ये FCR अकाउंट का ऑडिट करना है, इतनी सारी समस्याएं आ रही है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट का ऑडिट चल रहा है इंडिपेंडेंट ट्रस्ट का, और हम में से कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप में से होंगे, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट के भी ऑडिटर्स होंगे। और आपके ही गवर्नेंस इश्यूज आएंगे। हो सकता है आप एक जगह ऑडिटर हैं, उसी के सिस्टर कंपनी में आप ट्रस्टी हैं या बोर्ड मेंबर हैं। So much tension, so many things to bother us. But when we know that we are not the controllers, एक राजा था, उस राजा ने अपने राज्य में बताया कि मुझे ऐसी कोई भेंट दो जिससे मेरे अंदर जब तनाव बढ़ता है, दुख बढ़ता है, मेरे अंदर खुशी आ जाए, उमंग आ जाए, उद्गार आ जाए। और मैं जब बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर उद्गार हो रहा है, उस समय ऐसा कुछ वो गिफ्ट को देखकर मुझे लगना चाहिए कि जीवन में इसके ऊपर भी कुछ है, दुख भी हो सकता है या संतुलित हो सकता, सामंजस्य कर सकूं, समझौता कर सकूं परिस्थिति। तो कई लोगों ने अलग अलग भेंट लाए, और एक मंत्री था, उन्होंने एक गिफ्ट दिया। कुछ नहीं था, एक अंगूठी था जिसपे एक लेबल लगा लिखा था अंग्रेजी में, दिस टू शैल सून पास। ये भी बीत जाएगा। आपको मान लीजिए यूस्ट्रेस आ गया, पॉजिटिव स्ट्रेस आ गया, बहुत बढ़िया, एक क्लाइंट का रिजल्ट्स इतना बढ़िया चल रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कि क्लाइंट बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी भी कमाई बहुत अच्छी चल रही है। और अचानक कुछ मार्केट डेवलपमेंट आता है और उसका स्टॉक्स प्लमेट हो जाते हैं, या देखिए बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इतना रिस्क है उसमें, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, कितना रिस्क है उसमें। ग्रेटर द रिस्क, ग्रेटर द रिटर्न, दिस इज द बेसिक CS प्रिंसिपल। But we are spirit souls, we are not CAs. The first responsibility of a CA, that he has to see a soul inside him. See a soul. That is my mantra for you. The great definition. Please see a soul within you. Work. आपने अपने जीवन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा है, जीवन के 22 साल सो के निकाले, 2.5 साल नित्य वृत्ति में निकाले, दिनचर्या में 5.5 साल खा के निकाले, और ऑफिस जाकर, पिछले 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिस जाकर 5.5 साल निकाल दिए, और नौकरी में 16 साल निकाल दिए जीवन के। 16 साल मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24, दैट इज व्हाट इट मींस। और फलाना फलाना डिमकाना में 2.5 साल, और आप घर के पति हैं, पत्नी है, उसके ऊपर आधारित है कि आपका ये मिसलेनियस में क्या क्या आता है, शॉपिंग है, क्या है, वो है। लेकिन इसका मतलब है आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है 2.5 साल का, सॉरी 11 साल का। 54 ईयर्स ये सब ऐड करेंगे, मान लो कि हम 65 साल के रहेंगे, मैं 50 साल का हूं, मेरी एज 50 ईयर्स है, हो सकता है कि 65 तक मेरी लाइफ स्पैन हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो मेरे पास अभी डिस्क्रिप्शन है, यहां पर बता गया 11 ईयर्स का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये मान के चले कि हमारा लाइफ स्पैन 65 है, तो लेकिन हमारा लाइफ स्पैन कितना है किसको पता। आप एक न्यूज़पेपर देखोगे, उसका लाइफ स्पैन इज फॉर 1 आवर 2 आवर्स। आप एक फ्रूटी पैकेट देखोगे, उसका लाइफ स्पैन विल बी से मे बी 6 मंथ्स। एक बिस्लेरी बॉटल देखो, हो सकता है 1 ईयर, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज। मैं कोई ब्रांड का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, इट्स स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। लेकिन आप कृपया अपने स्लीव को देखें मिस्टर CS, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा है, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग लिखा है? नहीं लिखा। देयर इज नो सच मेंशन। तो हमारे पास पर्सनल डिस्क्रिप्शन इतना ही है, किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, औकात क्या हमारी। शास्त्र बोल रहा है कि दैट वी आर 1/10,000 द टिप ऑफ अ हेयर, बाल आग्र शतभागश्च शतता कल्पितस्य च। बाल का अग्र, मेरा तो बाल नहीं, आप लोगों के हैं, उसके बाल के अग्र का 1/10,000वां हिस्सा है हम। वी आर स्पिरिट सोल। The impact of the spirit soul is felt across the world, across the body. जैसे दवाई लेंगे
तो उसका प्रभाव जो है शरीर भर में व्याप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ट्यूबलाइट लगाया, उसका प्रकाश पूरे कमरे में व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार आत्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के प्रदेश में स्थित है। उस आत्मा के प्रभाव से हम जीवित रहते हैं। जब आत्मा चली जाती है, लोग बोलते हैं हाय पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, तो पिताजी वहीं पड़े, कौन चला गया? फिर अगले दिन जलाते क्यों हैं, दफनाते क्यों हैं? सो देयर इज समथिंग इन द बॉडी दैट इज मोर वैल्यूएबल देन द बॉडी, विदाउट विच द बॉडी इज यूजलेस। तो सोचिए कुछ समय के लिए, एक बूढ़ी औरत थी जिसने पूरा जीवन सोने के पिंजड़े को पॉलिश किया, अंदर के तोते को खाना नहीं खिलाया। पूरा जीवन मतलब तोते का पूरा जीवन। कितना समय बचा? तोता खाना नहीं मिलेगा, पिंजरा साफ है, क्या फायदा? पिंजरा क्या होगा? पिंजरा तो वैसे का वैसे रहेगा, तोता का क्या होगा? तो मर जाएगा। मान लीजिए कि आपने पिंजरे को साफ नहीं किया, सिर्फ तोते को खाना खिलाया, तो तोता पिंजरे को गंदा करेगा, कुछ समय बाद अमोनिया पॉइजनिंग से मरेगा। So we need a healthy balance of the body and soul. We are soul. We are not the body. We have a body. बच्चा बच्चा बोल सकता है, this is my nose, this is my shoulder, this is my head. Then who am I? मेरी नाक, मेरा सर, मेरा कंधा, मैं कौन हूं? We are not CAs. We are not financial experts. We are not corporate honchos. ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गुजर गया तो फिर 1 मिनट का मौन व्रत रख दिया, फिर वापस जाके अपनी गंदगी करते रहे। 13वें दिन अपने घर के सारे कार्यक्रम करवा दिया और उसके बाद फिर वापस अपने अदर परस्यूट्स पे, जो कि आत्मा के लिए जरूरत नहीं है। जितना शरीर को हम खुराक दे रहे हैं, you are dressing up your balance sheets, my dear CAs. You are just window dressing your balance sheet, that you're doing very well. My body is healthy, I have good relationships, I'm successful. Window dressing. You're padding up your balance sheet numbers. You're showing that you're in the black, but you are in the red if you don't take care of the soul. मैंने देखा है, राजस्थान धर्म भूमि है, वहां पे आसानी से भक्त बन सकते हैं परम भगवान की धार्मिक प्रवृत्ति सब में है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि, सोचिए आपने कभी सोचा कि ये ICAI का मेन ऑर्गेनाइजर कौन सा चैप्टर है, कहाँ का है? इट्स किशनगढ़। हाँ, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किशनगढ़। इट्स किशनगढ़, राइट? यस सर, यस सर। कॉन्फ्रेंस। So just imagine, there is a place called Kishangarh in Rajasthan and you're organizing a lecture on spirituality. See how Krishna arranges. तो धर्म भूमि है आपका स्थान. It is easy for you to take up spirituality. तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है, मान लीजिए कि आपने सबने एक एग्जाम्पल सुना होगा, आपके पास पत्थर है, आपके पास कंकड़ है, आपके पास जल है, आपके पास रेत है. पहला क्या डालोगे? कई लोग कई उत्तर देते हैं, लेकिन पत्थर पहला डालोगे तो अच्छा है, क्योंकि रेत डाल दिया, कंकड़ डाल दिया, लास्ट में पत्थर डालने के लिए जगह नहीं है. सो टू ओवरकम स्ट्रेस, you should know what are your priorities. You cannot manage time. You cannot manage time because time is God's energy. Krishna बोल रहे हैं कालोस्मिन लोकक्षयकृत प्रवृत्तो. Time I am the destroyer of the three worlds. मैं समय हूं, कृष्ण गीता में बोल रहे हैं. तो आप क्या टाइम मैनेज करोगे? हमें लगता है कि हम नियंता हैं, हम कुछ बदल नहीं सकते. मैंने बताया हम क्या 1/10,000वां हिस्सा हैं, हमारी औकात ही क्या है. मैंने एक ट्रक के पीछे देखा था, बहुत अच्छा लाइन था, अपनी औकात में रहो. तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि मैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं जो करूंगा सही हो जाएगा. कॉन्फिडेंस का मतलब है, जैसे कि आपने टीवी देखा होगा, आपके इंटरनेट में भी आया होगा,
एक भालू के बच्चे को एक पैंथर चेस कर रहा है, आपने देखा होगा वीडियो। चेस कर करके लात में करोच भी मार देता है भालू के बच्चे को, वो पैंथर भगीरा। लेकिन अचानक आवाज निकालना शुरू करता है भालू, और वो पैंथर पीछे चलना शुरू होता है, और उसको लगता है कि मेरी एबिलिटी से ये भगीरा पीछे चल रहा है। लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे 15 फुट ऊंची उसकी मां खड़ी है। तो वी शुड नो, कृष्ण गीता में बता रहे हैं, यत्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवाभिगच्छत्तम मम तेजो अंश संभवम। आपके अंदर जितनी भी क्षमता है, जितना भी टैलेंट है, जितना भी इंटेलिजेंस, बलम बलवताम चाहम, कृष्ण बोल रहे हैं, बलवंत में बल मैं हूं। और जिस भी व्यक्ति के पास जो भी क्षमता है वो मेरे ऐश्वर्य का एक रंच मात्र है, कृष्ण बोल रहे हैं। चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे सुपरस्टार एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जिसके अंदर भी विभूति है, कोई भी प्रतिभा है, उसका स्रोत कृष्ण है, भगवान है। गीता में कृष्ण बता रहे हैं, इसलिए श्री भगवान उवाचा बताया गया, कृष्ण उवाचा नहीं। भगवत गीता है, कृष्ण गीता नहीं है। सो व्हेन यू रीड द गीता, गीता इज बाय द वे इलेक्टिव इन IIM अहमदाबाद। ऐसा नहीं कि जो साधु बाबा लोग पढ़ते हैं या 13वें फंक्शन तक घर पे कोई गुजर गया था पढ़ने के लिए गीता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, अपने जीवन में कम से कम रोज 15 मिनट निकालिए। 10 मिनट आप भगवान का नामों का उच्चारण करिए, जैसे हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चा बच्चा जानते हैं इंडिया में। भगवान का नाम लीजिए और 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़िए। अब अगर मुसलमान भाई हैं, So we lost your voice, sir. निकालिए। Yeah, now okay. जब you are pure inside, peaceful inside, then you will be peaceful outside. मैंने पहले बताया, pollution inside causes pollution outside, corruption inside causes corruption outside, garbage in, garbage out. तो हम अपनी चेतना को जब जितना स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हमारे कार्यकलाप भी उतने शुद्ध होंगे। Then we will understand that we are not the controllers. We can do our best. You can take a horse to water. You can't make it drink. आप अपने क्लाइंट को 1000 समझा सकते हैं कि सही टाइम पे फाइल करो रिटर्न, सही टाइम पे पूरे कंप्लायंसेस इंश्योर करो, लेकिन क्या पता क्लाइंट के फैमिली में किसी ने कुछ कांड कर दिया, गलत काम कर दिया उसने। इतने सारे विश्व में आर्थिक घोटाले हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उसके पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है? कैसे बोल सकता नहीं है? क्योंकि नकल भी अकल से करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दुनिया के सारे सीएस गलत हैं। Recession was caused by greed. Anderson Consulting got into trouble. Satyam got into trouble. Transparency issues, governance issues. क्यों? Corruption inside. That causes corruption outside. So when you become peaceful inside, जब ये देखें, उपनिषद में बताया गया, नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम, वो एक है जो हम अनेक को पालता है। हमारे औकात क्या है? हम खुद को पालेंगे, अपने परिवार पालेंगे, अपने समाज पालेंगे, अपने क्लाइंट को बचाएंगे। खुद को तो बचाएं। हवाई जहाज में दबाव कम होगा तो ऑक्सीजन आप नीचे उतरेंगे। पहले खुद को लगाएं, फिर बच्चे को लगाएं। पहले खुद को तो बचाओ। Save yourself, then save the world. Save yourself. That is my second mantra. Save yourself. खुद को बचाइए। आप शरीर नहीं है। अब शरीर होता तो आपको जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं। फारसी भाई हमारे हैं, वो डाकमा टावर ऑफ साइलेंस में फेंक देते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स एंड बर्ड्स एंड बीस्ट एंड एवरीथिंग दे ईट अवे द बॉडी। या कुछ लोग जल पे फेंकते हैं। उस शरीर का इतना ही मूल्य है, उस शरीर के पीछे इतना सर फोड़ रहे हैं हम लोग। बोलते हैं ना, जहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। तो आके बैलेंस शीट टैली करोगे वहां जाकर।
पहले अपना जीवन का बैलेंस शीट टैली करो. Am I spending enough time with my family? Am I spending enough time with my friends? Am I learning new things? Am I developing hobbies that will nourish me? Am I spending sufficient time with God, my controller, my enjoyer, my proprietor? Write a balance sheet. आप सब मेरे से चैंपियन है बैलेंस शीट में. लिखिए assets और liabilities. Debit the receiver, credit the receiver, both you. Accounting standards वहां पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब ऐसे ही चलता है. अब अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा. लेकिन भगवान के लिए करोगे ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे हम चलते हैं. ये साल तो हमने कंप्लायंस मैनेज कर लिया, कुछ लायबिलिटी कैरी ओवर करते हैं, बैड डेट्स में रिफ्लेक्ट कराएंगे, या ओपनिंग स्टॉक में एडजस्ट करेंगे. जुगाड़, बट यू कैनॉट डू जुगाड़ विद कृष्णा. अंतिम समय ये नहीं बोल सकते कि एक आदमी था ऐसे ही आपके समान, चार्टर्ड अकाउंटेंट था. चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे क्वार्टरली वार्निंग्स दे दें, जैसे आपका क्वार्टरली फाइलिंग्स होता है, क्वार्टरली वार्निंग्स दे दें कि कब मैं मरने वाला हूं. तो कुछ समय बाद उसके दांत गिरे, बाल गिरे, आंख की रोशनी कम हुई, कम सुनाई पड़ रहा था. अचानक एक दिन मर गया. तो उसने बताया, भगवान आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि आप मुझे वार्निंग दो कि कब मरने वाला हूं. तो भगवान ने बताया, जब तुम्हारे दांत गिरे तो वो वार्निंग नहीं था, तुम्हारे आंख की रोशनी कम पड़ी वो वार्निंग नहीं था, बाल गिरे सफेद हुए वार्निंग नहीं था, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ के गुजर गए वो वार्निंग नहीं था. So we should understand that chartered accountants are also human beings. They should know the art of living and they should know the art of dying. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. उपनिषद का मंत्र मैंने बताया, वो एक है जो अनेक को पालता है. लाइफ इंश्योरेंस ने कॉपी मार दिया भगवत गीता का, योगक्षेमम वहाम्यहम्. भगवान ने खुद गीता में बताया है. लाइफ इंश्योरेंस नहीं आपको बचाता, लाइफ इंश्योरेंस तो आपके परिवार को हेल्प करेगा आर्थिक दृष्टि से. आपको हेल्प करेंगे सिर्फ वही परम भगवान. योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसका मतलब ये है, ये पहले मालूम होना चाहिए. नो मैटर व्हाट आई ट्राई, एंड ऑफ द डे मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के. कृष्ण आपको मारना चाहते हैं, कोई आपको बचा नहीं सकता. कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं, कोई आपको मार नहीं सकता. कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बैलेंस शीट हो, जीएसटी फाइलिंग, एफसीआरए हो, या चाहे क्लाइंट का गवर्नेंस इश्यू हो, हर परिस्थिति में without somebody higher than us, we will not be able to help ourselves. स आत्मा येन पश्यन्ति तेषां शांति शाश्वती नोतरेषां. जो आत्मा इसको समझती है वो शांत रहती है. बाकी लोगों को स्ट्रेस होता है, तो सोचता है कि मेरे वजह से दुनिया चलती है. आपको पता है कब्रिस्तान उन लोगों से भरा है जो लोग सोचते थे कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलती, मेरे बिना क्लाइंट नहीं चलता. ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरी हुई है. और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ इंटरनली. स्वामी जी, उत्सुकता वक्त एक सवाल पूछ रहा था. जैसा आपने बताया कि हमें पिंजरे से ज्यादा, पिंजरे का जो तोता है उसके खाने पीने का उसका ध्यान रखना चाहिए. नहीं, मैंने दोनों बताया कि आप सिर्फ तोते को खिलाओगे, पिंजरा साफ नहीं करोगे, तो इसका मतलब है वो भी मरेगा. तो शरीर का भी ध्यान रखना है, आत्मा का भी ध्यान रखना है. शरीर का खुराक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. सीमित मात्रा में भोजन, 50% खाना, 25% वाटर, 25% एम्प्टी. और टहलना चाहिए कम से कम 1 घंटा. बाकी एक्सरसाइज करें ना करें, कार्डियोवैस्कुलर ना करें, एरोबिक्स ना करें, योगा भी ना करें, कम से कम वॉक फॉर 1 आवर, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग. और ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सेरोटोनिन सिक्रेट होता है शरीर में, जिससे स्ट्रेस अपने आप कम होता है. एंड व्हेन वी डील विद स्पिरिचुअल मैटर्स वी जनरली बिकम हैप्पी. आप सुबह के टाइम पे देखोगे 6 बजे 6:30 बजे कोई भी रेडियो चैनल चलाओगे, उसमें कोई हेवी मेटल नहीं चलता, कोई हेवी मेटल सॉन्ग नहीं चलता, भजन चलता है.
या लाफ्टर क्लब, लोग हंसते रहते हैं पार्क में, उसी टाइम पे प्राणायाम करते हैं. So add regulated eating, regulated sleeping. कम से कम 6 घंटे की नींद अनिवार्य है. Sleep at the right time. आपको लगता है कि 9 बजे आप सोएंगे तो दुनिया हिल जाएगी, कुछ नहीं होगा. 8:59 को अपना मोबाइल बंद करें. 9 o'clock to 3 o'clock, 4 o'clock अच्छे से रेस्ट करें, 6 to 7 hours. Get up, take bath, do some exercise or whatever, and do some spiritual activities. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, they sleep less, do more. आराम हराम है, आनंद का नाम है. तो थॉमस अल्वा एडिसन सेड, जिन्होंने विश्व में 999 अटेम्प्ट्स के बाद बल्ब का आविष्कार किया, और उनके नाम पे 1000 से अधिक पेटेंट्स हैं. उन्होंने बताया स्लीप इज लाइक अ ड्रग, द मोर यू हैव इट द मोर विल यू नीड इट. तो संतुलित नींद, संतुलित भोजन, walk at least 1 hour, drink at least 4 liters of water, 3 to 4 liters of water every day. Do some breathing exercises, read the Gita or the Quran or the Bible or the Zen Avastha or Guru Granth Sahib or Dhammapada. Do something and chant the names of the Lord. भगवान का नाम लीजिए. कलयुग में खेल क्या है? नाम का ही तो खेल है. अब नाम बनाने के लिए घूम रहे हैं, तो कलयुग केवल नाम आधार, लेकिन आपका नहीं, भगवान का. तो भगवान का नाम लें, उसमें करेंगे जैसे कुछ एक्शन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं. मान लीजिए कि आपको राजा बनाया गया एक देश में, लेकिन उसकी खासियत यह है कि आप राजा 1 साल ही रह सकते हो, उसके बाद आपको वनवास लेना पड़ेगा जीवन भर के लिए. वन में जंगली जानवर है, भूत प्रेत है, जो भी है पता नहीं. तो जितने भी आए हैं, हंसते हुए आए हैं, रोते हुए गए. एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो 1 साल उसने राजधानी में नहीं बिताया, उसने जंगल में बिताया. हमने जैसे बताया, दिस टू शैल सून पास. खुशी के समय पर अधिक उछलना नहीं चाहिए, दुख के समय पर अधिक दबना नहीं चाहिए. उस व्यक्ति ने क्या किया? 1 साल उसने अपनी पूरी फैसिलिटीज का लाभ उठाया. उसने जंगल में मंगल कर दिया, किला बनाई, खेती बाड़ी तैयार किया, मंदिर बनाया, प्रहरी खड़ा कर दिए, अस्पताल बना दिया, स्कूल बना दिया, सब रेडी कर दिया. उसके पास सारे फैसिलिटी थे, उसका यूज किया उसने, और 1 साल के बाद हंसते हंसते गया. So my request to you is that you're all intelligent people. Use your intelligence in serving the Lord. Then you will not be under stress. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आपको मिला है मर्सिडीज बेंज की गाड़ी, आप उससे जाके खेत को जोत रहे हो, हल चला रहे हो मर्सिडीज बेंज से. मनुष्य शरीर मिला है हायर टॉपिक्स के बारे में सोचने के लिए, और आप सोच रहे हैं सिर्फ कुछ बैलेंस शीट्स के आंकड़े से सब कुछ हो जाएगा. बैलेंस शीट ऑफ लाइफ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. सो इनफ ईटिंग, इनफ स्लीपिंग, इनफ रेस्ट. ये सब कैसे चेक करेंगे? यू शुड हैव अ मेंटोर, यू शुड हैव समबडी टू हुम यू आर अकाउंटेबल. अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है अकाउंटेंट्स के लिए. मैं अपना जीवन कैसे बैलेंस कर रहा हूं? प्लस you should have a network of friends to whom you can reveal your heart. जितने भी लोग डिप्रेशन के मारे मरे हैं या आत्महत्या करी हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनको दिल का खुलासा करने के लिए कोई नहीं था. जो डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड व्हाट इज इट, इन्फ्लुएंस पीपल, शायद उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था. मैं सुबह सोच रहा था, बचपन में इतने सारे हीरोइन वगैरह मूवीज में देखे थे, हीरोज देखे थे, आज कहां गए? हमको लगता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी. आई नो एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट हु गो एंड प्रैक्टिस एट द एज ऑफ 90, छोड़ नहीं पा रहे हैं. योर रियल स्ट्रेंथ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट जस्ट acquire assets,
It is also to give up things. That will make you peaceful. स्ट्रेस इस वजह से भी होता है, छोड़ना नहीं जानते. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कंपनी को है, सीए को क्यों नहीं है? क्या, I don't know whether CA Institute has a norm for social responsibility, but if not, I think you should have. And आप जितने भी कंपनीज में काम कर रहे हैं या जहां पे आपके क्लाइंट्स हैं, why should there be prayer rooms only in school? Why should there be no prayer rooms in corporates? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं है. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि मैं सभी धर्म को समान समान दे रहा हूं. So therefore, as chartered accountants, what is important for all of us here to think about, like N.R. Narayan Murthy says, the Gita gives all of us a path of peace of mind. That is what I found. So please study the Gita, read the Gita. And the Bible says, what profiteth a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? तो आप जो भी कर रहे हैं, it should nourish your soul also, कि आप पाप कार्य ना करें, बुरी आदतें ना रखें. पैसा मुश्किल से मेहनत करके कमा रहे हो, क्यों शराब पी रहे हो, क्यों सिगरेट पी रहे हो, क्यों खर्रा खा रहे हो, क्यों मांसाहार कर रहे हो? जरूरत नहीं है. अगर कर भी रहे हैं तो सीमित मात्रा में करें. reduce the bad news, increase the good news, then there will be no stress. लकीर को छोटा करने के लिए बिना छुए क्या करते हैं? पास लंबी लकीर खींचते हैं. ठीक उसी प्रकार there will be stress. Engage in stress-free activities. That will reduce the stressful activities. पानी गंदा है ग्लास में, अच्छा पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, वो भी साफ हो जाएगा. So God, make me operate in the circle of influence. जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में है, उसको कंट्रोल करना चाहिए. You cannot change the finance policy, monetary policy, fiduciary policy of the country, but you can change the way your client deals with the policy. You can change the way your client has transparency. You can change the way you deal with the client. You can change the way you are transparent. So God, please give me the strength and courage to change the things that I can change. जो मैं बदल सकता हूं, उसको मैं बदलूं. The serenity to accept the things I cannot change. ये सन्मनस्कता, जिससे कि मैं उन चीजों को समझूं जो मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, जिनको मैं परिवर्तन कर सकता हूं उनको मैं परिवर्तन करूं, जिनको नहीं कर सकता उनको स्वीकार करूं, और इन दोनों के बीच का अंतर समझने का बुद्धि भी मुझे दीजिए भगवान. What I can change and what I cannot change. That is a prayer that all of us should do. So what is your take home? Please don't be a control freak. Don't be a control freak. Don't try to control every situation. Meditate and pray. Read from the scriptures. Simple living, high thinking. बहुत पैसा बचेगा, बहुत शांति मिलेगी, टाइम वेस्टिंग कम होगा, मनी वेस्टिंग कम होगा, एनर्जी वेस्टिंग कम होगा. Do attached detachment at work. Do your best. Leave the rest to God. आप कंट्रोल नहीं कर सकते. परीक्षा लिख सकते हैं, मार्क आपके हाथ में नहीं है. अप्राइसल तक आप काम कर सकते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, अटेंडेंस कर सकते हैं और रिजल्ट्स दे सकते हैं, लेकिन अप्राइजल का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. ठीक उसी प्रकार मा फलेषु कदाचन कर्मण्य एव अधिकारस्ते. डू योर ड्यूटी, ऑफर द रिजल्ट्स टू गॉड. अपने सैलरी में से एक अनुपात आध्यात्मिक कार्यों के लिए जरूर खर्च करें. बहुत जरूरी है, देने से बढ़ता है. क्योंकि साधारणतः यही बताता है ना कि वो कंजूस आदमी था जिसको धक्का दे दिया किसी ने. इतना कंजूस था, कुएं में धक्का दे दिया. तो किसी ने बचाने के लिए हाथ दिया, बोला कि हाथ दो हाथ दो. उसने हाथ नहीं दिया क्योंकि कंजूस है, कोई कभी देना ही नहीं सीखा. तो उसने बताया अब हाथ लो. तो उसने हाथ पकड़ा और ऊपर आ गया. ये हमें मालूम होना चाहिए कि देना सीखना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखनी चाहिए, सिर्फ हमारी एबिलिटी पे नहीं. एक आदमी लटक रहा था क्लिफ से, पहाड़ के खाई की तरफ
लटक रहा था, अंधेरा था, बर्फ थी, भगवान मुझे बचाओ चिल्लाया, भगवान की आवाज आई, मेरे बच्चे हाथ छोड़ दो, नीचे कूद पड़ो। उसने नहीं सुना, ऐसे क्या बोल रहे, मैं कैसे कूद सकता हूं। रात भर लटकता रहा, ठंड सहता रहा। सुबह देखा लोगों ने एक लाश लटकती हुई मिली, सिर्फ 2 फुट ऊपर जमीन के, अंधेरे में दिख नहीं रहा था 2 फुट। भगवान पे श्रद्धा नहीं है, खुद अपनी एबिलिटी पे विश्वास है, तो मर गया। तो ये एक बात। और दूसरी बात, गुस्सा बहुत आता है, उससे भी स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आता है। क्रोध को पार करने के लिए भीष्मदेव बोलते हैं माफ करना सीखो, लर्न टू फॉरगिव। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और टेक्नोलॉजी का यूज करो, व्हाट्सएप के लिए सही टाइम फिक्स करो, पूरे दिन व्हाट्सएप में मत रहो। एक टूथब्रश और टॉयलेट के बीच लड़ाई चल रही थी कि मनुष्य सबसे पहले मुझे यूज करता है, सुबह उठकर मुझे यूज करता है, टॉयलेट बोला मुझे यूज करता है, टूथब्रश बोला मुझे यूज करता है, और साइड में खड़ा था मोबाइल फोन, वो हंस रहा था। तो टेक्नोलॉजी का यूज हमें रेगुलेट करना चाहिए। डू सम एक्सरसाइज, ड्रिंक सम वाटर। और अपनी इच्छाओं का बढ़ावा देने से हम खुश नहीं होंगे, इच्छाओं को संतुलित करने से हम खुश होंगे। एंड कीप एन ऑफिस मेंटोर एंड एन ऑफिस बडी, दे विल हेल्प यू बेटर। हरे कृष्णा। Thank you, sir. Thank you very much, sir. So you have Thanks. questions? Time for questions? Thanks for your guidance, sir. सर आपके इस स्पीच को लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और मतलब बड़े रिलेवेंट से क्वेश्चंस हमको मिले। जैसे कि आपने बताया कि समय के नियंता हम नहीं हो सकते, प्रभु स्वयं समय है, और समय को रेगुलेट करने की जो कोशिश हमारी है वो हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाती है कई बार। तो उसी से रिलेटेड सवाल एक आया है कि कई लोग जो 24 आवर्स हमको मिले हैं उसका इस्तेमाल करके अपना घर नहीं चला पाते, और कई लोग इसी समय के अंदर अपना देश चला पाते हैं। कई लोग छोटा बिजनेस नहीं चला पाते और कई लोग बड़े बड़े बिजनेस इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके खोल पाते हैं। तो वो क्या सक्सेस फैक्टर है जो इन 24 आवर्स को इस्तेमाल करना हमें सिखा पाती है, या कैसे वो सीख पाते हैं, कि या क्या वो मिसिंग पॉइंट है जिसको हम नहीं सीख पा रहे हैं? तो उसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहिए। First thing to understand is that you cannot manage time, you can only manage priorities. You can manage your priority. तो पत्थर पहले डालें, कंकड़ और रेत डालेंगे तो लास्ट में पत्थर डालने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। You should have the intelligence to choose what is your पत्थर। तो उसके लिए you can take the help of mentors, buddies, people you know, people you, even spiritual guides, whatever. उनका help लेके you can decide what are my priorities in life. So when you have your priorities, कृष्ण खुद बोल रहे हैं गीता में, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना, focused mind will have only one goal. श्रीला प्रभुपाद ने बताया था 70 साल की उम्र में अमेरिका जाकर इस्कॉन की स्थापना करने के लिए मुझे इस श्लोक ने प्रेरणा दी, टू स्टे फोकस्ड। वो फोकस अकेले नहीं मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस से मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिलेगा। और ये याद रखें, गुड जजमेंट comes from experience. Experience comes from bad judgment. Good judgment comes from experience. Experience comes from bad judgment. तो जैसे जिसने भी साइकिल सीखा है बिना गिर के सीखा नहीं है। So there will be some mistakes we'll make on the way. Keep doing rain checks, keep doing course corrections, keep checking with others. But the first thing is to understand priorities. And the second thing to understand, no matter what you do, the law of karma is infallible. एक शराबी था, उसके 2 जुड़वे बेटे थे, 2 बेटे थे, जुड़वे थे। एक खुद बना शराबी, दूसरा बना चार्टर्ड अकाउंटेंट कम ICMA कम CS। तो दोनों से पूछा गया आप ऐसे कैसे बने? शराबी ने बताया मेरे बाप की वजह से, CA ने भी बताया मेरे बाप की वजह से। तो हमें परिस्थिति हम बदल नहीं सकते, हम अपने मन स्थिति को बदल सकते हैं। Perfect. मन स्थिति को बदलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो कुछ लोग अपने कर्म के आधार पर सफल होते हैं, एक ही टाइम पे पैदा होने वाले दोनों बच्चे सफल नहीं हो सकते। सो देयर इज एन एक्स फैक्टर कॉल्ड कर्मा। हाउ कैन यू बर्न दैट कर्मा?
You can burn that karma by taking shelter of spiritual practices. Apart from that, take the help of experienced people to balance your priorities. You should have clear set goals. Like I am clear about one thing which I have received as guidance. Ki now I don't have much time left. I can die anytime. So I have to prepare for death. Perfect. Similarly, you should have goals. Perfect, sir. You're Perfect fine? answer. Perfect answer. Great, sir. Thank you, sir. सर एक सवाल ये आया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जीवन में जो चीज है कि एक डिग्री लेने के बाद एक तरीके की स्पेशलिटी में आने के बाद हम उसी काम को बार बार दोहराते हैं। जैसा आपने बताया कि सब कुछ प्रभु का ऐश्वर्य है और हम प्रभु के ऐश्वर्य को अगर देखें तो हम बाल के 100वें हिस्से का भी एक अंश मात्र ही हैं। तो क्या नई चीजों को सीखना, नया जानना, पहचानना, नई कलाएं, नई स्पेशलिटी को लाना अपने अंदर, ये एक अनिवार्य तत्व है या इसकी वजह से भी कुछ स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है या इसकी आवश्यकता नहीं है? जीवन में एक स्पेशलिटी में जब महारत हासिल करने के बाद उसी को लेके आगे बढ़ना ही काफी है। तो मेरी एक सेवा है इस्कॉन संस्था के लिए। इस्कॉन इज नॉट जस्ट इस्कॉन डजंट हैव जस्ट टेंपल्स, इस्कॉन इज आल्सो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट registered under the Bombay Public Trust Act. So some of these services for me are institutional. और business law और accountancy मेरे सबसे weak papers थे MBA में. I was really bad. लेकिन एक सेवा मुझे मिली थी, that was in the legal department of ISKCON कुछ समय के लिए. मुझे ABCD पता नहीं. So then what do you do? So इतना stress था उस समय मुझे, even though I am in Krishna consciousness. So when I had stress, I took shelter of the spiritual process more. And along with that, like I said, pray like everything depends on Krishna, but work like everything depends on your effort. So knowledge is power. If you do not have constant relearning, I told you about knowledge organizations and continuous improvement is जरूरी है. We have to have constant updating. लेकिन मालूम होना चाहिए क्यों अपडेट कर रहे हैं. We should choose our courses wisely and we should constantly. आप क्या, मैं खुद कोर्स कर रहा हूँ. I am also doing courses in my spirituality to constantly update myself. Any field, updating yourself is very very important because stress का एक कारण यह है कि आपके प्रतिस्पर्धी आपके आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास कुछ स्किल्स हैं जो आपके पास नहीं है, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट योरसेल्फ. तो वो क्या है स्किल, क्योंकि हर स्किल आप अपना नहीं सकते. वो स्किल जो आपको अपनाना चाहिए, यू शुड गो थ्रू एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू लर्न व्हाट आई नीड टू लर्न. मार्केट जो ले रहे हैं भेड़ चाल नहीं चाहिए. So learn those skills, knowledge, and above all values that will help you handle competition. Perfect. मतलब पहले ये जाने कि क्या जानना है और फिर उसको जानने की कोशिश करें. Evaluate before you understand, before you learn the things. पहले उन्हें समझें कि क्या चीज आपके लिए उपयोगी है और क्या चीज बेहतर है आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए. बिल्कुल. Well said. Also one more point is don't choose a piece of knowledge that will impact the rest of your life. मतलब आप प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कुछ कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स ने आपका फैमिली के साथ जो बिताने वाला टाइम खा लिया. सैटरडे संडे का कोर्स है, वो पूरा आप करेंगे, बाकी 5 दिन आप ऑफिस में करेंगे, तो फिर ऐसे ही है फेमस स्टोरी, बच्चा पूछेगा मम्मी अंकल कौन है. It's a great sir. Correct sir. मतलब बैलेंसिंग लाइफ में होना बहुत जरूरी है. आगे बढ़ने के साथ साथ संभल के चलना भी जरूरी है. इट्स ग्रेट वर्ड सर. सर एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आया है. सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी लाइफ में उस चीज को फील जरूर किया है कभी ना कभी कि हम जब ये बात करते हैं कि शरीर मात्र है जो यहीं रहना है और हम जो हैं खुद जिसको हम अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक आत्मा है, एक डिफरेंट थिंग है. तो उसको बचा के रखना, उसको स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है कि हम एथिकल वैल्यूज का पालन करें, हमेशा एथिकल वैल्यूज को सबसे ऊपर रखें. लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में व्यावसायिक दृष्टि से देखें या प्रोफेशनल नजर से देखें तो
हमें कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में आना पड़ता है। तो इस सिचुएशंस को कैसे जवाब दें, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है? First thing one should do is that one should have a spiritual core. First thing. नहीं तो one man's meat is another man's poison. मुझे जो लगता है ethical है दूसरे के लिए unethical होगा. And vice versa. So till one has a sound spiritual grounding, कोई भी धर्म हो, till one has a sound spiritual grounding, one will not be able to understand what is right and what is wrong. So till one understands what is right and what is wrong, जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, अच्छा किया बुरा किया, ethical dilemma. युधिष्ठिर जी ने द्यूत क्रीड़ा खेली, सही है गलत है, और राम जी ने छुपकर बाण भेजा बाली के ऊपर, सही है गलत है। अब आप बस कॉमिक्स पढ़ोगे, टीवी सीरियल देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई भाई में फूट डाल दी, उसको बाण भेज के मार दिया। Then you see that Bali also stole the wife of Sugriva, and Bali had a strength that जो भी उनके सामने आएंगे उसको 50% शक्ति उसमें आ जाएगी। भगवान की शक्ति इन्फिनिट है, इन्फिनिट का 50% कितना है, वो भी इन्फिनिट है। बाली का शरीर बचेगा फिर? He cannot even handle it. So therefore the Lord did it, and hunting animals is allowed for Ikshvaku kings. So there are many rules. Ramachandra himself says in Ramayana these points. लेकिन आप उसको पढ़ेंगे नहीं, then you will not understand. Similarly, your Chartered Accountant Institute has some guideposts, some guidelines. Everybody should constantly be updated of these ethical guidelines. And if they are not there, the CA Institute should construct an expert group of religionists, get them as your expert group. Ask them to fix ethical standards in various situations. They could be professionally trained people who can tell you. Ethical standards will not be long lasting till there is a spiritual core to it. Otherwise, हर्षद मेहता के टाइम तक किसी को पता नहीं था कि हवाला खेला जा सकता था ऐसे. And till what is it, Ramalinga Raju, what's his name, that Satyam founder, Satyam Group. Yeah, nobody knew that this is the way you can play. Till Anderson Consulting did it, nobody knew that futures could be played around like this or options could be played around like this. तो फैसिलिटीज पहले से हैं, सदुपयोग या दुरुपयोग जीव अपनी स्वेच्छा के दुरुपयोग से करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, आप फुटपाथ पे चलाओगे, रास्ते पे चलाओगे, आपके ऊपर है, यू हैव द फ्री विल। सो ऐसा नहीं है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के रखने मात्र से कोई व्यक्ति फॉलो करेगा। Along with ethical standards, there should be constant monitoring, professional accountability, and systems which ensure that even if a person wants to violate ethics, he cannot. The system should be so robust. हम system का substitute नहीं कर सकते. It should be made idiot proof. ये व्यक्ति गलती ना करे. साथ साथ the institute should set ethical norms that are based on a spiritual core. Then व्यक्ति अंदर से स्वच्छ है तो बाहर गंदा काम नहीं करेगा. Then he knows what is to be done. The CA Institute has told him what should be done. He will balance that and he will do. Main point is greed. So there should be some way, maybe the CA Institute can set up a fund for suffering chartered accountants based on recession or COVID or whatever. Yes, sir. Great, sir. Thank you, sir. Thanks for your enlightening speech and the मतलब जिस तरीके से आपने मार्गदर्शन किया हम सभी का, इट्स वाज वेरी गुड, वेरी ग्रेट। और इस पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर कितनी सारी बातें आपने हमको समझाई, कितनी चीजें बताई, मतलब टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट और यू कैन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट, वो सारी चीजें जो हम समझते हैं कि हमारी जीवन को कहीं ना कहीं छूती है और दिन रात हम शायद कहीं ओवरलुक्ड हो जाती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हुए, उन सब चीजों को आपने आज यहाँ रखा, समझाया और हमारी समस्याओं को भी आपने एड्रेस किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चेयरमैन, किशनगढ़ ब्रांच के चेयरमैन मोहित जैन सर से कि वो एक बार सेशन को कंक्लूड करें और एक थैंक्स गिविंग वर्ड्स आपके लिए कहें। आई एम स्पीचलेस। मतलब ये जो अध्यात्म वाली बातें होती है सर, लिटरली वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट
very much easily adaptable to all this. मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता हमारे डेली रूटीन से, और वाकई में जब आपकी बातें सुनते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो सकता है यदि ये डेली कोर्स ऑफ एक्शन में हम सब चीजें अडॉप्ट करें तो. I would like to invite CA Dheeraj Kumar Leela ji, the chairman of Sri Ganganagar branch, to please bring a formal vote of thanks to Rishi Kumar Das ji sir. सर मैं थैंक यू मोहित जी. मैं सीए धीरज कुमार लीला, चेयरमैन श्री गंगानगर ब्रांच ऑफ CAIRC, आज आपके शानदार डेलिब्रेशन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको. और सर मैं ये आशा करता हूं कि सर जो आपने आज हमको ये आध्यात्मिक मानसिक शांति के लिए जो आपने आइडियाज दिए हैं, इसको हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और सर कहीं ना कहीं हम अपने जो स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा मैनेज करने में कामयाब होंगे. मैं आज के सेशन के हमारे अदर स्पीकर गिरीश ओझा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शानदार डेलिब्रेशन दिया, और आशा करता हूं कि सभी मेंबर्स की लगभग क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी. मैं आज के कार्यक्रम के हमारे सभी CCM मेंबर्स प्रकाश शर्मा जी, किमिशा सोनी जी, पास्ट चेयरमैन निहारन जाम्बूसरिया जी, अतुल गुप्ता जी, हमारे चैप्टर को गंगानगर ब्रांच बनाने वाले CA उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी, मॉडरेटर नितिन गुप्ता जी, सौरभ जी, आकाश बरगोती जी, सभी अदर काउंसिल मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस आयोजन को सफल बनाया. मैं किशनगढ़ ब्रांच का स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने कम समय में सर दिन रात मेहनत करके इस शानदार आयोजन का सक्सेसफुल किया. मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा किशनगढ़ ब्रांच के चेयरमैन मोहित जैन जी को, जिन्होंने वन मैन आर्मी की तरह सर काम किया. बाकी जो कोस्ट ब्रांच सर इतना सहयोग नहीं कर पाई, एक्सेप्ट करता हूं मैं इस चीज को, लेकिन मोहित जी आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, इसके लिए आपका दिल से आभार. और मैं अलवर ब्रांच के चेयरमैन अमित अग्रवाल जी का, बीकानेर ब्रांच के चेयरमैन अंकुश चोपड़ा जी का, चित्तौड़गढ़ ब्रांच के चेयरमैन योगेश काबरा जी का इस आयोजन में सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. और सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गंगानगर ब्रांच हमेशा सर आपके किसी भी आयोजन के लिए हमेशा हिस्सेदार बनने के लिए तैयार है. अंत में मैं सर 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि चिरागों को निगाहों में यूं ही सजाए रखना, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी. चिरागों को निगाहों में यूं ही सजाए रखना, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी. मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, कभी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सर. Thank you, Dheeraj ji. Thank you for wonderful vote of thanks. Literally, finally, the NATCON is on end right now, and I, CA Mohit Jain, chairman of Kishangarh branch, personally admiring all the faculties, all the speakers, all our session chairmen, CCMs, RCMs, PDC committee, especially the tech team and the office team. I want to personally name मैम सीमा एंड मैम प्रिया जी, जो हमारे साथ में PDC कमेटी से जुड़ी हुई थी, और उन लोगों ने बहुत लिटरली 1-to-1 बहुत मेहनत करी हमारे साथ में. मैं निसर्ग भाई और अयाज भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे टेक टीम को बहुत सपोर्ट किया. और जो हमारे साथ में जितने भी मॉडरेटर्स जुड़े हुए थे, ये केवल एक टीम एफर्ट्स का एक अच्छा सा सैंपल है कि जो हम लोग इस तरीके की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर पाए. और हम लोग इसका यदि पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि जहां हम लोग पहले कोविड के थ्रू हम लोग इस तरीके की सेमिनार्स अटेंड करते थे, आज भी इसकी यूटिलिटी पूरी निकल रही है, क्योंकि विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हियर एंड देयर फॉर गोइंग एंड कमिंग and traveling and making so many arrangements, we are getting gathered here at these sessions, and we are very thankful to the PDC committee and the staff there. Especially अभी मैं देख रहा था कि प्रिया मैम ने हमको ज्वाइन भी किया था कुछ टाइम पहले, और केमिशा मैम, प्रिया मैम, सीमा मैम and निसर्ग भाई, अयाज भाई, you are very cooperative and very thankful. And please believe me, we will definitely share you all the PPTs in single mail for all day sessions, and the speakers you are kindly invited for next NATCON or any kind of seminar we will invite for you. Thank you all lot. किशनगढ़ ब्रांच तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करती है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सर, थैंक यू अलॉट, थैंक यू सर भाई, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू ऋषि सर, मोहित जी थैंक यू आपका सर, हमको कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. जल्दी मिलेंगे, जल्दी से ही वापस से कोई और बड़ा ऑर्गेनाइज करें. ऋषि सर ने शायद डिस्कनेक्ट किया है. बिल्कुल सर. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक
participants, please give your feedbacks on the website of Kishangarh branch, and please try to come on Kishangarh whenever you want to come physically. We are ready to serve you at our best. And definitely, sir, we'll give you all the PPTs on your registration. Thank you for today. Thank you. Thank you all. Thank you very बहुत much. धन्यवाद मोहित जी. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.